Good morning. Today is a historic day with the Pran Pratishtha ceremony all set to begin in a few hours from now. First, the headlines. All roads lead to Ayodhya. The stage is set for Ram Temple Consecration. Prime Minister Narendra Modi himself is going to be part of this, along with RSS Chief Mohan Bhagwat and UP Chief Minister Yogi Adityanath. Temple town turns into a fortress. Public holiday in Uttar Pradesh today. Mega consecration ceremony in Ayodhya. Prime Minister Modi to land in Ayodhya at 10:30 a.m. today. Pran Pratishtha ceremony to begin around 12 noon. The Prime Minister will also address a public meeting after the ceremony. The who's who of India have already arrived in Ayodhya. They've made a beeline for the temple run. Celebrities, industrialists, politicians throng Ayodhya. Ram Temple fever grips from Ayodhya to Times Square, NDTV ground reports. Bilkis Bano's rapists are back in jail. Bilkis Bano's rapists have surrendered at the Godhra jail. Top court had refused their plea to extend deadline. North India reels under cold wave, dense fog across Delhi NCR. Over 20 Delhi-bound trains are running late. It's a historic day today, a day that will see the culmination of many conflicts, a closure of sorts, but also a new beginning in many ways. The Pran Pratishtha of the temple in Ayodhya is set to begin in a few hours from now. A little afternoon, 12:20 is the specific Abhijit Muhurat that has been preordained. Prime Minister Narendra Modi, RSS Chief Mohan Bhagwat, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath and Chief of the Trust Mahant Nritya Gopal Das will be among those present at the ceremony. The moment has specific spiritual, religious, political and historical significance. It's also a very important day for the Prime Minister, as his enduring legacy will now have the promise of the Ram Temple fulfilled attached to it. Remember, the Prime Minister has been, as part of the RSS, closely associated with the Ram Temple agitation. In fact, he was in charge of orchestrating and navigating BJP leader L.K. Advani's Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in the late 80s. Now, the Ram Lala idol underwent a ceremonial bathing on Sunday with 114 pitchers filled with Aushadhi Yukt, medicated water and sacred water brought from various pilgrimage sites of India. In fact, several invitees have already arrived in Ayodhya on Sunday, with others expected to arrive today morning. With the centre declaring half-day off on January 22nd, which is today, and many others following suit, millions of people are anticipated to witness this event live on TV. Indian film personalities Kangana Ranaut, Shefali Shah, Pawan Kalyan and Randeep Hooda are among those who have already arrived in Ayodhya ahead of the consecration ceremony. Renowned actor Rajnikant and music composer Shankar Mahadevan have also arrived as part of the Pran Pratishtha ceremony. Approximately 8,000 individuals are invited for today's ceremony, and the exclusive A-list includes 506 A-listers consisting of prominent politicians, leading industrialists, top film stars, sports people, diplomats, judges and high priests. Let me go across to my colleague Himanshu Shekhar, who's reporting from Ayodhya. Himanshu, clearly a lot of enthusiasm across the country, and Ayodhya, I'm sure, is where all the action is. And tell us what is happening. We've been seeing so much enthusiasm sort of like build up in the last 1 week. Tell us what is happening in Ayodhya right now. Well, the mood is upbeat, and you can see Ayodhya is all decked up with images of Lord Ram, Sita and Lord Hanuman. And this is the route through which many of the special invitees will go inside the Ram Mandir temple. Now, on my left side, just a few hundred meters from here, is the new Ram Mandir complex. And this is the route through which many of the special invitees will actually be walking to the new Ram Mandir complex. And thousands of special invitees actually have arrived in Ayodhya. And I have a special invitee with me, Abhay Kumar Banwal. Abhay Kumar Banwal is from Asansol, and in 1990, during Kar Seva, he was grievously injured in police firing here, exactly at this place in the Ram Mandir complex, and he has been specially invited to attend Lord Ram's Pran Pratishtha ceremony. Abhay ji,
क्या कभी सोचा था कि आपको इस तरह से विशेष अतिथि के तौर पर इनवाइट किया जाएगा, एक नया राम मंदिर का निर्माण होगा? मैं एक बात बता दूं, प्रभु ने जब मुझे जीवित रखा गोली लगने के बावजूद, तो मुझे पूरा विश्वास था कि एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा आज या कल, और मैं उसमें भगवान का राज्याभिषेक के वक्त मैं मौजूद रहूंगा। ये मुझे पूरी तरह विश्वास था। So history is being made today in Ayodhya. या इससे न्यू हिस्ट्री, हमारे हिंदू धर्म के लिए ये एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और राम राज्य आ गया है। What is the significance? I mean, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक शुरुआत है। जो मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने कहा हम 13 मंदिर इस परिसर में बनाना चाहते हैं। ये शुरुआत है, अभी तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आज प्रभु का, हमारे हिंदू सनातन धर्म का आज ये नींव पड़ी है हमारे देश में। अभी तक हम हिंदू माने बहुत ही, हम लोगों के साथ सच पूछिए तो बहुत ही सौतेले तरह का व्यवहार हुआ था, और अब हमारे देश में हमारा बुनियाद पड़ रहा है राम मंदिर के रूप में, और इसके बाद और बहुत कुछ देखना है हमें। शायद प्रभु ने मुझे इसीलिए जीवित रखा है आज तक। जी बनवाल जी, आपके जैसे जो अतिथि हैं उनको क्या क्या दिया गया है? एंट्री पास एक बार दिखाएं आप। ये एंट्री पास है जी, इसमें QR कोड भी है। हाँ, और ये पवन जरा दिखाएं इसमें। दिस इज द entry pass given to the invitees, and you can see the QR code here, and of course lots of security arrangement is here, and without the QR code nobody is allowed to enter. और एक invitation card भी आपको मिला है, and this is the invitation card which is mandatory to enter the new Ram Mandir complex today. और आपको ये कब मिला, ये जरा बताइए। When did you give and who came to give this to you? कुछ लोग आए थे मेरे पास, 4-5 लोग। उन्होंने मुझे कहा, आकर के दे के गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा नाम बोलने का नहीं बोलना है। तो और ये मुझे सूचना लगभग 1 महीने पहले ही मिल गई थी। मेरे व्हाट्सएप में ये आ गया था कि आप आमंत्रित हो और प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में आप वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप सच बताऊँ, मैं 1 महीने से सोया नहीं हूँ। बस 22 तारीख का इंतज़ार था, जो अब आने वाला है। बस कुछ ही पल में प्रभु का दिव्य दर्शन होगा, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान का राज्याभिषेक होगा। जी, बहुत खुश हूँ। So history, thank you very much for talking to NDTV. So history clearly is being made in Ayodhya today, and with the sentiment that we just heard from Abhay Banwal, of course, is a reflection of the change in the mood here in Ayodhya. And as you can see behind me, there are hundreds and hundreds of photos and images of Lord Ram, Sita, Hanuman, and there's a small rath here also, you can say, placed here with an image of Lord Ram. And this is the route through which thousands of saints and special invitees will actually walk through to reach the new Mandir complex here in Ram Janmbhoomi to witness the historical Lord Ram's Pran Pratishtha ceremony. That's right. Thank you, Manshu. Let me tell NDTV viewers that we have a team of dedicated reporters who are stationed in Ayodhya, bringing you live every update in the run-up to the Pran Pratishtha ceremony. We're tracking all the developments. Keep watching. Now let's go to Tanishq, also my colleague who has been tracking this, the processes that went into Pran Pratishtha ceremony. Tanishq joins us from Rampath. Tanishq, tell us what is happening there. We heard about Dharampath, Rampath, and the entire infrastructure development that Ayodhya has seen in the last few years. Tell us what is going to happen now, and also take us through the logistics and security arrangements, because this is clearly the biggest event that Ayodhya has seen. So tell us what are the processes, what are the checks that have been put on ground? Vasudha, before talking about the security, I would like to show you the colors. I am right now on Rampath, and this is Bam Rasiya Ka Nagada from Mathura, Vrindavan. So on this whole Rampath, several cultural dances, music, performances have been organized, and this is Bam Rasiya Ka Nagada from Mathura, Vrindavan, and all these cultural programs have been organized, and you can see the enthusiasm with which they are beating the drums. They are beating the drums on the Rampath, and this goes along all the way
from Lata Mangeshkar Chowk to Rampad. This is the view here. Cultural programs, dances, folk songs, traditional dances we might not even have heard of. I would just like to give you, our viewers, a little music of let us first know a little more. क्या नाम है सर आपका? मेरा हंसराज सिंह। तो ये इसके बारे में बताइए, कौन सा ये है? ये ब्रज का लोक नृत्य है, डांस करते हैं बम रसिया पे, और स्वागत के लिए भी आते हैं। हाँ, ये स्वागत के लिए बजाया जाता है। ये स्वागत के लिए बजाया जाता है। So Vasudha, ये स्वागत के लिए बजाया जाता है. This is for welcome. Again, you know, a lot of celebrities are coming and this is sort of a welcome, traditional welcome. तो कितने लोग हो आप लोग, कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे इसके? अपने बारे में थोड़ा बताइए। जिस दिन से डेट रख गई थी उसी दिन से तैयारी कर रहे हैं हम। 22 जनवरी जब से सुना है कि 22 जनवरी को मंदिर का वो उद्घाटन हो रहा है, उसी दिन से हमें अलग से खुशी महसूस होने लगी और सोचने लगे कि अब हम अयोध्या जाएंगे। I would like to show you the drum beating once again. You can this is you can see the scene there. But yes, talking about security, this is of course massive security deployment. I would like to show you from there. You know, the movement has been restricted, and you know, a lot of security deployment all over the city. There are checkposts, there are barricading all along. This is right now in Ayodhya and Rampad. You can see constant moving of trucks of security personnel, be it the UP police, be it the SPG, be it the ATS commandos. All of them are moving. This is through the Lata Mangeshkar Chowk, and this road leads to straight to the Ram Mandir entrance. Yes. Right, thank you Tanishq for joining us with those details. Ayodhya truly is drenched in the colours of Ram. Let me go across to my studio guests right now, Shri Pundarik Goswami, who is a Mahant, Kapil Kumar, who is a historian, Professor Kumar, Desh Ratan Nigam, an advocate and also political analyst, Mr. Anurag Verma, who is a senior journalist and also consulting editor. We have Acharya Ram Gopal Shukla, who's in charge of the Birla Temple in Mandir Marg. And we also have Acharya Dr. Rajesh Ojha, who's the Pithadishwar of the Shri Sanatan Dharm Shiv Mandir. Thank you very much for joining us, all of you. Let me go across to Deshratan Nigam first, sir. You know, the consecration of the Ram Temple is being seen as this new defining moment for new India. There is history, there is politics. Of course, there have been legal issues to this, and that has been sort of in some ways resolved. How do you see this? Do you see this as closure, or do you see this as a new beginning? And what does this mean for the country's future? Vasudha, first and foremost, we are seeing this Pran Pratishtha during our lifetime. Who could have imagined? And that kind of a moment, you know, makes you very emotional. And it's not yet sunk in with the people, the historical impact that this will have on this country. The struggle of almost 500 years and the resolve of the people that they did not leave this sangharsh, I would say, the fight for restoration of the temple of Ram Lala. Lakhs of people died during the fight. Back and forth, the fight continued to take place. And in 1885, when the first litigation was filed, I think the first brick was laid down at that point of time. And subsequently, the Supreme Court's historic judgment that came, you know, clearly spelled that the truth cannot be hidden anymore. It was a fight between the truth and untruth, and something, our civilization, the people who continued our civilization, it was fight for our civilization and its continuity. Right. And nobody can say that the Ram Mandir went into the background. It was in the hearts of the people. Maybe it was not visible to those, but the people continued the fight. And everybody contributed, the smallest person to the biggest leader. There are some, because of the politics, do not want to say it in public,
but they themselves wished inside their own heart that the Ram Mandir should come up at the very same place. Right. And therefore, in my opinion, I think Ram Mandir today is just beyond politics and beyond everything else. It's a Right. new history and a new foundation which is being laid for this country. Right. Ram Mandir today is beyond politics, and this is the victory of people who have fought for it regardless of all the problems that they face. Time for a short break. We'll be back with more updates on the other side. Brought to you. Welcome to Serious Business on NDTV. $1 has only secured 0.6 cents of private capital. That needs to fundamentally change. By mid-century, India's economy will grow eightfold. One topic, When a family comes out of the poverty line, what would be the first asset class they would buy? It's gold. one speaker, It's the biggest attack on Jews since the Holocaust. If you want to control inflation, you need to play the trade policy. UPI, Aadhaar, all of that, where India is well ahead of the West. 5 trillion is a short-term goal. I would like to see India becoming a $30 trillion economy. One of the key themes at the World Economic Forum meet here in Davos, Switzerland is artificial intelligence, the future of AI, generative AI. We've got a wonderful guest with us, Roshni Nader with us, the chairperson of HCL Tech. Thanks very much, Roshni, for being with us. What is HCL doing presently as far as AI is concerned? What are some of the technologies and ideas that you're exploring? So I think with AI, there are two parts. So one is what we're doing in terms of working with a lot of our customers. We have more than 150 generative AI labs all over the world, in India as well, working on specific use case for each industry. So I think that's one part. The other is, we are an organization of 250,000 people, and a lot of them will have to learn a lot of these new technologies. So we already have about 70,000 of our workforce, which is upskilling at the moment in these new skills. And you have to realize that I think a lot of people talk about AI as the technology and what it's going to do in the industry and in the world. But in our industry, where the average age is 25, most of our young people are already users of generative AI in life. So I think that having to retrain them and upskill them into how to use it in the workplace and how to use it for the solutions is the two aspects that one has to focus on. What about the entire argument that there's going to be a lot of retrenchment, a lot of people losing jobs because of AI? So I can just say that we've had a net addition this year, including in the last quarter as well. And again, I think the dynamics of the work pyramid in an organization and an industry such as ours changes. But, we've had cycles of automation before. We've had cycles of new technology before. If at all, it has only created an ecosystem of applications around AI. AI and generative AI in itself, even to a customer, is not of any use unless they're able to work around their data strategy, data infrastructure, their cloud strategy. So I think there are lots of new skills which are replacing old skills where you can upskill people, but it's not necessarily replacing jobs. Can you just crystal gaze a little bit for us? We know what some of the generative AI apps are right now. We know some of the AI apps or AI programs and solutions which are available. 5 years later, what are some of the ideas we may be seeing coming online? So I think, we tend to overestimate AI's impact in the short term, but tend to underestimate it in the medium to long term. So I think even in 5 years, I think most of the innovation that you're going to see around AI is going to be around productivity and efficiency analytics. And I think that's what we're seeing now as well. how often have you turned away from debates
that descend into endless fights. How often have you turned Well, the Pran Pratishtha is all set to happen within a few hours from now. Prime Minister himself is going to participate in it. Let me go across to my studio guest, Acharya Ram Gopal Shukla, who's the president of the Archak Samaj. Mr. Shukla, ये बताइए कि ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसका क्या महत्व है और इसको किस तरह तय किया जाता है, और आज पूरे दिन जो रिचुअल्स होंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और इसमें क्या प्रोसेसेस होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है जीवन डालना, उसमें जीवन। जो मूर्ति ऐसे तो बहुत जगह बनती है, प्रस्तर बनाया, कारीगर ने बनाया, उनको लगाया। इतने दिन से जो 16 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है उसकी ये है कि किस प्रकार से उसमें जीवन आए, और इसीलिए जो अपना 12:29 और 8 सेकंड से जो मुहूर्त 80-84 सेकंड का है, उसका अभिजीत मुहूर्त का मतलब ये होता है कि अभिजीत मुहूर्त में और मृगशिर नक्षत्र है, अपना ये जितने भी हैं, रवि योग है, मृगशिरा नक्षत्र है, द्वादशी है, ये सब मिलकर के उस समय जो है ना, जब भगवान को पट्टी खोली जाएगी, उनको शीशा दिखाया जाएगा, तो उनकी ऊर्जा और उनका तेज उस पहले शीशे में समाहित हो। क्योंकि इतने दिन से जो यज्ञ चल रहा है, इतने दिन से हवन चल रहा है, इतने दिन से पूजन चल रहा है, इतने शय्यादिभास और फलादिभास और जो हो रहा है, कितने वैदिक विद्वान वेद मंत्रों के माध्यम से उसको केवल इसलिए कि जागृत देव हमारे जागृत हों, और जब उनकी पट्टी खोली जाएगी तो इसके बाद में मधु से, घर से, उनको अंजन सलाका से उनको क्योंकि उनकी नजर एकदम अगर पड़ेगी तो वो नजर जब पड़ेगी तो कहीं ऐसा ना वो तेज कहाँ समाहित होगा, वो शीशे में स्वयं समाहित होकर के रिफ्लेक्ट होगा और फिर वापस वहां जाएगा। और तब जब भगवान राम राघवेंद्र सरकार देखेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी देख रहे हैं, हाँ। लेकिन जो मनुष्य की, जो व्यक्ति की जो कांक्षा है कि प्रभु हमें देख रहे हैं, तो वो जब नजर पड़ेगी तो वो अभिजीत मुहूर्त है, हाँ। वो परम पुनीत माना जाता है। और उसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, द्वादशी है, पौष मास है, हाँ। इस सबके और 84 सेकंड का जो है, शुक्ला जी, बस मारिया शकील हमसे जुड़ रही हैं। मारिया शकील is my colleague who's tracking Ayodhya developments for us. Maria, today is the D-Day and we know more than 500 people have already arrived and 8,000 people, guests, A-listers are going to be part of this, and this is who's who from the entire country and also abroad. Tell us, what is Ayodhya looking like today? Absolutely ethereal, if I may use that word. Good morning, Vasudha, and good morning to the viewers of NDTV. I'm coming to you live from Ram Ki Peri. This is where we have been doing the coverage from. There are barricades in most part of Ayodhya, so the Ram Path and the entire area near that chowk, which is the Lata Mangeshkar chowk, there are several barricades which have been put because the VVIPs or all those who will be present during the consecration ceremony have started arriving. We did speak to the DG of Law and Order here, Vasudha, Mr. Prashant Kumar, last evening while he was monitoring late at night and ensuring that there were last-minute checks and balances put in place. So he did tell us that there are number of chartered planes which have arrived already, and a number of them would arrive. So by now we can see, perhaps expect Amitabh Bachchan and several superstars of Bollywood having arrived. Rajnikant arrived last night. So did several, those who have been called from outside India. Many of them like oncologists, Bharat Barei and many others. So let me tell you what will happen here. You can see those diyas, perhaps if the camera could zoom in and show that there are those diyas which have been placed. So in some time from now, the lining up of diya will begin and the diyas will completely light up this Ram Ki Peri, Vasudha. So it will be mini Diwali, which will be celebrated here, almost like a Deepotsav, which is often celebrated at Ram Ki Peri and which has got now the, the Guinness Book of World Record status. So the preparations are over. It's the D-Day, as you said. In another 5 hours, perhaps, or even less, the Prime Minister would be arriving here. And with that, we can expect
the ceremony to begin. Nrpendra Mishra, who is the head of the construction committee, I spoke to him yesterday, Vasudha, and he was telling me about how the tons of flowers that have arrived, and there are 500 volunteers who have been busy for the last few days to ensure that the flower arrangement inside the temple premises, various dooms that are there, are all decked up. It's white marble. It's beautiful white marble which has come all the way from Bakrana in Rajasthan, which has been used, and various technology that he spoke about. But overall, that fervor that we keep talking about, people from different parts of the world, many of them who will not perhaps get a glimpse of Lord Ram today, have all come here. They want to perhaps capture and soak in what is there in the air here, so that that we keep talking about, that crescendo that is reached of excitement is already there, and the ceremony, which will be broadcast on multiple channels, will begin. Doordarshan, Vasudha, has put almost 87 cameras which will be capturing of course the entire ceremony. There are 47 cameras inside the premises which will be capturing each and every movement of the VVIPs who will be entering the premises from 10 a.m. now, and around 11 is when we have been told that all those who have been invited have been told to be seated, because 10:30 is when the Prime Minister arrives. And this beautiful Lord Hanuman painting or sketch that we have before us, Vasudha, has almost been appropriated, I would say, by NDTV. For the last 24 hours, this has been our image, almost become like a selfie point. Other camera units often come here, and the interesting part of this is that it's a sketch which has been made from 600, there are 600 parts. All of them have been brought together. It's a collage of painting sketches with Lord Hanuman. So, there are several of those who came here from different parts. As I've been saying, I have been interacting with many of them who have walked all the way from Jharkhand, a young lady that we spoke to yesterday. So that's the level of fervor and devotion that we are seeing here in Ayodhya. And the entire road where Tanishq is reporting from is actually decked up with flowers, so that it is actually giving you a feel of a heritage city which is ready to welcome all the tourists, the footfalls of which will go up perhaps phenomenally in the next few days and months to come. Right. Right, Maria, that's so wonderfully said. Clearly, Ayodhya is drenched in colours of Ram. We also have Tanishq with us. Tanishq, what's happening at Ram Path now? And just about 4 hours to go for the ceremonies to begin. And we also have Pratibha Raman joining us from Bangalore. First to Tanishq. Tanishq, tell us what's happening at Ram Path. Vasudha, you can see colors all around you. This is the traditional dance from Prayagraj. These are the colors all around you. You can see this is along the stretch of Rampath, and you can see the traditional dances happening here at the Rampath. This is the traditional dance from Prayagraj, and this goes along all the stretch. There are traditional dances representing different parts of UP. Prayagraj, Mathura, Vrindavan, Agra, all parts of UP, it represents the cultural dance. But you can see here, small kids performing here the traditional dance. आप बात करेंगे? आपका नाम? समृद्धि गौर. इस डांस के बारे में बताइए. डांस के बारे में बताइए. ये ठेठिया नृत्य है हमारे प्रयागराज का लोक. आप लोग की कितने लोगों की टीम है? हम लोग ने बहुत दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करी, तब हम लोग इसको सदा पाए. प्रैक्टिस के वजह से ही सदा सकते हैं. कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की टीम है? हाँ, ये 17-18 लोगों की. Okay, thank you. So you can see Vasudha, practicing from such a long time for this traditional dance. This is the view here. Cultural programs going on here at Ram Path. Yes, over to you. Right. Folk dancers, songs dedicated to Lord Ram, loudspeakers and streets decked up with flowers, lights and saffron flags. This temple town of Ayodhya is buzzing with a lot of activity. Let me go across to Pratibha Raman, who's joining us from Bengaluru. Pratibha, tell us what is happening in Karnataka. We saw a lot of politics play out in the last few days with both DK Shivakumar and
and Siddaramaiah making statements, and today, of course, is the day of activity. How do you see this sort of playing out today, and what are the politicians doing, and what are the people saying? Well, in fact, Bengaluru as well as Karnataka adorns a very festive look for the inauguration of Ram Mandir today. I'm in one of the oldest temples here in Bengaluru, which is in central Bangalore, called Vasant Nagar. This is basically a Hanuman temple, and I remember visiting this temple right since my childhood. Every exam or every board exam, I remember myself stationed here and praying hard. And I guess I have borne the fruits of it all with the blessings of this particular temple as well as the deity here. And because it is a temple that is dedicated to Lord Hanuman, it is also a place that is also dedicated to Lord Ram. And in a short while from now, we expect former CM of Karnataka, Baswaraj Bommai, who would be here for the puja. The day began with the abhishek that happened for all the idols here at this temple. And right now, in fact, the decoration of all the idols are going on, and a short while from now, the idols would be ready for the grand celebration as well as the puja as Mr. Bommai arrives. Different politicians across Karnataka have been visiting temples and organizing pujas in different parts of their constituencies and areas. And in this evening, we also will witness a Deepotsav that will happen in an area called Jayanagar, which will be organized by Karnataka MP Tejasvi Surya. In the meantime, we also have pujas that is being organized across different temples here in Karnataka. One of the significant politically relevant news is that Mr. Siddaramaiah, who's Karnataka CM, would be inaugurating a Ram temple in Whitefield, which is the IT area of Bengaluru. These are some of the things that we are picking up right now, but overall, a definite festive look despite the political ramifications that we saw with respect to the Congress in power in Karnataka. Right. Thank you, Pratibha Raman, for joining us with those details. Let me go across to my colleague Amritanshi, who joins us from Bhopal in Madhya Pradesh. Amritanshi, tell us what is happening there. Clearly, there is a lot of enthusiasm across country. Madhya Pradesh has recently seen a new government being put in place. What is the mood like? Yeah, totally. Whole Madhya Pradesh is celebrating today this occasion, as this is a very big occasion for all the people, and especially for the people who worship Lord Ram. I'm right now present at the BJP office, and this is a very special place because here's a temple also. But many Divyangjans, the disabled people, are doing the recitation of Akhand Ramayana part since 11 a.m. yesterday, and they are reciting the Akhand Ramayana part with the help of a braille. BJP state president also felicitated these people, and this Akhand Ramayana part will end at 11 a.m. like around after 24 hours today. And the people are very excited. All the Ram Bhakts are very excited. They are reciting this in the braille. As you can see, it's a very special thing because of Ram, they are like sitting here since like 24 hours in like the cold weather, but they are reciting this. As you can see, this is the book of the braille in which Ramayana is written, and they are reciting the part. We'll talk to them that how much excited they are. भैया कितने उत्साह है, राम काज कर रहे हैं, भले ही दिख नहीं सकता आपको ये मतलब, लेकिन आप फिर भी पढ़ पा रहे हैं इसको, अलग से आपने ये अखंड रामायण के पार्ट में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत उत्साह है कि ये अखंड रामायण का पढ़ने का हमें अवसर मिला है, और वो भी राम लला के चरणों में। हमें बहुत उत्साह है हमारे विकलांग भाइयों को, हमें ब्रेल लिपि द्वारा हम पढ़ रहे हैं, जो कि आसान नहीं होता है। हम इसे आसानी से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। 500 सालों का इंतज़ार आज खत्म हो रहा है। पिछले 24 घंटे से आप यहीं पर डटे हुए हैं, राम का नाम ले रहे हैं। 500 साल का जो इंतजार आज ख़त्म हुआ है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 24 घंटे से पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ते ही जाए। ये खुशी है, ये हमें समा नहीं रही है। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत उत्साह है कि हमें ये 500 साल का वर्ष का ख़त्म हुआ है, और पूरे भारतवर्ष को इससे उत्साह है और सब उत्साह बना रहे हैं। Surely they are very excited. As you can see, they are like constantly reciting this braille, and this is the enthusiasm of whole Madhya Pradesh and maybe whole India, that the Ram is coming today, and the excitement is on the top level for every person in Madhya Pradesh right now. Right. Thank you, Amritanshi, for bringing us those voices from Madhya Pradesh. Time for a short break. More news and updates on the other side.
One of the key themes at the World Economic Forum in Davos is the entire issue of ensuring that sustainable development is looked at from all perspectives, certainly the perspective of gender, very, very important indeed. Also engendering health research is an area which is of interest to India. It is certainly an interest to my very special guest, Smriti Irani, the Minister. Thanks, ma'am, very much for being with us. You speak about empowerment at so many levels. When it comes to health, ultimately health is about empowerment. And yet, if you look at it statistically, the numbers that we get for women around the world, and certainly in India, are often inaccurate. For example, I was reading 25% of the lives of women is marred by poor health, and yet health research doesn't seem to reflect that enough. Is that not a big problem? I think we've not managed to make a case for enhanced investments in women's health from the perspective of research. Women happen to be at the receiving end of pharmaceutical support or institutionalized medical support only when things got aggravated vis-a-vis their own health. I can speak for the Indian cultural context. There were women who were in our families and our communities self-medicating because they didn't want their health, not only financially but also psychologically, to be of burden to their familial surroundings. I also believe India has made now a case for financial enhanced investments in just gender across the board. So you talk about health. We have now the world's largest healthcare program under Ayushman Bharat, 440 million Indians plus who are a part of this service, which services over 1900 diseases including cancer, cardiological challenges across 27,000 hospitals in the country. For the world, it has taken quite a while to accept that 440 million needs can be serviced from the treasury without a single rupee coming from the private sector. So we have made a case for good governance, but also phygital governance. Right. So we have brick and mortar infrastructure on medical issues, be it your Janaushadhi Kendras, 10,000 of them across the country, where your pharmaceutical needs can be met at 90% less of the cost as in the open market. What is fascinating is it's not serving only the poorest of the poor, but also the middle class and the lower middle class. So you're making affordable healthcare a reality for the middle class as well. Then you have this whole segment of 1 lakh health and wellness centers which are dedicated. Ayodhya is buzzing with a lot of activity ahead of the consecration ceremony that is set to begin in a few hours from now. Let me go across to Acharya Dr. Rajesh Ojha, who is the Pitadishwar of the Shri Sanatan Dharm Shiv Mandir. सर ये बताइए कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके आगे जो प्रोसेसेस हुए थे, कलश पूजा हुआ था, जलादिवास हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था और आज क्या-क्या प्रोसेसेस होंगे? सबसे पहले वसुधा जी, आज सभी पूरे देशवासियों को जय श्री राम, जय सीताराम। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजन से पहले वह पत्थर होता है, परंतु हमारे सनातन धर्म में जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और मंत्रों के द्वारा जो अनुष्ठान जाप किया जाता है, उससे उस मूर्ति में एक उत्तेजना के लिए, एक तेज के लिए हम इतना वैदिक शास्त्रों का जलाधिवास, अन्नादिवास, घृतादिवास, लक्ष्मीवास, अनेकों वासों से और अभिमंत्रित। आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंतःकरण में वैदिक 121 से विद्वानों के द्वारा वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था और नित्य आप देख 16 तारीख से ही ये सारा कार्य चल रहा है। जो आज प्रातःकाल यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद भगवान जी को आज जहाँ विराजमान किए, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं और 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ था। और वही जो पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र में आज इस समय वह कई वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वह आज पूर्ण होने का कुछ ही पलों में हम सब लोग उस ओर चलेंगे और विद्वानों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, और आज उस समय 56 प्रकार के ध्वनियों से मंगल ध्वनि किया जाएगा, जो 12
11 मिनट से अभिजीत नक्षत्र चालू होगा जो 12:30 तक रहेगा, अर्थात कहा जाए 1 बजे तक ये सारा कार्य संपादित होगा। परंतु 12:29 और 8 सेकंड से लेकर के 12:30 84 सेकंड का वह मुहूर्त है जिसमें भगवान का, जो आपने देखा होगा ना कि मूर्ति पे पट्टी बांधी हुई है, अर्थात कहा गया कि जो मंत्रों के द्वारा तेज था वह उस मूर्ति में समाहित हुआ। अब किसी मूर्ति के जब आप तेज खोलेंगे तो उसका दर्पण रखा जाता है, उस दर्पण से क्या होता है कि जो सामने रिफ्लेक्शन है वो पुनः राम में है। राम सबको देख रहे हैं परंतु उस तेज के सामने कोई पड़ना नहीं चाहता, तो वह स्वयं राम के अंतःकरण में जाता है और आज वही प्रकाश पुंज हमें और आप सबको प्राप्त होगा। बड़े सौहार्द का ये दिवाली है। आप भी मानिए कि अब तक भारत में एक दिवाली होती थी, अब 2 दिवाली होगी और आज आनंद का दिवाली है ये। Let me go across to Namrata, who's joining us from Times Square. Clearly, the enthusiasm of the Pran Pratishtha ceremony is not limited to India alone. Namrata, tell us what is happening at the Times Square. We've had a day full of celebrations here at the cultural and economic crossroads of the world. Times Square really represents the heart, the pulse, the beating sort of heartbeats of the universe. And in this midst, we had celebrations with chants, the dhol, a lot of Tesla car rallies, the Ram Mandir on the Nasdaq Stock Exchange, and even now there are many who are braving the -10°C temperatures to come here and wait for the formal pictures of the consecration ceremony. I just want to talk about 2 important things here. One, there is an identity which is a Hindu-American identity which has recently shaped here in United States as well as the rest of the world. Whether you look at Rishi Sunak, the UK Prime Minister, or Vivek Ramaswamy, here a presidential candidate, you've seen a very open acceptance of what their religion, their culture and their roots mean. This is being voiced, it's been held with pride. And I think in this landscape, a lot of Indian Americans here are telling me that they're looking at this as the start of a new era for India, both in terms of cultural, spiritual and economic importance. And in some ways, the Ram Rajya, which is supposed to signify love, tolerance, peace and prosperity for all, being tied with the values here as well. So Hindu values being tied with the universal values here in the United States of America as well. And that, I think, is the common dominant theme coming through very strongly on this January, freezing January, but with celebrated with a lot of warmth and a lot of pride by Indian Americans all across the world. Thank you, Namrata, for bringing us the colors from Times Square of the Indian American community. Going across to Mr. Anurag Verma. Sir, there is a lot of politics to this also, but what does this incident, what does this occasion mean for the enduring legacy of Prime Minister Narendra Modi? Because we know that he has been associated with the Ram Temple agitation for years now, and he's seen as this man who is the face of India's development. What is this temple project? Is this the legacy of a promise that has been fulfilled? How do you think this will impact, influence his legacy as a politician, as a leader? Look, the entire political system, entire social structure has changed with this movement. When Ram Mandir was demolished by Mughals, Mir Baqi, that was also politics. Even when others are blaming BJP for playing politics around Ram Mandir, they should accept everybody has played politics around Ram Mandir, whether it is Jawaharlal Nehru, whether it is Mulayam Singh Yadav or Lalu Prasad Yadav or any leader of Congress party. Everybody has played politics around Ram Mandir. Then why they are upset? If BJP is playing politics, what they blame? If BJP is playing politics, if we accept, then what is harm in that? Why they are upset? Because they have also played politics around Ram Mandir only. When Mulayam Singh Yadav ordered firing on car sevaks, that was a politics because he wanted to become leader of a particular community. Right.
Professor Kumar, let me ask you about this history of Ayodhya, because, you know, as when we were children, we were also taught that there is a Buddhist element to Ayodhya. And, you know, now that, of course, we all learnt about the Ram Temple movement, but it was from the prism of, you know, politics. What is the historicity, and how do you see this occasion will define the history of Ayodhya in the coming years? The thing is that when people start distorting history, for example, all reference to Ayodhya, whether it is in the one parv of Mahabharata, whether it is in second Puran, whether it is in even Buddhist literature or Jain literature, that has been declared as myth by these so-called historians. And the irony is, when they talk of sources of history, in literature they will put up the epics. And when it comes to the epics describing them, then it is mythology. And Raghuvansh, Kalidas what writes, I think you look at his writings, you see, compare it with any of those. They will say Kalidas was the Shakespeare of India. But then what you say, Shakespeare, what is writing, depicts the society. But what Kalidas is writing, doesn't it depict the society? So all these aspects, and you look at Buddhism. You see, so many, India has given 5 religions to the world. Sanatan, Jainism, Buddhism, Sikhism, I will say 4 religions. And none of these religions has ever crossed the boundaries of India with a sword to convert people. Right. Okay. And this is now the external force element which is creating this difference between Hindu and Bauddha and Jain and all these aspects. Right. How many Jainis are there today in Ayodhya? How Buddhists are praying for Ram today in Ayodhya? And this is the pulse of India, you know, the heart of India. And I am very happy to say that what the Buddhist Huensang has described about Saket, you know, in Kaushal, the Ayodhya Nagari, you know, today that Ayodhya is again standing in that glamour, rather I will say much, you know, more glamorous than the way it has been described in earlier periods. And this is what has awakened the country. And I am not at all hesitant. Yes, if people say it is politics because I want to ask one question. Which country in the world religion has been kept away from politics? Okay. Right. Okay. Yes. Time for a short break. More news and updates on the other side. प्रातःकाल उठते हैं, कहते हैं भैया राम राम। गाँव में अनाज तौला जाता है तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। हमारे यहाँ बालक का जन्म हो तो गीत राम के गाए जाते हैं, विवाह हो तो गीत राम के, दुख में भी हे राम, हाय राम, दुनिया छोड़कर जाए तो भी राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे जीवन में अमुस्यूत है, राम हमारे सांसों में है। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। Ayodhya is set for the grand temple opening.
a journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हुआ. Pilgrims and visitors head to the holy city for the consecration of the Ram temple. प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है. It's a historic event. The ancient city abuzz with change, where modern infrastructure meets age-old traditions. Every aspect of Ayodhya's transformation and the grand temple opening on NDTV 24/7. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. सीता जी के परिवार की तरफ से अपने को साली मानते हुए राम को गाली देते हुए उनको जीजा मानते हुए पूजा होती है। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं रसिकों के, जब रात में भोजन कलेवा कराया जाता है तो राम जी को गाली सुनाई जाती है। बाप रे। और ये राम जी उसको प्रेम से सुनते हैं और भोजन करते हैं, ये परंपरा में निर्दिष्ट है। How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution. Many prominent guests have already arrived in Ayodhya for the Pran Pratishtha ceremony that is set to begin in a few hours from now. My colleague Sumit Avasthi has caught up with Swami Ramdev Yoga Guru, who is also attending the Pran Pratishtha. Let's listen in. रामदेव जी मेरे साथ आ रहे हैं। आई कैन सी हिम। रामदेव जी के पास अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे हमारी लाइव टेलीकास्ट में। स्वामी जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी ने प्रॉमिस किया है कि 5 से 7 मिनट ही रहेंगे। ये हमारा अहोभाग्य है कि स्वामी जी हमारे साथ होंगे। आ गए हैं स्वामी जी इस वक्त एनडीटीवी पर। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सुमित भाई, ये हमारे बहुत पुराने चहेते हैं। और ये बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, ये बड़ी प्यारी है। कागज में पेंसिल स्केच से बने, 6 महीने लगे बनाने में। 600 पन्ने हैं ये जोड़े हैं इन्होंने। राम राम राम। खास तौर पर एनडीटीवी के साथ लगातार बने हुए हैं। और ऊपर हनुमान जी हैं। हाँ हनुमान जी हैं। लेकिन ये सच में बस्ती के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हो जाए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां। ए राम कितना सुंदर बना है। पेंसिल एक एक चीज से बनाया है। अभी हम एक भजन गा रहे थे। जी जी। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की डगरिया। तो अब मैंने इसमें जोड़ा, रघुकुल नंदन अब आएंगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। तो कितना सौभाग्य है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक राम राज्य की नींव रखी जा रही है कि हम राम जी के आदर्शों पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनके जैसे उन्होंने आचरण किया उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे जी। और योग कर्म योग के पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके इस भारत को आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक, सामाजिक सब प्रकार की नैतिक महाशक्ति बनाएंगे। तो ये मात्र एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने का जो सपना था हमारे सब पूर्वजों का, अब वो साकार होगा। सुमित जी, रामदेव जी आपके तो नाम में भी राम है। हम लोग राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ इकट्ठा है। कितना सौभाग्य मानते हैं अपने आप को, सौभाग्यवान। देखो भाई, ये आंदोलन की हमारी भी आंखें साक्षी हैं पिछले 55-56 सालों से जी। और ये 500 वर्षों का संघर्ष, उसके लिए कितने लोगों के बलिदान, तपस्या, राजनीतिक श्रेय तो यद्यपि मोदी जी को इस रूप में है कि जो कोई न कर सका। ये जज भी यही थे, सुप्रीम कोर्ट भी यही था, ये सब वकील भी यही थे। चीजों को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है। तो राजनीतिक श्रेय यद्यपि मोदी जी को है, संगठनात्मक श्रेय आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को है, लेकिन इसमें कितने साधु संत महात्माओं ने, कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने राजा महाराजाओं ने माने बहुत बड़ा तप किया है। तब जा करके जैसे
राम जी के काम में, ये देखो हमारे हनुमान जी आ गए। ऐसे कितनों ने अपनी अपनी आहुतियां दी हैं, तब जाकर के सौभाग्य मिला है। और इस सौभाग्य में आप और हम यहाँ पर अयोध्या में हैं। अयोध्या का पूरा नजारा बदला हुआ है। बिल्कुल। And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. One of the most important announcements which have been made over the last couple of days at the World Economic Forum and on the sidelines here in Davos, Switzerland, is the India growth story. There's nobody better placed to talk about growth in India than the RBI Governor. Mr. Shaktikanta Das joins us now. Thanks so very much for being with us. Sir, 7%. Extremely optimistic. It is in line, of course, with what some of the global projections are. What are some of the sectors driving this growth? You're talking of current year or next year? 24-25. Okay. Now let me also, Sure. start by saying that India has recovered from the recent volatilities and the uncertainties and the challenges, this multiple turmoil one after the other, health crisis followed by all these geopolitical crises. So India has emerged out of it a lot better. Our macroeconomic stability is far better than most other countries. Financial stability is also, our financial sector is also doing well. And the 7% growth in the current year, when we said it for current year, it looked optimistic. But as you know, the National Statistical Office has given a number of 7.3%. Now talking of 24-25, I made a statement in some other forum yesterday that we expect, I have a sense that the economy will touch a real GDP growth of 7% next year. And I said this on the basis of the overall macroeconomic conditions prevailing in the country. You see, all economic activities, the momentum of economic activities are remaining very positive. And we have reasons to believe that this positivity, this momentum will be maintained well into next year and beyond. I have made a statement also that India has now entered into a period of growth long haul. Yes. And economic activities are holding their ground. Momentum of economic activity is maintained. Aggregate demand conditions are remaining positive. Investment activity has started picking up, backed by continued high capital expenditure by the government. Private sector capex is also picking up, and agriculture sector in the current year and also expected to do better in the next year. So with all these confluence of factors and with a lot of activity also happening in with regard to investment in the new age technologies like fintech, in startups and technology based activities, that gives us the confidence to say that next year the growth would be touching about 7%. So inflation at what, 4.5%? That is what you're projecting? Next year average, yes, 4.5%. You see, immediately after the Ukraine war, our headline inflation had touched 7.8%. Now thereafter, because of the monetary policy actions which we have taken, which was also aided by the supply side measures taken by the government, inflation has been steadily coming down, and we are on our way to reach 4% target. But next year's average is expected to be 4.5%. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Good morning. It's a historic day today. The Pran Pratishtha of the Ayodhya Ram Temple is going to happen in a few hours from now. Prime Minister Narendra Modi himself is going to participate in it. Nearly 7,000 guests are going to be part of this high-profile event. We are tracking all developments for you. Our reporters are on ground in Ayodhya. Keep watching NDTV. But first, the headlines now.
All roads lead to Ayodhya, stage set for Ram Temple consecration. The temple town has turned into a fortress public holiday in Uttar Pradesh. Mega consecration ceremony in Ayodhya. Prime Minister Narendra Modi to land in Ayodhya around 10:30 a.m. today. The Pran Pratishtha ceremony is to begin around 12 noon. Prime Minister will also address a public meet after the ceremony. Who's who make a beeline for the temple run in Ayodhya? Celebrities, industrialists, politicians throng Ayodhya. Ram Temple fever grips from Ayodhya to Times Square. NDTV ground reports. Chaos at Congress Nyay Yatra in Assam. Rahul Gandhi has been stopped from entering a temple in Assam. Rahul Gandhi has been denied permission to enter till 3 p.m. Only one man can enter a temple today. This is how Rahul has responded. Bilkis Bano's rapists are back in jail. Bilkis Bano's rapists have surrendered at the Godhra jail. Supreme Court had refused their plea to extend the deadline. North India reels under cold wave. Dense fog across Delhi NCR. Over 20 Delhi-bound trains are running late. It's a historic day today, a day that will see the culmination of many conflicts, a closure of sorts, but also a new beginning in many ways. The Pran Pratishtha of the temple in Ayodhya is set to begin in a few hours from now. A little afternoon, 12:20 is the specific Abhijit Muhurat that has been preordained. Prime Minister Narendra Modi, RSS Chief Mohan Bhagwat, Uttar Pradesh Governor Anandibin Patel, Chief Minister Yogi Adityanath and Chief of the Ram Temple Trust, Mahant Nitya Gopal Das, will be among those present at the ceremony. This moment has profound spiritual, religious, political and historical significance. It's also a very important day for the Prime Minister, as his enduring legacy will now also have the promise of the Ram Temple fulfilled attached to it. Remember, the Prime Minister, as part of the RSS, has been closely associated with the Ram Temple agitation. In fact, he was in charge of orchestrating and navigating BJP leader L.K. Advani's Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in the late 80s. But what is happening in Ayodhya as the temple town gets ready for this massive ceremony? Let me go across to my colleague Tanishq Punjabi, who's reporting from the ground. Tanishq, just a few hours to go now, just about 3 hours. So tell us what is the latest? Well, Vasudha, the latest is that there are celebrations at every few hundred meters. There are celebrations right now, these people are performing, but I can show you devotees coming in electric buses here. Now the movement has started, vehicles are coming now. You can see movement has started, vehicles are coming, but also celebrations going on here in Ayodhya. You can see all VVIP movement taking place here in Ayodhya. I'm on the Rampath outside Ram Mandir, and all the invitees have started to arrive slowly. And this is the cultural program. That is going on here. We just like to listen. So these are the preparations that are going on. Here in Ayodhya. Yes, over to you. Thank you, Tanishq, for joining us. Let me go across to my colleague Maria. Maria, yesterday Nripendra Mishra said in an interview to you that it's a journey of 32 steps that a devotee undertakes to finally see that his dream of 500 years has been fulfilled. What is the enthusiasm like in Ayodhya now as the countdown begins to the final ceremony? Yes, Vasudha, we are at Ram Ki Paidi. There are a number of devotees who visit Hanuman Gadi before they actually will be entering the Ram temple. We have very esteemed guest Amish Tripathi is here in best of his clothes, and Ratan Sharda. We also have Badri Narayan. But before we go to the guests who have traveled with us to give us a sense of Ayodhya, I'm going to speak to those who have gathered here. Some early morning tea for you, Badri ji, and then
we are seeing the euphoria. You are warming up to the sense here. Yeah, tea and euphoria to visit this place and see this place. You know, the people emotion about this temple and inauguration of the temple create a kind of warmth in this weather of the cold. And people are coming from different part of India, and we see the way they are trying to enter in the gate and roaming around this place is really very, very. And what I observed, Maria, that the road are being cleaned. And you know, in Valmiki Ramayana there is a mention that उस रोड पर यहाँ के अयोध्या नगरी के सड़क रोज साफ होते थे और उसमें फूल बार-बार साफ हो रहे हैं. Amish, how does it feel to be in Ayodhya today? It feels amazing. You know, I was here just a few months back. We were shooting a documentary on the Ram Janmabhoomi ji, and we didn't think how would everything get finished in this much time. Within just a few months, everything is ready. And yes, as Badri ji said very rightly, it is very cold. But Lord Ram is a Suryavanshi, descent, from the solar dynasty. His son actually lights us all up from the inside and is warming us up. Jai Shri Ram. I did, of course. Is what you can't be in Ayodhya at this time and not have a tika. I can see another tika here. Oh yes, of course, because that's how the the wind blowing. So everybody loves to have tika and everybody loves to be part of the whole thing. See, we have been around for 3 days, imbibing, absorbing Ayodhya. We have been on foot for 2 days, traveling, me and Shantanu together. Saryu River, all the lanes, all the Dasharath Mahal, Kanak Mahal, the gate to the Mandir. The atmosphere is so fervent with devotion and so spiritual that you can do nothing but smile and, enjoy the feeling. Shantanu, welcome to the broadcast. But before I get you, a group here which has travelled all the way from Maharashtra. आप लोगों का 16 लोगों का ग्रुप है. 16 लोगों का ग्रुप है हमारा. कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हम कल रात को इधर आए. इधर कैमरा उधर है. हम कल रात को इधर आ गए संगमनेर से. कल सुबह बैठे थे. परसों शाम को बैठे थे. कल शाम को यहाँ पहुँच गए. रास्तों में बहुत दिक्कत आ गई. हर जगह पुलिस ने चौकी लगाई थी. वहाँ अड़ाया. फिर भी हम इधर आ गए. और यहाँ पर ठंड भी ज्यादा है. महाराष्ट्र में तो टेम्परेचर कम था. बहुत कम है. महाराष्ट्र में यहाँ पे ठंड में बहुत ज्यादा है. तो कितना ठंडे का कपड़ा भी सब लेकर आए. सब बहुत. ये ढांचा गिराने के लिए भी यहाँ पर जो कार सेवक थे उसमें से वो एक कार सेवक है. तो उसका ये भी आप भी आई हैं इनके साथ. अच्छा, आप भी सबके साथ आई हैं. आपका नाम क्या हुआ? कल्याणी. कल्याणी. क्या? कल्याणी. अच्छा, और कैसा लग रहा है यहाँ पर अयोध्या में? आज 22 तारीख है, आज ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं पहली बार इधर आई हूँ. पहली बार इतना बड़ा महोत्सव देखा है. और मैंने कभी इतना बड़ा महोत्सव देखा नहीं. अलग अलग राज्यों से इधर लोग आ रहे हैं. इधर का वातावरण एकदम राममय. हर तरफ भगवे झंडे लगे हुए. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. चलिए, और भी लोग बात करेंगे. आप लोग? हाँ, मैं कार सेवक को पहली बार भी आया था. 90 में बहनों भी आया था. ढांचे बांधने के लिए ऊपर चढ़े थे हम. हमारा और ये सब आप लोग पहन करके वहीं से आए. यहाँ पे खरीदा है आपने? संगमनेर से लाए. हम महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं. हम महाराष्ट्र से यहाँ आए. हमारे पास 6 कार सेवक यहाँ उपस्थित है. वो दोनों बार कार सेवा में. और उसके बाद कब आए थे? पिछली बार कब आए थे? पिछली बार 92 साल को आए थे. जब उसके बाद से नहीं आए. उसके बाद से नहीं आए. अयोध्या कैसे बदली दिखती है? जैसी चाहिए थी अभी वैसी बनेली. नहीं तो 92 साल में पूरा ये था. बाबरी मस्जिद की जैसी था. आजू बाजू सब मस्जिद थे. हाँ, लेकिन आज की बात. आज बोले तो आज राममय वातावरण है. पूरा की पूरा जिसके उसके मुंह में राम ही राम है. सतयुग जैसा लग रहा है. हाँ, सतयुग जैसा लग रहा है. जय श्री राम. मैं महाराष्ट्र से आया संगमनेर. मैं बहनों का कार सेवक हूँ. जब कार सेवा होने के बाद आज के बारे में बताइए. आज वही बात कर रहा हूँ मैं. बहनों के बाद जो माहौल देखा है पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रांत में हिंदू राष्ट्र होने की जो संभावना है वो 100% होने वाली है. आइए. आप यहाँ की रहने वाली हैं. आप राजस्थान से आई हैं. So that's what the sense is, that people from different parts of India are all here to perhaps celebrate the day. आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से. हाँ. कब आई हुई हैं? हम परसों. हाँ. मुझे वापस कब जाइएगा?
हम कल रात को। और वो गई थी उधर रामपथ पे गई हैं? अभी नहीं गए, कल जाएंगे हम। कल जाएंगी, कल दर्शन करने जाएंगी। जी। पहले कभी अयोध्या आई हैं? नहीं, हम पहली बार ही आए हैं। पहली बार आई हैं और आज के तारीख पहुंच गई हैं आप। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Let me bring Amish again. Amish, when you speak to people, please come ahead thoda. When you speak to people, that sense of gratitude is also palpable. That that you are among the fortunate people to be present today. No, absolutely. Look, we are standing on the shoulders of giants who struggled for 500 years. We're the lucky people, the lucky generation which gets to see this. But to be honest, we haven't really struggled as much as the people did before. And this was, I think KK Mohammed Saab in our documentary put it so beautifully. This was not a Hindu-Muslim issue. This was actually an Indian foreigner issue. He said Babur was from Uzbekistan. Mir Baqi was from Uzbekistan. He said, I'm an Indian Muslim. What do you have to do with them? Documentary plays on NDTV, viewers, at 7:30 p.m. 7:30 p.m. is when that documentary plays. On the 25th at prime time, and I believe every single NDTV channel is going to broadcast it. See it, Jai Shri Ram. Let's start taking the steps, because Amish, be careful. Deepotsav. This is a step. Okay, so Deepotsav will be celebrated right here. You can see those diyas. Those celebrations that we see near to Diwali is going to be celebrated. Another Diwali today? Exactly, another Diwali. See, Maria, I've been to hundreds of TV debates on Ram Mandir. Through Ramayana School, I've taught Valmiki Ramayana to thousands of kids across the globe. I'm feeling so fortunate today that in this land, Rama must have walked here and there. Rama must have taken the Saryu. Rama must have taken the Saryu to cross during the Vanavas. And today we are walking in this land when he's getting established back in Ram Pratishtha. So I think so fortunate to be here. As Amish said, a lot of people struggle for it, but we are the generation reaping the fruits of it and able to see it. So Jai Shri Ram. And you will be witnessing the diyas. See, all those diyas right And there, also, if the camera could pan. I'll tell you one thing. Yes. So before 2017, Ayodhya was kind of a disputed town. It was not a tourist town. And 2017, Yogi Adityanath started the Deepotsav with 50,000 diyas. And then year onwards, it became a Guinness Book of World Record. This place have witnessed 7 Guinness Book of World Records. Last Deepavali, there were 22 lakh diyas lit. And these are real diyas. They are not wax diyas or lit diyas. They are like with tail and bati. Planning that goes behind that entire event. Yeah, Maria, I think the description of Ayodhya in Valmiki Ramayana, there is one description that there was a area of the wells where गन्ने का जो रस होता है वैसा पानी होता था, यानी गन्ने के रस जैसा मीठा. Discuss Valmiki Ramayana and try and understand what it was during those days. Yes, तो जो कुएं में there was the water like sweet like गन्ने का रस, और this is the area where I think it's a return of those kind of water is taking place. Second thing is... What was the sewage system and the water system then? Yeah, it was well planned. It was well planned. Nagar system in India, it was well developed even those time also. And there is a description that there was a wells, there was a water flowing systems, and also suraksha. The kind of suraksha they had. There is a mention कि यंत्र थे जिनसे सुरक्षा की जाती थी, और पूरा जो एरिया था मारिया, that was expanded in 12 योजन लंबा and 3 योजन चौड़ा. Take one thought forward. Just look at these visuals of devotees taking dip in Saryu. It's freezing cold. What kind of devotion would it be to do this at 9 a.m.? Okay, firstly, of course, it shows devotion to Lord Ram. But I think there are two deeper meanings also coming up out here. Okay, let me make it more prosaic and scientific. As modern science has discovered, actually an ice cold bath is good for you. All right. So our religion perhaps asked us to do something scientific which was good for us. The second thing, if you actually see out here, the Saryu waters have actually been brought in at a place where it becomes safe for pilgrims to actually go in and take a dip. Unlike at the river, because, in olden days, because I'm from Kashi and I've come to Ayodhya to pray out here, even pre-2017, when infrastructure wasn't actually that good. Many times in Dubkis, sometimes people would slip, people would drown, something like that cannot happen here. So
I'm saying even from setting aside the religious thing, from a scientific and infrastructure perspective, this is wonderful to see from a modern perspective. Yes. मैं हिंदी में कर लूँगा. Ratan Sharda ji. See, when people... Sometimes you become speechless, and multiple times in Ayodhya I realize that let people talk and let the mahal speak, as they say. Exactly. When in doubt, just say Jai Shri Ram. See, when Modi ji says, when people say mandir ki hospital, mandir ki school, see, when society is dharmic, everything falls into place. UP became dharmic, and UP is now one of the top states from the bottom heap. So that shows the power of dharmic society. And I like to add the euphoria. In my lifetime, I have seen two euphoric movements. One was struggle for emergency, then finally the dictatorship brought down, and we are dancing on the streets, seeing the results. Second euphoria is this. After 30 years of struggle for Ram Mandir, we see this beautiful day, this wonderful day, and we see it's everybody is involved. Like in the time of Ayodhya movement, it is not just, selective people, so-called Brahminical society, everybody from the bottom of the pyramid to the top, everybody is involved. You look at people, you can't make out who is who. Everybody. Okay, Sumit, one question to him. You please take that conversation forward, and then I want to get a word from that lady who actually took a dip. देखिए, श्री राम के साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी साथ में हो रही है. जब योगी बाबा यहाँ पे अयोध्या नगरी को तैयार करने में लगे थे पिछले 2 हफ्ते से, उनकी टीम सीनियर आईएएस ऑफिसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में थे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन करके वापस लौटे हैं कल ही. These are details which are needed, and perhaps Shantanu is best placed to give. Sumit, as journalist, Come here. What do you want to show us? Come here. Yes, I need the camera here. Is it possible? Yes. Is it possible? आप लोग थोड़ा जगह दो, थोड़ा सा जगह दो कैमरे वहाँ लगे हैं. ये दीप माला की तैयारी है हमारे यहाँ. आज शाम को यहाँ दिवाली मनने वाली है. इसी घाट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आ रही हो, कैमरा सामने लगा हुआ है सरयू के उस पार. इससे यहाँ दीपावली मनाई जाएगी. और आप देखती होंगी अयोध्या में घाट पे दिए सजाते, दीपोत्सव. आज एक बार फिर दीपावली है, क्योंकि राम लौटे हैं, 500 साल के बाद लौटे हैं. ये तैयारी है. क्या कितना खूबसूरत है दिया. बिल्कुल. और ये वुडन, ये मिट्टी है, प्योर मिट्टी है. जी. सुमित, मैं वहाँ पर भी लोगों से बात करती हूँ. वो एक महिला है. This is very picturesque where we are. Let me speak to this woman who has taken a dip just few minutes back. आप अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर डुबकी लगाई है. यहाँ पर आ जाइए. इधर आइए मेरे पास आइए. संभल कर. जी. आई. माता जी इधर आइए. इधर. हाँ, अब ठीक लगेगा. वो सामने देखिए, उधर उस तरफ देखिए. हाँ. अब आप बात करो. चलिए. हाँ. ये कैसा भाव है कि आप सुबह इतनी ठंडी पानी में आप इसमें भगवान के लिए हाँ ठंडी पानी में स्नान करी. हाँ. भगवान के लिए, माता सीता के लिए. पहले भी आई हैं अयोध्या? पहले भी आई है. और आज कैसा लग रहा है? आज तो 22 तारीख है, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी. बहुत सुहावन लगती है. हाँ. चलिए, ये सरयू जी का पानी कितना ठंडा था. बहुत ठंडा. समझ सकते हैं आप. All right. Sumit and I will be back in just a few minutes with a special broadcast. But yes, it's mesmerizing. Okay, one word each of what you're thinking right now. I'm thinking about this deep. No, in Valmiki Ramayana, there is a mention that in Ayodhya Puri Vasi, every day burn deep in their houses. Okay, so it was a tradition which is reviving itself. What does it feel to be in Ayodhya? Sitaram. It's one word actually, Sitaram. Magical. नहीं, मैं एक लाइन कहूँगा. मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने परपोतों को ये कहानी सुना रहा हूँ कि उस दिन मैं अयोध्या में था. You witnessed it. So yes, as journalists, we are also witness to what is clearly history in making. Back to the studio now. Thank you, Maria, for joining us with those details. We also have Ranveer joining us from the Lata Mangeshkar Chowk and Pratibha Raman joining us from Bengaluru. Clearly, the enthusiasm of the Pran Pratishtha is not limited to Ayodhya. Let me go across to Ranveer first. Ranveer, you are at the central point of Ayodhya. Tell us, what can you see from there? How is the city prepping for the big moment? Today is the big day and I'm at Lata Mangeshkar Chowk. Just see the Lata Mangeshkar Chowk, and here a huge security deployment is being can be seen. See, these SPG commandos and police and paramilitary forces are there, and they are waiting for the arrival of the special invitees
and at Lata Mangeshkar Chowk, thousands of people who are not invited, and despite appeal of government and restrictions, they are historic. See these babas. कहाँ से हैं बाबा? मैं तो उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर। ये बताइए, आज आने को मना किया गया था, क्यों आए आप लोग? सर, भगवान की श्रद्धा है, भक्ति था इसमें दिल के अंदर, इसलिए हम आए हैं। आप क्यों आए हैं? सरकार मना की थी ना आज आने को। सरकार ने मना की थी? हाँ। सरकार ने मना कहा थी? 22 तारीख का दे रखा था। अच्छा, आप लोग को न्योता तो नहीं मिला है ना? न्योता तो गांव-गांव में तो वो पर्चे बटे ना मोदी जी सरकार के, दूर से चले आए। पहुंचा वहाँ पे सब प्रसाद पहुंचा। तो श्रद्धा की वजह से। जी सर। See, this is the devotion of these Ram Bhakts. They are here just to witness the historic day, and arrival of the VVIPs are here. And, my cameraman Rajesh will show how the security deployment is here at every step of Ayodhya, because today more than 8,000 VVIPs will be arriving, including the Prime Minister and so many dignitaries. See, people who are barefoot, and they are here in Ayodhya. कहाँ से आए चाचा? महाराष्ट्र, अहमदनगर। चप्पल भी नहीं पहने इस ठंड में? ही नहीं। क्यों? छोड़ दी, भगवान की वास्ते छोड़ दी। भगवान क्यों? ठंड नहीं लग रही? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज आने को मना किया गया था, आप लोग इतनी दूर से आए। 70 किलोमीटर से आए हम, जो मिलेगा वही से आए। आदमी कायम चप्पल नहीं पहना था, पंढरपुर से भी खड़ा आज से जाता। So he is from Pandharpur, Maharashtra, and this is the devotion of Ram Bhakts who are here on the historic day of Pran Pratishtha. Yes, over to you, Vasudha. Thank you, Ranveer, for joining us with those details. Clearly, this is a reflection of cultural ethos of India. Let me go across to my colleague Pratibha Raman. Pratibha, some days back, Prime Minister was in Bengaluru, where he inaugurated the Boeing Suganya Center, and he spoke about science and technology and the importance of scientific temper. And we have this big Pran Pratishtha ceremony coming up. So I thought that was also his way of saying that religion and faith and development can go hand in hand. Tell us, how is the south of India looking at this occasion? Well, in fact, yes, it is the IT capital of India, and I am coming to you from Bengaluru. And despite development being one of the key focus areas here in a city like Bengaluru, of course, religion definitely takes a prime position as well. In fact, a lot of devotees have been thronging temples here. This is one of the oldest temples in central Bengaluru, Vasantnagar area, of course, a temple that is dedicated to Lord Hanuman. But then where Lord Hanuman is there, Lord Ram has to also be there. So a separate section that has been made for Lord Ram here, and special pujas that have been organized for Lord Ram at this particular temple and different other temples across Bengaluru as well as Karnataka. In a short while from now, former Chief Minister of Karnataka, Basvaraj Bommai, is scheduled to arrive here for special pujas to participate in these, and also the fact that there will be a Deepotsav that will be organized in the evening, and Karnataka is also a place where the rocks that were sent for the special installation of the idol of Lord Ram. So a special place of pride that Karnataka takes as far as the Ram Mandir inauguration is concerned. And these are the devotees that you see, the Ram idol that you see here, and a lot of Ram Bhakts who have come in special uniforms here. Sir, आज का दिन के बारे में आप बता सकते हैं? Can you talk about today being a very special day? Yes, it's a very special day for us because praise temple inauguration also there. So that is another day we want to celebrate this one also. Right, we want to celebrate Deepavali, we want to celebrate this day, the Ramavali also. That on the occasion of this year, these are my whole team. We have worked for some pharmaceutical company. Here, my regional manager. There you can see the entire team that is here. Yes. Jai Shri Ram. This is entire Karnataka team of our Sun Pharma representing Bangalore and Karnataka, and it's a very proud moment for all of us. And it's a very emotional moment. Entire team is over here, and let's celebrate with full joy. It's Deepavali today. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Well, back to you. So that is the kind of enthusiasm that you see in Bengaluru as well as Karnataka. Right. Thank you, Pratibha, for joining us with those details from Bengaluru. Time for a short break. More news and discussions on the other side.
राम के आगमन से, राम की पुनर्प्रतिष्ठा से जो समावेशिता की पृष्ठभूमि फिर से निर्मित होगी, पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर को पश्चिम से जोड़ता है, उस सहृदयता का प्रतीक है अयोध्या, वो बने और वैसी दिवाली सबके दिलों में मने, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। Ayodhya is set for the grand temple opening. A journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हुआ। Pilgrims and visitors head to the holy city for the consecration of the Ram temple. प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है. It's a historic event. The ancient city abuzz with change, where modern infrastructure meets age-old traditions. Every aspect of Ayodhya's transformation and the grand temple opening on NDTV 24/7. इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। स्टोन स्ट्रक्चर, कोई भी पत्थर 100-200 साल में खत्म नहीं होता है, शाश्वत है वो। इसलिए ये भी सैंडस्टोन है। राजस्थान भरतपुर जिला, इसका एक गांव है बंसी पारपुर, वहाँ की पहाड़ियों का पत्थर है। ये पिंक है कलर, देखने में अच्छा लगता है, पानी पड़ने से सुंदरता बढ़ती है। और जो कुछ नक्काशी है वो मंदिरों में परंपरागत होती है। इंजीनियरिंग का जो योगदान है वो योगदान है जमीन के नीचे। All the soil was to be taken out and a new engineered soil that was to be replaced there. So that is the kind of thing which was done. Welcome to Serious Business on NDTV. $1 has only secured 0.6 cents of private capital. That needs to fundamentally change. By mid-century, India's economy will grow eightfold. One topic. When a family comes out of the poverty line, what would be the first asset class they would buy? It's gold. One speaker. It's the biggest attack on Jews since the Holocaust. If you want to control inflation, you need to play the trade policy. UPI, Aadhaar, all of that, where India is well ahead of the West. 5 trillion is a short-term goal. I would like to see India becoming a $30 trillion economy. One of the key themes at the World Economic Forum meet here in Davos, Switzerland is artificial intelligence, the future of AI, generative AI. We've got a wonderful guest with us, Roshni Nader with us, the chairperson of HCL Tech. Thanks very much, Roshni, for being with us. What is HCL doing presently as far as AI is concerned? What are some of the technologies and ideas that you're exploring? So I think with AI, there are two parts. So one is what we're doing in terms of working with a lot of our customers. We have more than 150 generative AI labs all over the world, in India as well, working on specific use case for each industry. So I think that's one part. The other is we are an organization of 250,000 people, and a lot of them will have to learn a lot of these new technologies. So we already have about 70,000 of our workforce, which is upskilling at the moment in these new skills. And you have to realize that I think a lot of people talk about AI as the technology and what it's going to do in the industry and in the world. But in our industry, where the average age is 25, most of our young people are already users of generative AI in life. So I think that having to retrain them and upskill them into how to use it in the workplace and how to use it for the solutions is
the two aspects that one has to focus on. What about the entire argument that there's going to be a lot of retrenchment, a lot of people losing jobs because of AI? So I can just say that we've had a net addition this year, including in the last quarter as well. And again, I think the dynamics of the work pyramid in an organization and an industry such as ours changes. But, we've had cycles of automation before. We've had cycles of new technology before. If at all, it has only created an ecosystem of applications around AI. AI and generative AI in itself, even to a customer, is not of any use unless they're able to work around their data strategy, data infrastructure, their cloud strategy. So I think there are lots of new skills which are replacing old skills where you can upskill people, but it's not necessarily replacing jobs. Can you just crystal gaze a little bit for us? We know what some of the generative AI apps are right now. We know some of the AI apps or AI programs and solutions which are Prime Minister Narendra Modi is expected to arrive in Ayodhya soon. In about an hour from now, the historic Pran Pratishtha ceremonies are expected to begin shortly, and about 7,000 people are going to attend this mega high-profile event. Let me go across to Desh Ratan Nigam, who's joining us in the studio. Mr. Nigam, there are two important messages in this. One is, of course, the message of social inclusion, because from Kevat Raja to Shabri, we have seen the celebration of these, figures and characters who were who were in some ways, they were just, thrown to the sidelines when we actually heard the story of Ramayana. And the other thing I think is the Prime Minister himself, undertaking this tour of temples from Lipakshi to, Srirangam to Dhanushkodi. What does this symbolize? Is he trying to also show that this is just larger than politics and religion? Certainly, Vasudha, as you rightly said. But in my opinion, when people say religion is very personal, I don't believe it, because there is a difference between dharma and panth. When we talk of dharma, dharma should infuse politics. It will take politicians on the righteous path and the spiritual path. And if that happens, nobody can stop India becoming a Vishwaguru. So politics, religion, as not in the Western sense, but in the sense of your duties and responsibilities, that each individual, whether he is a leader, politician, prime minister, has towards its people of the country. So that values, spiritual values, have to be infused in politics, and religion comes as a institution which creates discipline in society. It creates harmonious interpersonal relation, samajik samrasta, social harmony as we call it, and therefore it is very important, as in Indian system, dharma has to be a part of your individual life. It cuts across all sects and panths. Right. That's the message. And the Prime Minister is retracting and retracing these steps connected with Ramayana and Shri Ram's life. So that's a message. This present Ram temple is a symbol of social harmony. It is harmony in stone. The stones are speaking. And look at the beauty that it has been done. Right. And therefore, today what we see is a return to those values. And a new chapter will be written in the history of this country. And we are so lucky and fortunate enough to be witnessing it. And let me give you a few more examples from Shri Ram's life also. Shri Ram could have easily had taken Ayodhya's army or the army of other states and, attacked Sri Lanka. He didn't do it. Right. He took the Vanvasis, the immense power of Vanvasis, the common people, and took them along. Right. That shows harmony. And he also gave the equal status to those Vanvasis. He never looked down upon them, took along with them, and took their power, harmonized their power, and defeated Sri Lanka, but it did not rule. Right. He gave it to the same clan and family. And that is the greatness and the value of Shri Ram that we have today. There are so many examples from his life that we can say that he was a symbol of unity, diversity, social harmony, so many things. Absolutely. Professor Kumar, let me bring you in here. We've always, we've all read Ramanujam and, this whole thing about land of 300 Ramayanas. Tell us, how does India today justify that it is a land of diverse Ramayanas? And one beautiful thing I think the Prime Minister did bring out was this defining
defining moment where he was listening to Kamban Ramayana, and as a Tamilian I've read it, and it's a beautiful version of Ramayana told in a very different way. How do you, how do you look at this whole thing? There are more than 200 versions of Ramayana in this country, and where even the script is not there, it is there in the oral tradition. So it is deeply ingrained. There was a time, you will recall, when it was said that if you have read Ramayana, you have read Mahabharata, and you have read Gita, your education is complete. Now what does it mean? Because these three epics, Gita and the two epics, tell me which aspect of knowledge they don't contain. From social relations, to diplomacy, to warfare, to politics, to love, affection, and the real dharma. You see, the dharma which they say is not the dharma the way it is translated to religion. They have defined the dharma of every section of the society. Guru dharma is this, Raj dharma is this, Pati dharma is this, Patni dharma is this, Putra dharma is this. Right. Right. That is the incomposition of dharma. Absolutely. Which these epics give to us. And I tell you, this kind of teaching leads to such a determination. I'll give you one example. Temple by the Sea. In Trinidad, a small, colony at that time, plantation labor were kept and exploited and all. So once Shivdas, he made a small idol out of clay. And for that estate owners got him arrested, and he was imprisoned for 15 days. Okay, without permission he has done it. Now this man, Shivdas, after coming back from the prison, determined that I will make a temple. Right. And every day he will work in the fields, and in the evening he will go with loads of, stones on his shoulders, whichever he could carry, and put them in the sea. Okay, this is no man's land. He built a platform there, then built a temple there, and today it's a pilgrimage center. Wow. There is Ramayana therapy. We have scholars, we had very renowned psychologist, Dr. Senli Maharaj Ramdayal, who done on Ramayana therapy, that how these indentured laborers, when they were thrown there and exploited, no medicine, nothing, no care, no education, these people took all inspiration from Ramayana. And that is why you see today, cured their ills, right from the Caribbean islands to Fiji, to Mauritius, Bali, Indonesia, Cambodia, which part of the world you tell me today is not going into it. And that is why this importance which is coming back to us. Why is today Sanskrit being found necessary? So it's the stories of Ramayana that have given not just endurance and a strength of resistance, but they've also given belief. This is one more thing I'll say here. You see, I did my PhD thesis on Awadh Kisan movement. Okay. And it was Baba Ramchandra who, through the chopais of Ramayana, created a huge movement, the strongest movement in North India against the British and the Talukdar. Right. And you know what was his last word on 47? 15th August 47. When the leaders forgot what they had promised to the peasants, he said, Dev aaj Rajpat pai, chale dharam marjad mitai. That you have forgotten the bounties which you had promised during that period. Okay. So Ramayana is, I had a principal in Ghaziabad, Professor R.B.L. Goswami. In my day-to-day talk, he will put up immediately a chopai of Ramayana. You are acting like this. So Ramayana is so integral to our lives. So it is integral because, and one more thing I'll say, this Pratishtha, Pran Pratishtha, I thought Guruji will explain it. Yes. You see, we are the only dharma in the world whose Aradhya is a living Aradhya. He is not a dead Aradhya. He is living for us. And why he is living for us? Because he lives with us. We talk to him as a friend. We talk to him as a guide. We talk to him as a motivator. Right. That is the difference. Mr. Shukla, ये थोड़ा सा इनका प्राण प्रतिष्ठा ये वाला इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए। उसके साथ-साथ कल डोम राजा भी आ चुके हैं वहाँ पे। इनका जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सनातन धर्म में, वो थोड़ा समझाइए। सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, रामचरितमानस की अभी जो कर रहे थे बात, वहाँ पर बयरु न कर काभूषण कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। विषमता नहीं है वहाँ जाति वर्ण व्यवस्था नहीं, खरा खोटा नहीं है। रावण और राजनीति की बात जहाँ तक करें, रावण जानता है खर दूषण महिषम बलवंता,
तिनहि कुमारई बिनु भगवंता जग रंजन भंजन मई भारा जो रघुवंश लीन अवतारा तो मैं जाए बैर हट करियों। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, 16 तारीख से यज्ञ शुरू हुई, 1000 कुंडी यज्ञ। 16 तारीख से वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है। 16 तारीख से उससे पहले ही गली गली में, गांव गांव में, देश में, विदेश में राम का जयकारा। तो वो जो ऊर्जा है उसके कारण वो लोग जो राम से बैर रखते थे, वो लोग जो राम को नहीं मानते थे, वो लोग जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज उनके मन में उस ऊर्जा का प्रभाव है, जहां पर बैठ करके वो कहते हैं नहीं, हम तो किसी मंदिर में जाएंगे उस दिन पूजन करने, यहां नहीं आएंगे लेकिन मंदिर में जाएंगे, सुंदरकांड पाठ करेंगे। आज वो लोग भी कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुई नहीं व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, जो अभी बात कर रहे थे आप। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। तो चाहे डोम राजा हूं, चाहे शबरी हूं, चाहे गिद्ध जटायु हूं, वो सब मिलकर के बनते हैं अपने आराध्य का पूजन करने के लिए। और वही यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहीं जय है, और राम धर्म के प्रतीक। जी, Mr. Shukla, hold on to that thought. Let me go across to my colleague Ratnadeep, who's joining us from Guwahati. Remember, Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra is also happening there. Ratnadeep, what is the latest on Rahul Gandhi's Nyaya Yatra and also the Pran Pratishtha fervor in Assam? That's right. In fact, like rest of the country, in Guwahati, several celebrations outside almost all the temples in the city has been organized. We are at the Janki Vallabh temple in Guwahati, where since last night there is a special yagya being organized. In fact, in the famous Kamakhya temple in Guwahati, special prayers are being organized. In fact, the Chief Minister would be at the Harijan colony around 11 a.m. to celebrate with the people the event of inauguration of the Ram Mandir, the consecration of Ram Lala. However, when all this is happening, Rahul Gandhi, the Congress leader, is also on his Bharat Jodo Nyaya Yatra. In fact, this morning he went to the famous Vaishnavite Shatra, the Bhattadrava Shatra of Shriman Shankardev, but he was not allowed to enter. That's what we are picking up. In fact, yesterday the authorities of the Shatra had requested him to come after 3 p.m. because in the morning hours there would be a lot of devotees who would come in to celebrate the Ram Mandir consecration. In fact, this follows after what happened yesterday. There were scuffles on way as the Yatra re-entered Assam from Arunachal Pradesh to Assam, and in Sonitpur district there have been scuffles. In fact, Congress has alleged attacks. However, here you can see this yagya being held. Here we have the pujari of the temple. क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल काफले जी है। कल रात से ही आप लोग यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, बताइए क्या यज्ञ चल रहा है और क्या तैयारी है? हम लोग मंदिर के ओर से, श्री जानकी वल्लभ मंदिर की ओर से हम लोग कल इवनिंग से श्री रामचरितमानस का पाठ चालू किया है। प्रारंभ करते हुए रात भर चला, निरंतर रूप से इस कार्यक्रम को चलते गया। सुबह हम लोग धूमधाम के साथ आरती, भगवान राम लला जी की चरणों में आरती उतारते हुए अखंड ज्योति की भोग की प्रदान की। आज दोपहर को विशेष रूप से भगवान का विशेष आरती हम लोग सीधा प्रसारण टेलीविजन से दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग भगवान के अयोध्या का सीधा प्रसारण के साथ साथ हम लोग यहाँ भी वहाँ का सीधा आरती उतारेंगे। So there you are. In one hand you can see the fervor and celebrations in Guwahati, and on the other side Assam is also witnessing politics over the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Thank you, Ratnadeep, for joining us with those details. So Assam is witnessing religiosity and also politics at the same time. Let me go across to Saurabh Gupta, my colleague who joins us from Calcutta. Saurabh, you're speaking to us from Kolkata. You know, today is a big day for the residents of Kolkata as well, because Chief Minister Mamata Banerjee is going to have this interfaith meeting. She's going to address a rally in Park Circus Maidan, and also she's going to Kali Ghat Mandir, which she has been associated with for years. Tell us, how are things looking like in Calcutta? Well, you know, the Chief Minister's rally is, of course, in the afternoon. In the morning, there, of course, is the Ram Temple celebrations. We're at the Ram Temple in Kolkata, where the celebrations are taking place. There's special puja being organized. A lot of crowds at the Ram Temple. Obviously, in
anticipation of the consecration of the Ram Mandir at Ayodhya. And that, of course, is also happening. Along with that, there's a lot of political activity, though they say it's apolitical. Shubhendu Adhikari, the leader of opposition, is organizing a march. The end of that march is likely to be here. And of course, it is going to be at this place itself. The governor of West Bengal is also expected to be here. Dr. C.V. Ananda Bose will be here. And of course, let's just get in a word from the organizers here at the Ram Temple as to what has been organized here. आज बताइए यहाँ का आयोजन क्या है आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है, भजन का स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है और उसके बाद भजन के बाद जो 11 बजे से लाइव टेलीकास्ट चलेगा अयोध्या के साथ में और जय राम श्री राम जय राम चलता रहेगा और उसके बाद स्पेशल प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है भक्तों के लिए। राज्यपाल भी आने वाले हैं। हाँ, सुना मैंने भी है कि महामहिम आने वाले हैं। So these are the, of course, the events that have been organized. But of course, there's also a lot of focus on that all-faith rally that will happen in the afternoon. The Chief Minister will visit Kalighat Temple and then, of course, march from Hazra crossing to Kalighat. In the morning, of course, you will have a lot of marches. Also, several other programs in several parts of the state and the city. In, of course, anticipation of that consecration of the Ram Temple here in Ayodhya, and of course celebrations across Kolkata as well. Thank you, Saurabh, for joining us with those details. Let me go across to Mr. Verma, who's also a senior journalist. Mr. Verma, tell us, how do you see the future of Hindutva politics from here? Because this kind of religiosity is something that the country, of course, has not witnessed before. Because this is really, I think this is a celebration. This is organic celebration. There's a lot of joy. How do you think opposition is going to sort of navigate this kind of politics? Today is 22nd January. After today, Indian politics is going to change a lot. Now you have to say that if you are with Ram Mandir or you are against Ram Mandir, because there is a clear line whether you are with the Ram Mandir or you are against the Ram Mandir. And the way entire nation has shown support for Ram Mandir, that has given extraordinary advantage to BJP. Now in 2024, BJP is coming with a clear majority, what we can see, because opposition has shown that they are not with the Ram Mandir. So Indian voter is not going to vote for them. The way India is celebrating Ram Mandir Pran Pratishtha, it is clear signal that what is going to happen in 2024 elections. Right. Mr. Oja, ये बताइए कि काफ़ी हिस्टोरियंस का कहना है कि अयोध्या जो है ये कभी हमारे तीर्थ क्षेत्रों में था ही नहीं, इसको जो है पॉलिटिक्स के साथ जो है इंसर्ट किया गया है। हमारे पुराणों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में अयोध्या या अवध की महत्ता क्या है? देखिए वसुधा जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ 7 पुरियाँ हैं, उस पुरी में अयोध्यापुरी है और अयोध्या जो है प्रेम का प्रतिबिंब है। अयोध्या में रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहा गया है कि सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में आज 22 तारीख है और आज इतना प्रीत है, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता। जहाँ पर चरित्र होता है वहीं पर अयोध्या होता है, जहाँ पर चरित्र नहीं होता है वहाँ पर अयोध्या नहीं होता है। अयोध्या पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम आप रहें या ना रहें, परंतु अयोध्या अवश्य रहेगा। अयोध्या पुरियों में है, ये धाम में नहीं है। अब तो धाम नाम दिया जा रहा है, ये पुरियों में आता है। Right. और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या में अभी मैं देख रहा था कि सब लोग बड़ी नम्रता, विनम्रता, सहजता के बल पे आ रहे हैं। सबके अंतःकरण में एक उमंगता है और वह उमंगता की प्रबलता के कारण से लोग अपने घरों में नहीं रुक पा रहे हैं। उनके कदम ये कह रहे हैं कि हम सरयू का दर्शन करें। अगर अयोध्या में जाते हैं तो साक्षात हनुमान जी का दर्शन करते हैं और जो अयोध्या का संपूर्ण देख रेख की अगर मैं बात करूं तो वह श्री हनुमान जी, हनुमंत लाल जी हैं और जो हनुमंत लाल जी उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। इतना भव्य जो कार्य हो रहा है ये सहज नहीं है,
ये हनुमान जी साक्षात किसी न किसी रूप में आकर के इस कार्य को संजो रहे हैं। वहाँ पर देखिए कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, हनुमान जी सबको सुसज्जित करेंगे। दूसरी बात कि जब प्रभु 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे तो इतनी बड़ी दिवाली तो उस समय मनाया गया होगा, क्यों हमने और आपने तो देखा नहीं है। बताया जाता है पुराणों के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में, और अनेकों प्रकार से बताते हैं। परंतु 2022 का जो ये पल है, इस पल को हम आप भाग्यशाली हैं जो देख रहे हैं, और इसको देखने के लिए लोग आज वर्तमान समय में आप देखेंगे लोग अपने घरों में परिवार के साथ टीवी पे बैठे होंगे। So it's not a celebration, it's Diwali, it's a celebration of resistance and endurance. A short while ago, my colleague Sumit Avasthi. So there are, on your screen, you can see some live pictures of UP Chief Minister Yogi Adityanath. Remember, he has been instrumental in ensuring that the preparations are up to mark. He's the man on ground, ensuring checks and balances, the man in charge of the entire administration. And Yogi Adityanath also has a history associated with the Ram Temple movement. His gurus, including Digvijay Nath and Ayodhya have been involved in the Ram Temple movement for decades. And this is a man who has arrived in Ayodhya now, ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Remember, he is one of the guests who will be inside the Garbhagriha for the final Pran Pratishtha ceremony, along with Prime Minister Narendra Modi, RSS Chief Mohan Bhagwat, and the Trust Chief Nitya Gopal Das. Let me go across to my colleague Sumit Avasthi, who short while ago spoke to, yes. Okay, before that, let's just keep looking at these visuals. I'll just give a statement and I'd like to leave that historically. Okay, these are the live visuals, and remember, several invitees have arrived in Ayodhya on Sunday, and others are expected to arrive now. The centre has declared a half-a-day off on January 22nd, and many others have also followed suit. Millions of people are anticipated to witness this event live on TV and online platforms. My colleague Sumit Avasthi spoke to Yoga Guru Swami Ramdev a short while ago. Let's listen to the conversation. रामदेव जी मेरे साथ आ रहे हैं। आई कैन सी हिम। रामदेव जी के पास अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे हमारी लाइव टेलीकास्ट में। स्वामी जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी ने प्रॉमिस किया है कि 5 से 7 मिनट ही रहेंगे। ये हमारा अहोभाग्य है कि स्वामी जी हमारे साथ होंगे। आ गए हैं स्वामी जी इस वक्त एनडीटीवी पर। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सुमित भाई, ये हमारे बहुत पुराने चहेते हैं। और ये बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, ये बड़ी प्यारी है। कागज में पेंसिल स्केच से बने, 6 महीने लगे बनाने में। 600 पन्ने हैं ये जोड़े हैं इन्होंने। राम राम राम। खास तौर पर एनडीटीवी के साथ लगातार बने हुए हैं। और ऊपर हनुमान जी हैं। हाँ, हनुमान जी हैं। लेकिन ये सच में बस्ती के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हो जाए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां। ए राम, कितना सुंदर बना है। पेंसिल से एक चीज से बनाया है। अभी हम एक भजन गा रहे थे। जी जी। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की डगरिया। तो अब मैंने इसमें जोड़ा, रघुकुल नंदन अब आएंगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। तो कितना सौभाग्य है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक राम राज्य की नींव रखी जा रही है कि हम राम जी के आदर्शों पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनके जैसे उन्होंने आचरण किया उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे जी। और योग कर्म योग के पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके इस भारत को आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक, सामाजिक सब प्रकार की नैतिक महाशक्ति बनाएंगे। तो ये मात्र एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने का जो सपना था हमारे सब पूर्वजों का, अब वो साकार होगा। सुमित जी, रामदेव जी, आपके तो नाम में भी राम है। हम लोग राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ इकट्ठा है। कितना सौभाग्य मानते हैं अपने आप को, सौभाग्यवान। देखो भाई, ये आंदोलन की हमारी भी आंखें साक्षी हैं पिछले 55-56 सालों से, और ये 500 वर्षों का संघर्ष, उसके लिए कितने लोगों के बलिदान, तपस्या, राजनीतिक श्रेय तो यद्यपि मोदी जी को इस रूप में है कि जो कोई न कर सका। ये जज भी यही थे, सुप्रीम कोर्ट भी यही था, ये सब वकील भी यही थे। चीजों को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है।
तो राजनीतिक श्रेय यद्यपि मोदी जी को है, संगठनात्मक श्रेय आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को है, लेकिन इसमें कितने साधु संत महात्माओं ने, कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने राजा महाराजाओं ने माने बहुत बड़ा तप किया है। तब जा करके जैसे राम जी के काम में ये देखो हमारे हनुमान जी आ गए, ऐसे कितनों ने अपनी अपनी आहुतियां दी हैं, तब जा करके सौभाग्य मिला है। और इस सौभाग्य में आप और हम यहाँ पर अयोध्या में हैं, अयोध्या का पूरा नजारा बदला हुआ है। बिल्कुल। Brought to you by जैन। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. One of the key themes at the World Economic Forum in Davos is the entire issue of ensuring that sustainable development is looked at from all perspectives, certainly the perspective of gender, very, very important indeed. Also engendering health research is an area which is of interest to India. It is certainly an interest to my very special guest, Smriti Irani, the Minister. Thanks, ma'am, very much for being with us. You speak about empowerment at so many levels. When it comes to health, ultimately health is about empowerment. And yet, if you look at it statistically, the numbers that we get for women around the world, and certainly in India, are often inaccurate. For example, I was reading 25% of the lives of women is marred by poor health, and yet health research doesn't seem to reflect that enough. Is that not a big problem? I think we've not managed to make a case for enhanced investments in women's health from the perspective of research. Women happen to be at the receiving end of pharmaceutical support or institutionalized medical support only when things got aggravated vis-a-vis their own health. I can speak for the Indian cultural context. There were women who were in our families and our communities self-medicating because they didn't want their health, not only financially but also psychologically, to be of burden to their familial surroundings. I also believe India has made now a case for financial enhanced investments in just gender across the board. So you talk about health. We have now the world's largest healthcare program under Ayushman Bharat, 440 million Indians plus who are a part of this service, which services over 1900 diseases including cancer, cardiological challenges across 27,000 hospitals in the country. For the world, it has taken quite a while to accept that 440 million needs can be serviced from the treasury without a single rupee coming from the private sector. So we have made a case for good governance, but also phygital governance. Right. So we have brick and mortar infrastructure on medical issues, be it your Jan Aushadhi Kendras, 10,000 of them across the country, where your pharmaceutical needs can be met at 90% less of the cost as in the open market. What is fascinating is it's not serving only the poorest of the poor, but also the middle class and the lower middle class. This is NDTV.
And you're watching NDTV 24/7. नमस्कार, आदाब। एनडीटीवी का ये जॉइंट ब्रॉडकास्ट है। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। लेकिन सुमित, आज का दिन, what is so special about this day? In one word, all that I'm giving you is one word to describe how do you feel to report from Ayodhya today? Very simple. हाँ. Very important. Very meaningful. Ram. Okay. जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रोज ट्विटर पे एक शब्द देता हूँ, पिछले 12-13 साल से मेरी आदत है। हाँ। आज अपने आप जब सुबह उठा 4:30-5 बजे, एक शब्द मन से निकला राम, और वही शब्द आज का है। आज का शब्द है राम। चलिए, इसी बात पर सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं अमीश त्रिपाठी से। अमीश, you have been around for less than 24 hours? Actually, just 12 hours. I just got some sleep. I came just last night. Okay, and you've already visited a temple. How can you begin your day in Ayodhya without visiting the temple, one would say? Absolutely, yes. And in fact, we'd shot out here just a few months back for a documentary. So I visited most of the temples, prayed out there. There's a lovely temple just in here where they say, where they say that Lord Ram had worshipped Lord Shiva out there. जी. Had actually prayed out there. It's a wonderful temple. नागेश्वर मंदिर। जी। और हमारे साथ यहाँ पर जी जगदीश शर्मा जी भी हैं। मुझे रजनीश जी, मुझे ये बताइए कि अभी प्राण प्रतिष्ठा की क्या कार्यक्रम होगा, उसमें क्या क्या रिचुअल्स होंगे, उसके बाद मैं सुमित को हैंडओवर करूँगी। जी, अभी जो सर्वप्रथम कार्य होगा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को मंगल करने के लिए मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जो अजिर का अर्थ होता है आंगन। आज राजा दशरथ जी के आंगन में स्वयं भगवान श्री राम भद्र जी 5 वर्ष के बाल स्वरूप के रूप में विराजेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजन होगी, उसके बाद से वरुण जी का वाहन होगा, चतुष्ट योगिनियों का होगा, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, पंचलोकपाल, अष्टवसु, इन सब का पूजन होने के बाद भगवान के जितने भी आयुध हैं, पार्षद हैं, उनका पूजन होगा। उनके पूजन होने के बाद प्रभु को स्नान कराया जाएगा 16 प्रकार से। हल्दी हो गया होगा या उनके सामने होगा? प्रक्रिया जारी है। जी, जब ये सारा श्रृंगार हो जाएगा, फिर पहले पार्षद जाएंगे, जो पार्षद के रूप में घंटी हो गई, आचमनी हो गया, पंचपात्र हो गए, ये सब। मुकुट कब जाएगा? और जो गहने, वो जो ज्वेलरी पहने जी, तो पहले भगवान के चरण से व्यवस्था की जाएगी। पहले पैजनी डाली जाएगी, वस्त्र इत्यादि, फिर तिलक, स्वरूप, बाल। जब ये सब लग जाएंगे तो ऊपर सबसे पहले शीर्ष, तो वो सबसे अंत में आता है मुकुट, विराजमान होंगे। तो विराजमान होने का मतलब कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजो जान निहारा। आपके साथ कोई खास है वहाँ पे? मैं बहुत से लोग खास हैं, हर व्यक्ति खास है, हर हिंदुस्तानी खास है, देश भर से लोग आए हुए हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एनडीटीवी की इस कवरेज में। मेरे साथ एक स्वामी जी हैं और ये योग लगाने के एक्सपर्ट हैं। आप अपने योग की तैयारी करिए, कैमरा आपका योग पकड़ेगा। और इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से इन्होंने केश नहीं कटा है, वो नहीं किया, जब से इन्होंने संन्यास लिया है, और योग करने में महारती है। इनकी योगा की पद्धति आप देखते रहिए, आसन आप देखते रहिए, मेरी बातचीत चलती रहेगी। यहाँ पर शांतनु मेरे साथ है, बद्री जी यहाँ पर मेरे साथ हैं, और यहाँ पर रतन शारदा जी हमारे साथ। अच्छा, रतन जी है, मैं रतन जी को वहाँ ढूंढ रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है। स्वामी जी आप चलिए, आपका जी, आप कैमरे पे हो। शांतनु, मेरा सवाल आप गिरी जी भी यहाँ पे। शांतनु, मेरा सवाल आपसे है, बस आप करो ना, आप अपना काम करते रहो जी। आप कैमरे पे हो, आप कैमरे पे हो, कैमरा आपको देख रहा है ऊपर से, आप मेरी चिंता मत करो, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हाँ, ये दिखाओ, ये इनकी उम्र करीब 65 से 70 साल है, इनको खुद की उनकी अपनी उम्र नहीं पता है, और ऐसे कई सारे योग, कई सारे की साधनाएं वो करते रहते हैं। सुमित जी जी, Amish has a reaction. Sure. Last time I could do that was 20 years ago. Now if I try it, I'll dislocate a shoulder, I guess. Okay, रतन शारदा जी, यहाँ पर आना
And when you look at, these are colors of Ayodhya, as they say. अयोध्या के रंग। बिल्कुल। देखिए, मैं तो सबसे पहले इतने दिन कह नहीं पाया, मैं NDTV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसके कारण मुझे इस अयोध्या के दर्शन हुए। ऐसे वन थिंग कि जब हम तुलसीदास की रामायण रेगुलर पढ़ते हैं, रामचरितमानस, तो हमें लगता था कवि हैं, कुछ अतिशयोक्ति होगी, घर घर से राम भजन की आवाज़ आ रही है, जगह जगह पर लोग प्रभु राम को याद कर रहे हैं, सब तरफ आनंद है। आज देखकर लगता है तुलसीदास सही कह रहे थे। जो तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसको मैं चरितार्थ आज देख रहा हूँ। चलिए सुमित, ये देखिए अब एक नया आसन पे आ गए हैं स्वामी जी। ये वाला आसन थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। पीछे तक जाएंगे। मेरा सवाल शांतनु जी आपसे है, जो कि मैंने आपका नाम लिया था। जी करिए बाबा जी करिए, आप ही के साथी लोग हैं। शांतनु, मेरा सवाल आपसे है, किस तरह की चीज़ें, ये जो साधना है, ये तपस्या है, ये कैसे हासिल होती है? देखिए, भारत में योग की परंपरा पुरानी है और ये सनातन की एक खास बात है कि सनातन में केवल कर्मकांड नहीं, उसमें योग है, आयुर्वेद है, उसमें विज्ञान है और उसकी एक प्रतिपूर्ति आपको सामने अयोध्या में दिख रही है। जैसे मारिया ने कहा कि अयोध्या के अपने रंग हैं, चाहे वो सामने हनुमान जी का 600-650 चित्रों से बना चित्र हो, चाहे कठिन योग की शालाएं हो, ये अयोध्या के रंग है। ये बद्री जी आप कर पाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर पाता लेकिन बाबा रामदेव ने आकर के बहुतों को थोड़ा थोड़ा योग सिखा दिया है, तो सब लोगों ने अनुलोम विलोम तो सीख लिया है। लेकिन ये असली काम, ये असली योग है। और भारत में ऐसी हजारों परंपराएं हैं, तांत्रिकों की, योगियों की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाथपंथियों की, जिनमें योग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उनकी साधना के साथ योग जुड़ा हुआ है। मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति और ये जो योग शक्ति, ये सब मिल करके रचते हैं। आपको गाँवों में योगी मिल जाएंगे, घूमते हुए, संगीत बजाते हुए, गीत गाते हुए और योगा करते हुए। तो ये भारत की ज्ञान शक्ति है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। और ये सिर्फ जो साधना है, ये जो भक्ति है, ये सिर्फ मेहनत से आती है, प्रयास से आती है, बार बार करने से आती है। ये जो आप यम नियमों का पालन प्राइम मिनिस्टर ने किया, अनुष्ठान किए, भक्ति की, ये उसके आगे की चीज़ है। बिल्कुल। और पता है सुनील जी, ये जो करना है, ये पूरा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसको आपको नीचे से ऊपर तक साधना होता है, मन के सारे हिस्से और कुंडलिनी, बहुत सारे योग के तत्व हैं। और स्वामी जी, महाराज बहुत अच्छा है, अब आप हट सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सुमित जी, आज मैं धन्यवाद, जय हो। क्या जय श्री राम। आज से कल तक जब मैं घूमता हुआ देख रहा था, मारिया जो सवाल किया था, तो मुझे सबके भीतर एक मंदिर दिखाई पड़ रहा था और वो मंदिर पूरे देश से आए हुए लोगों में दिखाई पड़। सबसे मैं बात कर रहा था कईयों से, हम लोगों का काम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बात करना, और मुझे फिर मोदी जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम, मुझे लगता है वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि राम एक एकता के प्रतीक हैं और एक इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में। You know that Prime Minister, before he arrives here in Ayodhya, Amish, he has travelled to several towns in southern India and temples in southern India. He wants to make that southern connect also, because Lord Ram is universal. Absolutely, and unfortunately there are some who say that he's not. I've studied in Tamil Nadu, in South India, and of course there are wonderful Lord Shiva temples, Devi temples, but there are Lord Ram temples too, and many in Delhi may not be aware of it, but there are wonderful Lord Ram temples out there in which the local pilgrims, they do go to pray, darsharthi jate hain wahan pe, and Modi ji going to those temples, it has actually just brought those temples out to the national consciousness. And what I love is actually he followed all the rituals. Yes, those anushtans. All the, so there was a temple where you had to do, I've been to that temple, jahan pe there are 22 places where you have to actually take the water, right? There are 21 wells. One of the wells is in the sea. And Modi ji actually went to every single one of them, did it perfectly. So Sumit ji, and even we would get tired doing it all. So it was wonderful to see. अमीश, एक सवाल मेरा है आपसे, मैं चाहूँगा आप हिंदी में जवाब दें, NDTV इंडिया के दर्शकों के लिए भी, और वो इतना सा है कि हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है, हमारा NDTV को और आपके साथ। आपने एक सुना, अच्छी किताब लिखने के साथ साथ एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बना ली है। क्या है वो डॉक्यूमेंट्री, बताइए। ये NDTV और हमारी एक ये है, एक कोलैबोरेशन है, राम जन्मभूमि रिटर्न ऑफ अ स्प्लेंडेड सन, एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है
जो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और 25 रिटर्न ऑफ अ स्प्लेंडेड सन, SUN सूरज, क्योंकि भाई प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी हैं जी, और वो राम लल्ला के रूप में विराजमान हो रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डीपर मीनिंग्स इन दिस, एंड एक्चुअली सूर्योदय फिर से हो रहा है हमारे भारत देश में। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, राम जन्मभूमि जी की कहानी, प्रभु श्री राम के जन्म से आज तक की कहानी, 75 मिनट का संक्षेप में पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। NDTV के हर चैनल पे 25 तारीख को प्राइम टाइम 7:30 बजे, आप जिस भी NDTV का चैनल आप ऑन कर दें, यही देखेगा राम जन्मभूमि रिटर्न ऑफ अ स्प्लेंडेड सन। बस ये जानने की हम कोशिश करेंगे कितना वक्त लगा और आप यहाँ पर आपने कितना नहीं, डॉक्यूमेंट्री की हमने शुरुआत की करीब अगस्त में, और योगी जी का इंटरव्यू, उसमें गुरुदेव श्री रविशंकर जी का, जो मीडिएशन पैनल में थे, चीफ जस्टिस बोबड़े साहब, जो के मोहम्मद साहब, जो एक बहुत विशेष आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका है, उन सब के इंटरव्यूज़ भी हैं इसमें। और हमने राम जन्मभूमि जी में शूटिंग की है, पूरे अयोध्या जी में, सब जगह पे घूम करके शूटिंग की है, एनिमेशन है, म्यूज़िक है। उसके लिए एक गाना भी बना था, रिकी के जो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, और सोनू निगम जी और मालिनी अवस्थी जी ने गाया है गाना। बस 3 दिन पहले हमने लॉन्च किया था, 50 लाख व्यूज ऑलरेडी हो गए उसके। बधाई हो, सुपर हिट है सब। रिकी के, सोनू निगम जी और मालिनी अवस्थी जी की एक मैजिक है ये। अरे नहीं, हम गाएंगे तो 50 लाख से फ्लॉप हो जाएगा। सुमित जी, मैं कहना चाहता था, अभी मनीष जी की जो आ रही है डॉक्यूमेंट्री, वो एक उसमें जो अब देखेंगे तो पता चलेगा क्या है, लेकिन जो एक कथा परंपरा, राम कथा परंपरा है, आज का दिन उस कथा परंपरा के भी नए अर्थ में आने का है। बिल्कुल। और वो कथा परंपरा के 2 तत्व हैं, संवेदना, यानी 2 ही मूल रस हैं, मूल भाव है भारतीय समाज के, एक है करुणा और दूसरा है प्रेम। राम उन दोनों के प्रतीक हैं, करुणा के और प्रेम के, और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ गिलहरी की भी स्टैचू बन रही है, और गिलहरी जिसके लिए राम इतने करुणामय हो गए थे कि उसको घायल हुई तो उठा के ले लिया। तो राम जो है वो हमारे जीवन में है, राम एक कथा के रूप में है, स्मृति के रूप में है, और जीवन के चर्या के रूप में है। तो मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री उसके कथा परंपरा को भी आगे बढ़ाएगी। आप इतिहास के बारे में, और आज का दिन इतिहास के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सुमित जी देखिए, जो भारतीय समाज है वह कभी भौतिकतावादी नहीं है। भारतीय समाज हमेशा आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और मानवतावादी। ऐसा होना चाहिए था जी, ऐसा हम लोग पहले थे, पर अब तो हम बहुत ज्यादा भौतिकतावादी हो गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से आज ये वक्त है अपने आप को टटोलने का भी। आज जो हमारे धार्मिक पुनर्जागरण का युग है, और आज एक ऐसा समय है जब हम अपने अतीत को वापस जा रहे हैं और अपने उन मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। चाहे मुगलों ने आक्रमण किया, मध्यकाल में इतने आक्रमण हुए, लेकिन हमारे समाज ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया। आज यह ऐसा पुनर्जागरण का युग है कि आज हम अपने समाज की उस मुख्य धारा की ओर वापस जा रहे हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा, इतिहास के लिए एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम दिन है। थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ हमारे संस्कृति का भाग रहा है, पुरुषार्थ हमारे संस्कृति का भाग रहा है, लेकिन वो धर्म से संबंधित है, उसके द्वारा मोक्ष की ओर जाना, केवल काम नहीं करना। तो ये जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कल्पना, इसलिए ये ना कहीं आध्यात्मिक थे, हम समृद्धि में भी सबसे आगे थे। आपको पता ही है, 18वीं शताब्दी तक भारत नंबर 1 था, वो इसलिए था हम धार्मिक थे। तो आज धार्मिकता और अर्थ का मूल जो है आज जुड़ के आज से शुरू होगा, ऐसा मानता हूँ, कम से कम मन में भाव जागेंगे। अगर अर्थ धर्म के साथ जुड़ा हो तो आशीर्वाद है, अगर अर्थ अधर्म के साथ जुड़ा हो तो श्राप है। बिल्कुल। और एक राम की बात हो रही है मारिया, मेरे साथ एक सज्जन है, दूर से आए, कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर के पास जोरा अलापुर से आया हुआ हूँ। मैंने सुना आप अभी चौपाई सुना रहे थे कुछ। हाँ, जिस समय राम भगवान का त्रेता में जन्म हुआ था, उस समय जो स्थिति हो गई थी उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। तो ऐसा माहौल आज भी यहाँ अयोध्या में देखने को मिल रहा है कि दिन का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी व्यतीत हो जाता है, ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। ये सुमित, यहाँ पर देखिए, ये महिला को कहाँ से आई पहनी हुई है, कितने अच्छे माता जी कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से। अच्छा, कब से आई हुई हैं? 15 तारीख से। और रहेंगी अभी? अभी रहेंगे 24 तारीख। पूरे अच्छे से तैयार हुई हैं आप? हाँ। मंदिर के दर्शन हो गए? अभी नहीं, अभी जाएंगी। और इतने साज सज्जा का क्या है खास आज?
भाव है मन का, राम जी के लिए मन का भाव तो राम जी के लिए है साज श्रृंगार, क्योंकि राम जी उनकी माँ के रूप में हमें देखेंगे तो हमें माँ के रूप में राम लल्ला है, हम उनकी माता बनने का सौभाग्य हमें मिला है यहाँ पर, इसलिए इंडियन ट्रेडिशन इज। हाँ बताइए, और बताइए। और तो राम जी तो यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं और होने वाले थे, ये हमारा सबका विश्वास था। ये जीत गया वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी की वजह से यहाँ पे जितने संत लोग आए हैं, जो पूरे देश से विदेश से आए, उनके दर्शन होना बहुत बड़ी बात हो गई। राम जी ने हमें सबके दर्शन करवाए, इससे हम बहुत धन्य हो गए। चलिए चलिए चलिए, you know, this is the point that I was trying to make, that because in Pran Pratishtha it is the size of the idol, which is a Ram Lala, the baby Ram, the child Ram. The relationship that Indians and Yes, they are able to they build. have with our Yes, God is yes. actually a personal relationship. That's right. So you can have the relationship of a child, you can have with a father, you can have a relationship of a friend, you can have a relationship of, there's so many, that's what makes the relationship so special. And that's what I think is the secret for the sustenance and the survival Yes. of our religion. Sumit had a मैं question. पंडित जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। आप प्राण प्रतिष्ठा के बारे में समझा रहे थे, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। सबसे पहले जब आँखों से पट्टी हटेगी प्रभु की प्रतिमा से, उनके सामने शीशा होगा, वो अपनी शक्ल खुद पहले देखेंगे, फिर कोई और देखेगा। इस परंपरा के क्या मायने हैं, इसको क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है? इसकी जो परंपरा है, दर्पण दर्शन। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिस वस्तु को देखने से आदमी खुद समझता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, वो चेहरे का हो या दिमाग का हो। अपने से आदमी सजावट बढ़िया करता है, परंतु चेहरा सुधारने का कार्य करता है। तो जो वैदिक विद्वान, जो हमारी परंपरा है, उस चीज़ से तो हमने किया, तो क्या प्रभु अपने आप में विराजमान हो गए हैं, इस वजह से दर्पण रखा जाता है। और कुछ परंपरा है कि कभी भी भगवान का अगर दर्शन करना हो तो आप डायरेक्ट नज़रें नहीं मिला सकते। पहले, अब इसमें मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़े से मैं समझा रहा हूँ कि पहले अगर भगवान का दर्शन करना हो तो सर्वप्रथम चरण, चरण के बाद नाभि, नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद प्रभु का नयन, और नयन से नयन को बिल्कुल मिला कर रखिए। और जब भगवान का दर्शन मुस्कुराते हुए जैसा आप भाव रखेंगे उस तरह से नज़र आएगा, और उसके बाद से नयन को बंद करना चाहिए। तो ये परंपरा है दर्पण दर्शन कराने का कि प्रभु आप अपने आप से देखिए कि आप अच्छे हैं और भगवान अच्छे हैं। तो पूरी कितनी देर तक देखिए? वो अपने आप से कुछ सेकंड के लिए है, ज़्यादा देर के नहीं। कहीं कहीं शीशा चटक भी जाता है। हाँ। ये परंपरा है, कहीं कहीं शीशा चटक जाता है। एक चीज़ में जो आपसे पूछना चाह रहा था कि हम लोग, सब लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जब प्रभु किसी भी भगवान की अपने घर के मंदिर में स्थापना करते हैं तो हम खरीद के लाते हैं, हम उसके दाम लगाते हैं, कीमत लगाते हैं, मोल भाव भी करते हैं कई बार कि 500 में नहीं दूंगा, 200 में लूँगा, तब तक उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं। लेकिन जब आप घर में लाके बिठा लेते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और एक बार उसकी आपने घर में प्रतिष्ठा कर दी, फिर आपको 200 के 2 करोड़ भी मिले तो आप किसी को नहीं देते हैं। सही है। यही है प्राण प्रतिष्ठा की, बिल्कुल है ना? मैं इसी नोट पर एक ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तमाम विभूतियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी लाइव कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी की विशेष पेशकश। काल उठते हैं, कहते हैं भैया राम राम। गाँव में अनाज तोला जाता है तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। हमारे यहाँ बालक का जन्म हो तो गीत राम के गाए जाते हैं, विवाह हो तो गीत राम के, दुख में भी हे राम, हाय राम, दुनिया छोड़कर जाए तो भी राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे जीवन में अमुस्यूत है, राम हमारे सांसों में है।
जय हिंद। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। Ayodhya is set for the grand temple opening. A journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हुआ। Pilgrims and visitors head to the holy city for the consecration of the Ram temple. प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। It's a historic event. The ancient city abuzz with change, where modern infrastructure meets age-old traditions. Every aspect of Ayodhya's transformation and the grand temple opening. On NDTV 24/7. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view. Because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav. Only on NDTV 24/7. सीता जी के परिवार की तरफ से अपने को साली मानते हुए राम को गाली देते हुए उनको जीजा मानते हुए पूजा होती है। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं रसिकों के, जब रात में भोजन कलेवा कराया जाता है तो राम जी को गाली सुनाई जाती है। बाप रे। और ये राम जी उसको प्रेम से सुनते हैं और भोजन करते हैं, ये परंपरा में निर्दिष्ट है। How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. One of the most important announcements which have been made over the last couple of days at the World Economic Forum and on the sidelines here in Davos, Switzerland, is the India growth story. There's nobody better placed to talk about growth in India than the RBI Governor. Mr. Shaktikanta Das joins us now. Thanks so very much for being with us. Sir, 7%. Extremely optimistic. It is in line, of course, with what some of the global projections are. What are some of the sectors driving this growth? You are talking of current year or next 24, year? 25. Okay. Now let me also, start by saying that India has recovered from the recent volatilities and the uncertainties and the challenges, this multiple turmoil one after the other, health crisis followed by all these geopolitical crises. So India has emerged out of it a lot better. Our macroeconomic stability is far better than most other countries. Financial stability is also, our financial sector is also doing well. And the 7% growth in the current year, when we said it for current year, it looked optimistic. But as you know, the National Statistical Office has given a number of 7.3%. Now talking of 24-25, I made a statement in some other forum yesterday that we expect, I have a sense that the economy will touch a real GDP growth of 7% next year. And I said this on the basis of the overall macroeconomic conditions prevailing in the country. You see, all economic activities, the momentum of economic activities are remaining very positive. And we have reasons to believe that this positivity, this momentum will be maintained well into next year and beyond.
I have made a statement also that India has now entered into a period of growth long haul. Yes. And economic activities are holding their ground. Momentum of economic activity is maintained. Aggregate demand conditions are remaining positive. Investment activity has started picking up, backed by continued high capital expenditure by the government. Private sector capex is also picking up, and agriculture sector in the current year and also expected to do better in the next year. So with all these confluence of factors and with lot of activity also happening in with regard to investment in the new age technologies like fintech, in start. In another 5 minutes. Those who are dignitaries inside the temple premises have already started arriving and perhaps looking at their own seats. 10,000 lucky people from all over the world, Amish, have arrived. You know, there was this invitation controversy also about which I'm going to speak to you. But before that, a group of women who have come from Bihar. ये पटना से आई हैं, मेरे शहर से आई हैं, इसलिए ये खास भी हैं और मैं इनसे पूछूंगी कि कितने दिनों से यहाँ अयोध्या में हैं। आप कितने दिनों से हैं? 17 तारीख से हैं। और कितना दिन रहेंगी? और दर्शन होगा तो जाएंगे। दर्शन होगा। उसके अभी कुछ गाना गा रही थी आप लोग, जरा गीत सुनाइए। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, नथिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, नथिया भी लूंगी, और लूंगी गले हारा, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, के कैया मैया दे दो बधाई। सोना भी लूंगी मैया, चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया, चांदी भी लूंगी, और लूंगी मोतियन की माला, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, सुमित्रा मैया दे दो बधाई। मारिया कौशल्या माता की बात कर रही हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है ये वही कनेक्शन है। और लूंगी लाख रुपया, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हमें ये समझाइए सिग्निफिकेंस। You're the one from Bihar. You should explain it. Please go ahead. Jai Shri Ram. No, you're from Bihar. You should. मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, भगवान के घर में पैदा हुए हैं, माता जी को बधाई दी जा रही है। सभी इसीलिए कौशल्या माता की बार बार बात की जा रही थी इस गीत में, है ना। और ये तमाम माताएं हैं, तो आज इनके लिए डबल खुशी का दिन है। आज इनके राम लला आए हैं, है ना। आंखों में आंसू हैं इनके, भाई भावुक हो रही हैं, आंखों में आंसू है माता जी के। पटना से आई हैं, लला दर्शन करके जाएंगी। और फिर पहले कभी अयोध्या आई हैं? 2 बार आए हैं, रामनवमी में आए हैं दर्शन। रामनवमी में आई थी। रामनवमी के और भी गीत हैं। राम भक्त है। थक गई, फिर से आएंगे आप लोग के पास मेरे साथ भी करने के लिए। मेरे साथ भी कुछ लोग खास हैं, इनका भी परिचय कराना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, गोधरा तालुका से आए हैं। गोधरा तालुका से आए आप? साथ में ये मेरी पत्नी है, अच्छा। पति पत्नी है, और पति पत्नी है हम लोग। कब से चल रहे हैं? पैदल यात्री हैं? हाँ, पैदल यात्री। हम 23 दिसंबर से चले थे और अयोध्या में हम 19 जनवरी में आ गए थे। 23 दिसंबर से 19 जनवरी पैदल चलकर गुजरात के गोधरा से यूपी के अयोध्या पहुंचे हैं। नाम क्या हुआ आपका? हम तो ऐसे नाम बताइए ना। राठौड़ भाविक। भाविक साहब, क्यों आए हैं, पदयात्रा क्यों कर? बस 500 साल बाद राम जी आए, राम मंदिर उद्घाटन है, हम पैदल ही मन से निकल ही गए हैं। आप करते क्या हैं? अब जॉब करते हैं। तो छुट्टी मिल गई आपको? हाँ, छुट्टी तो नहीं मिलेगी तो भी हम निकल गए हैं। आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है अयोध्या? बस बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ की हैं?
गोधरा से। गोधरा से ही हैं? पति पत्नी है। हाँ हाँ, आपने बताया पति पत्नी है। हाँ, आप भी आए हैं? आप कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश महाकाल से आए हैं। बाबा महाकाल की नगरी से आए हैं हम। 4 बड़े भाई साहब है हमारे। बाढ़ स्नान हमारा गांव है। हम 26 दिसंबर को निकले थे, जो कि यहाँ 18 तारीख को पहुँच गए थे। ठंड बहुत होगी रास्ते में? रास्ते में ठंड तो थी। कितना चलते थे रोज? हम 50-60 किलोमीटर डेली का चल रहे थे। हमारा 1500 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है भगवान के आशीर्वाद से। ये भारत यात्रा का एक और नमूना। सर हम बुंदेलखंड से आए हैं, बागेश्वर धाम से आए हैं। अच्छा, आप भी पैदल आए? बिल्कुल पैदल आए हैं। जल गगन मगन हर सारा श्री राम अयोध्या आ गए। मैंने एक संगीत, एक राम भजन का प्रस्तुत के कथा का बात। तो पटेल है ना, मुकेश पटेल। आप मुझे मिले थे 2 दिन पहले। हाँ, देखिए नाम याद है मुझे। आप भी आए हैं? दीनदयाल सिंह राठौर नाम है मेरा, भाटपटलाना रहना है, उज्जैन जिले से रहने वाला हूँ। आप भी पैदल चल के आए? पैदल चल कर आए हैं। करीब 20-25 कार्ड भी है। हम 26 तारीख के दिन निकले थे गुरु, 26 तारीख के दिन निकले थे और 18 तारीख के दिन यहाँ पहुँचे। क्यों आए हैं पैदल? राम सुविधा थी, गाड़ी थी, ट्रेन थी, हवाई जहाज था, फिर क्यों? मेरी एक तमन्ना थी, पैदल जाने की तमन्ना थी। 2 साल से मैंने सोच रखा था, इसीलिए मैं पैदल आया। राम जब विराजमान होंगे उनके दर्शन पैदल आकर ही करूँगा। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की भक्ति को? देखिए, जैसा मारिया कह रही थी, राम से सबका एक पर्सनल रिलेशन है। आप बिहार नेपाल में जाते हैं, वहाँ पे वो दामाद हो जाते हैं, दूल्हा राम हो जाते हैं। आप यहाँ आते हैं, वो लला राम हो जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ दंडकारण्य में जाते हैं, वो वनवासी राम हो जाते हैं। आप फिर वो युद्ध लड़ते हैं तो वो शूरवीर राम हो जाते हैं। तो सबका अपना अपना एंगेजमेंट है राम से। अपने राम। और देखिए, लोग 500 किलोमीटर चल के आए हैं। कल मैं रतन शारदा जी सड़कों पर घूम रहे थे, कुछ साइकिल चला के बाप बेटे सरदार जी रुद्रपुर से यहाँ से आए हैं। और कुछ लोग ऐसे अभागे हैं जिनके हाथ में इन्विटेशन है, जेब में पैसे हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट है, फिर भी घर पे बैठे हैं। उन अभागों का क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पेरेंट्स हैं जिन्होंने, जिनके बेटे ने एक YouTube पर भजन डाला है। तो आपको याद है वो भजन? जरा सुना दीजिए। मेरे बेटे ने कल YouTube शाम को 6 बजे भजन डाला है। हर्ष मंडलोई, आप सर्च करें। भजन के बोल है राम जय सिया राम, जय सिया राम, जप ले प्यारे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जप ले प्यारे जय सिया राम। सिया राम के जपने से बन जाए तेरे बिगड़े काम। जय सिया राम, जय सिया राम, जप ले प्यारे जय सिया राम। अब हर्ष मंडलोई सर्च करें और ये बड़ा प्यारा भजन है। ये देखिए कितना अच्छा है, कितना इनोसेंस देखो ना। कितने प्यार से उन्होंने बता दिया। YouTube पर है। You know, this is, I'll just take that communication forward. I mean, conversation, I would say. That personal connect that we have talked about, in every state of India, they have their own relationship with Lord Ram. Absolutely, and that's what actually makes this relationship so special, and that's what I think what what I said, actually that's Shantanu was talking about. That's what actually continues the relationship going forward, because it's not that all of us are forced to get into one paradigm. Someone may actually look at Shri Ram as a child. Someone may look at Shri Ram as a protector because he's a warrior. And there are so many tribal versions of the Ramayana, so many in the forest, because Shri Ram spent so much time in the forest. You know, I always tell there is Valmiki Ramayana and there is Amish Tripaঠি's Ramayana, right? So there are versions of Ramayana. Amish Tripaঠি's Ramayana, please go ahead. नहीं, वो सुनना भी पाप है. Valmiki ji is a god among writers. But yeah, that's what makes, I think, our culture so special. All of us have a right to find our own relationship with Lord Ram, and I'll not judge your relationship. You'll not judge my relationship. You know, that's what makes it so beautiful. यही तो खूबसूरती है। इनफैक्ट आप कहाँ से? आप कहाँ से आए? सर मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। और क्या आप भी क्या पैदल यात्री हैं? नहीं, मैं पैदल यात्री तो नहीं हूँ, लेकिन जब इनविटेशन तो नहीं आया, लेकिन हम फिर भी चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्यों आए हैं? क्या क्या सोच के आए? जब 6 दिसंबर 1992 में घटना हुई तब तो हम यहाँ नहीं थे। मैं उस समय 13 दिन का ही था, लेकिन आज इस उम्र में तो आ चुका हूँ कि मैं रामलला के दर्शन करने आ सकूँ और इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक क्षण का भागीदार बन सकूँ। क्या बात है! ऐसी गिरीश जी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक क्षण है लोगों के लिए। सुमित जी, अभी जो आप जन चेतना देख रहे हैं, लोगों का भाव देख रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिर को तोड़ा, हमारे पुस्तकालय को जलाया, लेकिन इस लोक चेतना को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि राम कण कण में व्याप्त थे। और आज उसी चेतना का आप देख रहे हैं, लोग कितने भावुक हो जा रहे हैं। तो भगवान राम आज भले ही रामलला मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में और हमारे कण कण में पहले से बसे Yes. आज उसी चेतना को आप देख रहे हैं। Yes, Ratan Shada ji. You know, this thought, we are also looking at, we are in Awadh, that Awadhi culture that we keep talking about. It's about unity, the day of unity. Right.
See, Awadh was the religious capital, the spiritual capital. Yes. I would say in today's world, Vatican of Bharat, in sense that it was Ram Rajya there it was. And also you like see, we are basically Republic of Faith. Everybody enjoys his faith. One can create a new faith, one can create a new sect. They are welcome. They become gurus. They are not hanged like other Western ways. And secondly, we are the only one who create God in our own image. अगर मुझे बचपन पसंद है तो राम का बचपन देखता हूँ, हंसना खेलता है तो कृष्ण को देखता हूँ, ज्ञान चाहिए तो कृष्ण को देखता हूँ, धीर गंभीर चाहिए तो बुद्ध को देखता हूँ. ये भगवान को अपने रूप में प्रोजेक्ट करना ये भारत की खासियत है. इसलिए भगवान से सब प्रेम करते हैं, कोई डरता नहीं है. आपने नहीं डरने की बात की रतन जी. मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो धार से आए मध्य प्रदेश से, और तब से मेरे पीछे कान में कुछ बोले जा रहे हैं. अब मुझे लग रहा है कि इनको मौका देना ही पड़ेगा. जी दिलीप बाहेती, हमारे राम जी ने राक्षसों से लड़ाई की है और 500 साल तक हमारे बोलिए मोदी जी दिखने वाले हैं. देवत्व को बचाने संघर्ष भी किए हैं, हमने ददीची बनकर निज प्राण तक दिए हैं. अज्ञान के तिमिर में जब जग भटक रहा था, विज्ञान की प्रगति का पहिया अटक रहा था, तब ज्ञान के दिवाकर हमने जला दिए थे. देवत्व को बचाने संघर्ष भी किए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद भारिया. और इसी प्रधानमंत्री पहुंच गए. बस पहुंचने वाले 5 मिनट. आपके पास खबर सबसे पहले आएगी. जी 5 चेक करते रहिए अपने फोन को. इसीलिए ब्रेक कर लेते हैं. ब्रेक लीजिए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री किसी भी पल अयोध्या में पहुंचने वाले. सीधी तस्वीरें लेकर आपके सामने तुरंत हाजिर होते हैं. तो राम के आगमन से, राम की पुनर्प्रतिष्ठा से जो समावेशिता की पृष्ठभूमि फिर से निर्मित होगी, पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर को पश्चिम से जोड़ता है, उस सहृदयता का प्रतीक है अयोध्या. वो बने और वैसी दिवाली सबके दिलों में मने, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती. Ayodhya is set for the Grand Temple opening. A journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हुआ. Pilgrims and visitors head to the holy city for the consecration of the Ram Temple. प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है. It's a historic event. The ancient city abuzz with change, where modern infrastructure meets age-old traditions. Every aspect of Ayodhya's transformation and the Grand Temple opening on NDTV 24/7. इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ. स्टोन स्ट्रक्चर, कोई भी पत्थर 100-200 साल में खत्म नहीं होता है, शाश्वत है वो. इसलिए ये भी सैंडस्टोन है. राजस्थान भरतपुर जिला, इसका एक गांव है बंसी पालपुर, वहाँ की पहाड़ियों का पत्थर है. ये पिंक है कलर, देखने में अच्छा लगता है. पानी पड़ने से सुंदरता बढ़ती है. और जो कुछ नक्काशी है वो मंदिरों में परंपरागत होती है. इंजीनियरिंग का जो योगदान है वो योगदान है जमीन के नीचे. All the soil was to be taken out and a new engineered soil that was to be replaced there. So that is the kind of thing which was done. Welcome to Serious Business on NDTV. $1 has only secured 0.6 cents of private capital. That needs to fundamentally change. By mid-century, India's economy will grow 8-fold. One topic. When a family comes out of the poverty line,
what would be the first asset class they would buy? It's gold. One speaker. It's the biggest attack on Jews since the Holocaust. If you want to control inflation, you need to play the trade policy. UPI, Aadhaar, all of that, where India is well ahead of the West. 5 trillion is a short-term goal. I would like to see India becoming a $30 trillion economy. One of the key themes at the World Economic Forum meet here in Davos, Switzerland is artificial intelligence, the future of AI, generative AI. We've got a wonderful guest with us, Roshni Nadar with us, the chairperson of HCL Tech. Thanks very much, Roshni, for being with us. What is HCL doing presently as far as AI is concerned? What are some of the technologies and ideas that you're exploring? So I think with AI, there are two parts. So one is what we're doing in terms of working with a lot of our customers. We have more than 150 generative AI labs all over the world, in India as well, working on specific use case for each industry. So I think that's one part. The other is, we are an organization of 250,000 people, and a lot of them will have to learn a lot of these new technologies. So we already have about 70,000 of our workforce, which is upskilling at the moment in these new skills. And you have to realize that I think a lot of people talk about AI as the technology and what it's going to do in the industry and in the world. But in our industry, where the average age is 25, most of our young people are already users of generative AI in life. So I think that having to retrain them and upskill them into how to use it in the workplace and how to use it for the solutions is the two aspects that one has to focus on. What about the entire argument that there's going to be a lot of retrenchment, a lot of people losing jobs because of AI? So I can just say that we've had a net addition this year, including in the last quarter as well. And again, I think the dynamics of the work pyramid in an organization and an industry such as ours changes. But, we've had cycles of automation before. We've had cycles of new technology before. If at all, it has only created an ecosystem of applications around AI. AI and generative AI in itself, even to a customer, is not of any use unless they're able to work around their data strategy, data infrastructure, their cloud strategy. So I think there are lots of new skills which are replacing old skills where you can upskill people, but it's not necessarily replacing jobs. Can you just crystal gaze a little bit for us? We know what some of the generative AI apps are right now. We know some of the AI apps or AI programs and solutions which are available. 5 years later, what are some of the ideas we may be seeing coming online? So I think, we tend to overestimate AI's impact in the short term, but tend to underestimate it in the medium to long term. Sure. So I think even in 5 years, I think most of the innovation that broadcast across NDTV network, where Sumit and I are coming to you live from Ram Ki Paidi, hardly 2 kilometers away from Ram Temple, with several special guests. You can see all of them right here. And Sumit, we have managed to speak to quite a few people और हर जगह से आए हैं. अब ये आप सोच रहे होंगे मारिया अचानक से भीड़ क्यों कम हो गई? हाँ. उसकी वजह बहुत साफ है. 10:45 हो गया है. अब सब लोग टीवी के सामने बैठे हैं. टीवी की स्क्रीन के सामने हैं. उनको ये देख रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं. मैं बता दूं, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन पहुंच चुके हैं. अब वो रास्ते में, आई थिंक जब तक हम बात कर रहे हैं पहुंच जाएंगे. और रणवीर आलिया, कटरीना, राजकुमार हिरानी, सब पहुंच चुके हैं. कौशल, माधुरी दीक्षित, ये सब भी पहुंच गए सुबह सुबह. तो तमाम महान हस्तियां इस वक्त अयोध्या में हैं, और वो सब महान नहीं है. आज एक ही व्यक्ति महान है, और वो है प्रभु राम. जी हमेशा इसी बात पर सब लोग यहाँ पर, पूरे देश में एक ही वीआईपी प्रभु श्री राम, जो 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है. हाँ करे. जी अब हम लोग जरा सा सुमित इनसे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि प्राण, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे लगातार, अगर आप आसान तरीके से समझा सके पंडित जी कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है.
और इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी प्रतिमा बनी 6 महीने में, प्रतिमा की तस्वीर आ चुकी है 3 दिन पहले, प्रतिमा गर्भगृह में पहुंच चुकी है 3 दिन पहले, फिर ये पूरा प्रोसेस 10-11 दिन से क्या चल रहा है? और उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का सीधे से अर्थ है कि किसी भी निर्जीव में सजीव कर देना, प्राण डालना। तो वो अभी पत्थर हैं और पत्थर प्रत्येक जगह आपको दिखाई पड़ेगा। पत्थर वही हैं, एक पूजा जाता है और एक पे हम लोग खड़े हैं। पत्थर वही हैं, परंतु उसने सहन किया। जो कारीगर था उसकी छेनी हथौड़ी का मार सहन किया, और मार सहन करते करते जब वो एक आकार ले लिया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री रामचरितमानस में जिस समय विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जा रहे थे, तो विश्वामित्र जी तो जान रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सभी लोग जान रहे थे कि यही मूर्ति बैठाई जाएगी, लेकिन कैसे होगा इसको वैदिक विद्वान जानते हैं, और किस परंपरा से करना है इसको ब्राह्मण ही जान पाते हैं। तो जिस तरह जो अभी सुमित ने सवाल पूछा, क्या क्या होगा और क्या क्या हो चुका है, इतने सारे रिचुअल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मूर्ति को बनाई जाती है। अब उसमें जो पाप लग जाते हैं, कहीं पे चोट लगा है, हम उसको एक रूप दे रहे हैं, और रूप देने में जो किसी प्रकार से रोक रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं, तो जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। जय श्री राम। उससे पहले जरा यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पहले पूछ लेते, फिर वापस आएंगे। प्रधानमंत्री आ चुके हैं? जी, प्रधानमंत्री जी तो 2014 से आ चुके हैं। यहाँ पर आए अयोध्या में। अयोध्या में आ चुके हैं, और उनका मन, उनका दिल बहुत पहले से आ चुका है। इसमें वो लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और जो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मंदिर बनने से यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए ही सब कुछ है, इवन कि जितने भी यहाँ हिंदू नॉन हिंदू जितने भी लोग रह रहे हैं सबको रोजगार भी मिलने वाला है। यहाँ स्कूल भी आएंगे, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ हर चीज़ होगी। आपने एकदम सही कहा कि यहाँ पर सब लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमी बूम करेगी। जी बिल्कुल। आप कुछ समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, मिलके बोलो खोल के बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम, मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम, साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम। कई वर्षों के कठिन दिनों से दिन ये आए महान, मिलके बोलो खोल के बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। मथुरा काशी और ज्ञान वापी हम सब को है ध्यान, मथुरा काशी और ज्ञान वापी हम सब को है ध्यान। नगर अयोध्या राजा राम जी आ गए हैं भगवान, मिलके बोलो खोल के बोलो। Live visuals are coming now of the Prime Minister who has arrived. In fact, you can see those visuals also coming in from the temple premises, where all the dignitaries have also started being seated now. लेकिन यहाँ पर जनता है, और जनता जनार्दन है। मैं भवानी मंडी राजस्थान से आया हूँ। भारत में दीपावली हर साल मनाई जाती है, या तो दो बार या राम भगवान श्रीलंका से आए थे तब दीपावली मनाई थी, या सबसे बड़ी आज दीपावली मनाई जा रही है। पर जो लोग हमारे राम मंदिर को राम बनवाने वाले हैं, राम जी आने वाले हैं, तो जो पार्टी इनको लेकर आई, जो संत इनको लेकर आए, पर ये राम जी यहाँ पर आगे विराजमान होने वाले हैं कुछ घंटों में। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनों के पेट में दर्द हो रहा है, वो लोग आए नहीं। जी, वो सुनाने वाले हैं भाई। आप सुनाना चाह रहे हैं? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि राम आए अयोध्या चलो री सखी, राम आए, अरे कौन के सिर पे मुकुट विराजे, और कौन के हाथ में मन मुंदड़ी। So the visuals are now
coming in from inside the temple premises, which is spread over 100 acres. And that's where all the dignitaries have started being seated and they are waiting for the Prime Minister to arrive. सिर्फ हमारे यहाँ 1.5 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, लगभग 1.5 घंटे का वक्त रह गया। और सुमित, यहाँ पर खासियत ये है कि अयोध्या में जब से हम लोग आए हैं, हम लोगों को कोई बैंड बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा लोग आपस में उत्सव है, बिल्कुल आकर के लोग गाना गा रहे हैं। ये क्या है अमी? It's just a devotion to Lord Ram. वही है। श्री राम की महिमा है, श्री राम जी की खुशी है, राम जी की कृपा है। जी, एक सब जी, आप आई थॉट आप कुछ गाने वाले थे। हम जो है आपको 90 का और 92 का जो है नहीं, आज का दिन खास है, तो पहले हम लोग आज के दिन की चर्चा करते हैं। देखिए, जी बात करते हैं। हाँ, श्रद्धा दिखाने के कई पहलू हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग अभी आपने वो बाबा का इतना एक योग देखा। सब प्रभु श्री राम की महिमा है और उत्सव का माहौल है यहाँ पे। आपने एकदम सही कहा, दूसरी दिवाली है। नहीं, और यहाँ पर हर नूक एंड कॉर्नर में अयोध्या के एक गायक है और एक आर्टिस्ट है जो अभी देखिए। और ये इतना सुंदर हनुमान जी का एक चित्र बना है। इट्स फ्रॉम डिफरेंट स्क्वायर्स, करीब 360 ऐसे कुछ 600 बनाए गए हैं। और हनुमान जी का और श्री राम और सीता माँ भी यहाँ पे इतना ये आपने इसका जिक्र कर दिया अमीश, तो मैं लोग दर्शक को बता देना चाहिए, YouTube चैनल है इन आर्टिस्ट का। बड़े बच्चे जो है बस्ती के रहने वाले हैं, वो उसका नाम भी लिखा हुआ, अगर हम दिखा सकें, YouTube आर्टिस्ट RN9506। ये इस वक्त आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। ऐसी तमाम कलाकार, तमाम कमाल इन तीनों बच्चों ने किए हुए हैं। अब इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं मेरे सामने, मैंने YouTube पर अपना चैनल खोला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। जी। आपने देखा होगा चारों तरफ बिल्कुल। जिस तरीके से फूल लगाए गए हैं, गुलदस्ते लगाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? केवल मंदिर ही नहीं, अगर आप एयरपोर्ट से आए, रेलवे स्टेशन से आए, बस स्टैंड से आए, तो पूरी अयोध्या सजी है। जैसी वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, ऐसा लगता है त्रेता फिर से आ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब उतरे हैं तो एक कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, बल्कि कॉन्फिडेंस नहीं, देवयोग है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा चली थी तो उसके सारे पुर्जे जोड़े थे नरेंद्र मोदी ने, और आज जब मंदिर बन रहा है तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, उनके गुरु पहली राम मंदिर कमेटी के VHP के अध्यक्ष थे। उनके दादा गुरु ने पहली बार जब मूर्तियां प्रकट हुई थी तो पहली बार पूजा करी थी, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है राम लला भी इंतजार कर रहे थे जब राम राज्य के लक्षण दिखने लगेंगे तभी मैं लौट के आऊंगा। रतन शारदा जी, इसी बात को आगे ले जाएंगे, जिस तरह से जिस खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है, उसके अलावा पूरी अयोध्या नगरी। आज अगर आप देखेंगे समाचार तो सारे नगर सजाए गए हैं, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। ये जन जन के मन के नाम प्रकट हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि धर्म जो हमारे यहाँ जिंदा रहा, यही सर्वसाधारण भक्त, यही सर्वसाधारण व्यक्ति जिनको फेसलेस सिटीजन्स बोलते हैं, उनके कारण धर्म चला है। इसके कारण आज भी 10,000 साल से हमारा धर्म इस ज़मीन पर है। राम आज भी हैं, कृष्ण आज भी हैं। उसका मुख्य कारण हमारे जन जन के अंदर चेतना। पीछे देखा तरुण लोग हैं, दक्षिण से आए हुए लगते हैं मुझे, वहाँ से लेकर सभी, ये जो सर्वसाधारण के मन में जो राम है ना, वही राम को आज सभ्यता हमारी आज तक चला रही है। जी। और एक बात अभी कह दूं, NDTV पे नहीं कहूँगा तो और कहाँ पे कहूँगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है यहाँ पे 25 तारीख को। उसमें हमने दूसरे दर्शनार्थियों को भी दिखाया है डॉक्यूमेंट्री में। एक मंदिर में हमने एक शूटिंग की थी। एक राम रसिक करके हैं, जो मर्द होते हैं, महिला की वेशभूषा में वो आते हैं और मानते हैं कि वो सीता माँ के परिवार से हैं, सीता माँ की सखियाँ हैं और प्रभु श्री राम उनके जीजा जी हैं। और वैसे उनकी आराधना की जाती है। मंगनियार मुसलमान हैं, राजस्थान से मुसलमान कौम है, प्रभु श्री राम के भजन गाते हैं। बिल्कुल। और उनकी हमने एक रिकॉर्डिंग की वही मंदिर के सामने, और ये सब डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा। 25 तारीख को आ रहा है, शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे NDTV पे 25 तारीख को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब मंदिर प्रांगण में अगर हम लोगों ने तस्वीरें देखी हों, जो लोग इस वक्त स्क्रीन नहीं ऑन कर पा रहे हैं, सामने चेयर्स लगी हुई हैं। जितने जो सो कॉल्ड 7,000, 8,000, 10,000 जो VVIPs हैं, उनके बैठने का वहाँ इंतज़ाम किया गया है। खुले में बैठे हुए हैं इस वक्त की तस्वीरों में, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं और ये तस्वीरें शायद कुछ देर पहले की होंगी। इसमें हम तमाम फिल्म स्टार्स को देख पा रहे हैं। मुझे कुमार मंगलम बिरला साहब दिख रहे हैं तस्वीरों में, अभी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट दिखे, BJP के नेता रामलाल जी दिख रहे हैं इसमें इन तस्वीरों में, अभिषेक बच्चन दिखे मुझे वहाँ पर। तो तमाम VVIPs वहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से पूरे मंदिर को सजाया गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहली बार कोई ऐसा काम जो आज तक किसी ने देखा ना हो। सुमित जी, जिस तरह से अलग अलग फूलों से अयोध्या को सजाया गया है, राम मंदिर को सजाया गया है,
इससे यह भी संदेश है कि धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, संप्रदाय के भेद को छोड़ करके जैसे अलग अलग फूलों से महक रहा है, ऐसे हमारा पूरा देश महके। और यही राम राज्य का संदेश है, यही ईश्वर प्रभु राम का संदेश है कि हमारी मुस्लिम बहनें भी आज यहाँ गा रही हैं, हमारा मुस्लिम समाज भी साथ में खड़ा है। और तो इसी प्रकार से मारिया जी हमारा देश महकता रहे जी। और पूरे राम पथ पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग आए हैं और गायक आए हैं, बच्चियां आई हैं, सब अपने अपने तरीके से, यू नो, दैट इज व्हाट इंडिया इज अबाउट। मुझे लगता है प्रधानमंत्री गुजरेंगे उसी वहाँ रास्ते से गुजरेंगे, वो और मिलेगा, सबका विजुअल मिलेगा बड़ा शानदार सा। और सबका एक परफॉर्मेंस चल रहा है, वही पूरे राम पथ। और सब लोग कलाकार हैं, बिल्कुल लोग कलाकार हैं, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। और फिर लता मंगेशकर चौक पर क्या पता फिर से प्रधानमंत्री अपनी लता दीदी को एक ट्रिब्यूट पेश करे। लेकिन सुमित, उस पार दिए लगने लगे हैं और कुछ देर में, परहैप्स 5 से 6 घंटे के बाद वो पूरा जल जाएगा और पूरा वो वहाँ पर रोशनी हो जाएगी और एक फिर से दीपोत्सव मनाया जाएगा अयोध्या में। अब सब वहाँ पर सजावट हो गई है। सजावट के बारे में बताइए कि राम नगरी, राजा राम की नगरी में सजावट कैसी थी? सजावट राम नगरी त्रेता युग से सुहावनी है, क्योंकि ये वो नगर है जिस नगर के ऋणी आज भी इंद्रदेव हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर बचन न जाई। आखिर ये क्यों लिखी गई चौपाई? तो इसका मैं गुप्त चीज़ बताता हूँ, ये कोई बता नहीं पाता है। रघुकुल रीत, रघु राजा बिल्कुल साधारण स्वरूप में रहते थे, कोई नहीं जान पाता था कि ये राजा हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्रदेव के पास खजाने खत्म हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब कैसे हम संसार को चलाएंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पे जाओ, वहाँ पे एक राजा है रघु, जिस नगरी के नाम है अयोध्या। तो देख रहे नगर तो बढ़िया का मतलब वो आपने बताया था, फिर से बताइए जी। अयोध्या का अर्थ होता है अयुद्ध, जिसको युद्ध से कभी भी जीता न जा सके। क्योंकि रावण एक राजा था इस देश के, इस राज्य के, इस क्षेत्र के, इस भूमंडल के। तो वो जब चलता था तो पृथ्वी हिल जाती थी, देवता भाग जाते थे, तो आखिर इसका विनाश होगा कैसे? तो इसके विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या। कटरीना कैफ सुपरस्टार हैं और उनकी तस्वीरें आ रही हैं। आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर सब पहुंच चुके हैं। माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड मिस्टर नने के साथ भी आ चुकी हैं। जी। तो बता रहे थे कि जिस समय जब इंद्रदेव के पास खजाना खत्म हुआ तो इंद्रदेव यहाँ आए। इंद्रदेव ने देखा कि भाई जिस राजा के बारे में बताए वो तो बिल्कुल फटी हुई लुंगी पहना हुआ है और पहले मिट्टी के पात्र होते थे, उसी में वो जल पी रहे थे। इंद्रदेव देख करके आश्चर्यचकित कि इस व्यक्ति से हम धन क्या मांगे जिसके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। इंद्रदेव सोच में पड़े, फिर जाने लगे। राजा रघु पहचान गए, क्योंकि ये वो अयोध्या है कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसही रामधन पानी। जब तक राम जी हृदय में नहीं बसेंगे तब तक अयोध्या को कोई जान नहीं पाएगा। तो रघु जी ने आवाज दिया। इनके बारे में क्या? ये देखिए, छोटे से हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो नारायण की नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, नारायण की नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या जी से। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? आज तो बहुत हर्षोल्लास का दिन है और भगवान प्रभु जो है राम श्री अपने जो है भवन में पधार रहे हैं 500 वर्षों के बाद। अरे वाह, आप तो 500 वर्षों की बात कर रहे हैं। मैं तस्वीरें भी बताता जा रहा हूँ। ये देखिए लाइव तस्वीरें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके शहर में पहुँच चुके हैं, अयोध्या धाम में। और देखिए सूरज भी निकल आया आज सुबह से ठंडक थी, सूरज भी निकल आया है। सूर्य निकलने का एक और कारण है। सूर्य इसलिए निकल रहा है क्योंकि उनके वंशज का कार्य है, वो सूर्यवंश का कार्य है, सूर्यवंशी थे। भगवान तो अपने जो है बच्चों का कौन ध्यान नहीं देता है, तो सूर्यवंश होने के नाते उनका उदय होना अत्यावश्यक था। कल जब मौसम का टेलीकास्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, फोरकास्ट हो रहा था, ओवरकास्ट था।
प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर साकेत डिग्री कॉलेज में हेलीपैड पे उतरेगा थोड़ी देर में, और उसकी भी तस्वीरें आएंगी। लेकिन जो तस्वीर की बात कर रहे थे, ये मैं मौसम की बात कर रहा था। कल हमने मौसम के बारे में बात की थी। फोरकास्ट था। हाँ, फोरकास्ट था कि घने बादल छाए रहेंगे, हवा चल सकती है, ठंडा रहेगा, टेम्परेचर भले ही 6 डिग्री है लेकिन फील 4 डिग्री होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रही, गर्मी है। श्री राम सूर्यवंशी है तो सूरज कैसे नहीं आएगा? ऐसी है, अवध प्रभाव जानत प्राणी। तो मैं बता रहा था कि जब इंद्रदेव परेशान हुए तो राजा रघु ने आवाज दिया कि भाई कहाँ के हो, आओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो इंद्रदेव ने कहा महाराज क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं। जैसे इतनी बात कहा, राजा रघु ने कहा मांग करो। उन्होंने कहा कि मेरे पास खजाने कमी है और कुछ रुपया पैसा ही तो लोग दे सकते और क्या दे सकते। तो उन्होंने कहा मुझे मणि दे दो। राजा रघु ने कहा सुबह आओ और लेकर जाओ। इंद्रदेव कुछ देर तक आए नहीं, तो राजा रघु ने भोजपत्र उठाया, जो आज भी भोजपत्र मान्य है, वो सतयुग का पत्र है। भोजपत्र ने राजा रघु ने लिखा, मैं अयोध्या का नृपति रघु, कुबेर देव से मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके अयोध्या में मणि भेजी जाए। अच्छा। और उसी रातों रात मणि आया, जो आज मणि पर्वत के रूप में विराजमान है अयोध्या में। शायद वहाँ भी जाएंगे प्रधानमंत्री, शायद जी जाएंगे। हाँ, बताइए। क्या पता है? मैं जानता हूँ कि वहाँ अभी जा रहे हैं राम जन्मभूमि कार्यक्रम में, मेरा अपना कार्ड है, जाना है। तो मैं यहाँ चला आया था। और हमको तो ये है कि जो जिस मुहूर्त में आज भगवान का अभिजीत मुहूर्त के साथ सर्वसिद्धि योग है, और जो 22 अंक है, जो आज 22 तारीख है, 22 मतलब होता है कि 22 जो है मतलब 22 का बहुत बड़ा महत्व है। 22 जो अंक है, इसका मतलब है जो राम है, राम अक्षर 2 अक्षर, तो वह जो है उसको मिलाओ 22, तो उसका अंक मूलांक होता है 7 आखिर में। और 7 मूलांक का मतलब है वो सर्वसिद्धि योग है, और सारे योग ऐसे बन रहे हैं। हमारे साथ कुछ और वहाँ वो उन्होंने बहुत हमेशा दीपोत्सव की तैयारी की है। अच्छा। और हमेशा इन्वॉल्व रहे, प्रोफेसर हैं लोकल यहाँ। क्या बात। जी जी जी, आज भी है दीपोत्सव? आज भी एक दीपोत्सव ही है। आज तो सबसे भव्य और दिव्य दीपोत्सव है। शायद इस कलयुग में इससे बड़ा दीपोत्सव नहीं कहीं सुनाई देता है। और मेरा भाग्य है, अहोभाग्य है मेरा, कि मेरे कितने पुरखों ने जो चीज़ देखने के लिए आस जुगाए हुए चले गए, आज मैं वो देख रहा हूँ कि देश में आज एक नया दीपोत्सव, हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। ये बड़ा हर्ष का, आनंद का विषय है। आज मन आह्लादित है। क्या बताएं, आज जो है इस अयोध्या में रहने का ही जो सुख है, उस सुख की अनुभूति कहीं और नहीं की जा सकती है। आज जो है लगता है कि हम जो है कृतार्थ हो गए, किसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि मैं आज अयोध्या में यहाँ सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पर खड़ा हूँ। क्या बात, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, सबसे पहले मैं किशन भारद्वाज, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर हूँ मैं। तो मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है ये, कि मुझे इतना अच्छा और स्वर्णिम अवसर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जो है इसी अयोध्या का जन्म है मेरा, यहीं पर पैदा हुआ हूं। और अभी अयोध्या की जो रामलीला है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नामांकित हो चुका है, तो उसका मैं डायरेक्टर हूं। और इसी अवध का जन्म है, तो ये मेरे को लगता है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मारिया जी, यहाँ पर और लोग जुड़े हुए हैं और मैं और दर्शकों से यहाँ पर बात करूंगी। जी जी जी, आप कहाँ से आए हैं? नांदेड़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप सब साथ में? महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र। क्या उम्र हुई आपकी? 22। युवा हैं? 22 साल के हैं। और युवा का जो कहा जाता है कि राम के साथ कनेक्ट कोई स्पेशल है क्या? किस तरह से आप देखते हैं उनको? इसको आप अपने ऐसा मन से देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर अयोध्या में आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मन से देखते हैं? हाँ, मन से देखते हैं। मन से क्या दिखता है? बहुत अच्छा, ऐसा हो रहा है कि फीलिंग दोबारा कभी ऐसा इधर ही रहना चाहिए, ऐसा बोल लग रहा है। हाँ, यही रहना चाहिए। हाँ, राम मंदिर। चलिए आप ही बस बताएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग, हम महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र में ऐसा काम करते हैं, मिस्त्री का फर्श। मिस्त्री का काम करते हैं। और यहाँ पर कब तक रहने का इरादा है? ऐसा लग रहा है कि इधर ही होना चाहिए, मन लगना चाह रहा है इधर ही। दर्शन करने तक यहाँ पे रहने का हमको। हाँ, उसके बाद जाने का। महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग आए हैं। आप
आप अयोध्या के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, और अभी देखिए प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं और जो लोग वहां पे रहेंगे मंदिर परिसर में वो लोग भी आ चुके हैं। आज जो है वैसे भी कहा जाता है कि अवध तजे नहीं तज संसारा। जो अयोध्या में आ जाता है उसकी इच्छा अवध से जाने की नहीं होती है, और जिससे भगवान रुष्ट होते हैं वो चला जाता है, और जब तक भगवान की कृपा होती है वो अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकता। और आप यहाँ कितने साल से? मुझे 38 साल हो गए। 38 साल से अयोध्या के निवासी हैं। और अमीश और रतन शारदा जी, बस अब पहले आपसे रतन शारदा जी, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना बुकिंग के बस पहुँचना है और यहाँ पर रहना है, ऐसा भाव क्या होता है ऐसा? देखिए, भारत एकात्म है शुरू से। आप देखिए मोदी जी ने जो कल से 2 दिन से दक्षिण में घूम रहे, उसका कारण यही है। हाँ, कभी ये ट्रेडिशन चला कि काशी रामेश्वरम से जल आएगा, काशी पर चढ़ेगा, और काशी का जल वहाँ से गंगा का जल चढ़ेगा रामेश्वरम में। ये जो सारा कल्चर क्रिसक्रॉस होता है, ये सारा जो भाव जुड़ा है, इसी कारण सारा भाव जुड़ा हुआ है। आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, आप कुंभ मेले में दक्षिण से उत्तर से सब जगह से आते हैं, आप 51 ज्योतिषपीठ पे जाते हैं। ये सारा जो भारत को जोड़ने का एक सांस्कृतिक तरीका था, उसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। तो दक्षिण कोई महाराष्ट्र को ये नहीं लगता कि अयोध्या मेरी नहीं है, अयोध्या वासियों को ये नहीं लगता कि रामेश्वरम बहुत दूर है। वो पैदल चल के उस समय पहुंचते थे। शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, चारों दिशाओं में बनाए। क्यों बनाए? कि उनको पता था कि सारा कुछ सबको जोड़ना है। ये सांस्कृतिक जोड़ जो है ना, ये भारत का प्राण यही है। इनफैक्ट मैं बीच में आपको टोकना चाह रहा था, आपके पीछे एक शानदार तस्वीर है, उस पार देखिए, कैमरे को उस पार लेके जाइए सरयू के अपनी जिप को, और स्कूल के बच्चे जो हैं वहाँ दिया सजाना काम शुरू हो गया है जी, लगा रहे हैं। और ये जो दीपोत्सव की तैयारी है, ये स्कूल बच्चों के जरिए आज शाम होते से ही यहाँ पर आपको दीपावली भी देखने को मिलने वाली है। तो 22 जनवरी 2024 को दिवाली भी है हमारे यहाँ। जी, कितना बच्चा बच्चा राम का। हाँ। स्कूल यूनिफॉर्म में है वो बच्चियाँ, और आकर के एक प्रॉपर लाइन से लगाएंगी, और उसी तरह से देखिए पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। इनफैक्ट आई कैन सी अपना तनिष्क वहाँ खड़ा हुआ है। तनिष्क जी, अच्छा, तनिष्क से हम बात करेंगे, लेकिन पहले उनसे जरा सा डिटेल्स लेते हैं कि यहाँ पर कौन से स्कूल की बच्चियाँ वीडियो बना दिए भाई, कोई ये काम बात ही नहीं कर रहे बगैर वीडियो बनाए। जी। भरद्वाज जी का वीडियो में बसते हैं। कैसे डायरेक्टर हैं आप भाई? आप अपना डायरेक्टर ऐसा है, जल्दी बोलिए दिए के बारे में, दीपोत्सव के बारे में बताया जाए तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे दीपावली मनाई जाती है, आज इतनी सुंदर और भव्य दीपावली मनाई जा रही है, और ये हमारे लिए बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। आज पूरे विश्व की भावना प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। लेट्स गो टू तनिष्क। तनिष्क, आर यू रेडी? आपके पास क्या है? क्या देख रहे हैं आप? यस, बच्चियों से बात करिए तनिष्क। मैं अपने सामने जी, मैं देख सकता हूँ, आप ठीक मेरे सामने, मैं राम की पेड़ी की दूसरी तरफ हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के कई सारे बच्चे आ चुके हैं। यहाँ पर दिए लगा रहे हैं, आज 10 लाख दिए जो हैं लगने वाले। आप देख सकते हैं सारे बच्चे जो हैं राम की पेड़ी पर इकट्ठा हो चुके हैं। हम जरा पता करेंगे, पहले उनकी टीचर से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? विभा तिवारी। तो आप लोग कौन से स्कूल से कितने बच्चे आए हैं? जी, शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हम लोग आए हैं। जी, हमारे कम से कम 100 बच्चे आए हुए हैं। कम से कम 100 बच्चे। और कितने दिए लगाने का प्लान है आज का? जी, 25,000। 25,000 दिए आप लोग लगा रहे हैं। तो आप लोग की अयोध्या नगरी कैसे बदली है? बहुत सुंदर हो गई है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। और जो आप देख ही रहे हैं, आज दोबारा हम लोग दीपावली मनाने जा रहे हैं। इस साल में दूसरा दीपावली ये हम लोगों का है। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। आप लोग का, आपका नाम? खुशी मिश्रा। क्या? खुशी मिश्रा। कितने दिए आप लोग लगा रहे हैं और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने फ्रेंड्स आए हैं आपके? खुशी? बहुत सारे आए हैं। क्या प्लान बनाने का? दिया लगाने का और दिया जलाने का। फैमिली वाले आपके क्या बोल रहे हैं? अच्छी बात है, सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि हम दिया लगा रहे हैं अयोध्या में। जी, तो हमारे आप देख सकते हैं ये कई सारे बच्चे इधर हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, और ये पूरी स्ट्रेच जो है यहाँ पर दिए लगाए जा रहे हैं। आप किधर से आए हैं? शिवदयाल जायसवाल विद्या। अच्छा, तो क्या कितने दिए लगा रहे हैं आप लोग, और कितने दोस्त आए हैं आप लोग ये दिए लगाने के लिए? लगभग 30 के ऊपर होंगे। अच्छा जी सर। अयोध्या के निवासी हो आप? जी नहीं, अयोध्या के नहीं। तो कहाँ से हैं आप? विक्रम जोत साइड।
तो अयोध्या कैसा लग रहा है आपको देखने में? लता मंगेशकर चौक बनी है, राम की पैड़ी इतनी सुंदर हो गई है जहाँ पे आप खड़े हैं। जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? तो देख सकते हैं हमारे यहाँ सुमित आप लोग कि यहाँ पे लगातार दिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और 10 लाख दिए लगाने का आज का प्रोग्राम है। लगभग 10 लाख दिए लगाए जाएंगे यहाँ पे। स्कूल के बच्चे, जब दीपोत्सव था तब भी स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे थे इसके लिए, तो स्कूल कॉलेज के बच्चे आज वापस वॉलंटियर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इकट्ठा हो चुके हैं काफ़ी सारे दिए और शाम तक जो है ये दिए जलेंगे और वापस दीपोत्सव जैसा माहौल होगा। जी Gee, so Tanish got us those beautiful pictures, and perhaps in the next few hours is when those diyas will be lit up and Ayodhya will witness a Diwali. It will witness a second Diwali. And just building a bit on what Ratanji said, there's this wonderful, a brilliant American scholar and writer called Dinah Eck, Yes. who'd written in a book, Sacred Geography, that India wasn't built on the power of its kings. It was built on the footsteps of pilgrims. That people from across the Indian subcontinent went to different regions of India, went to temples, and that's how the national consciousness got built. Now, this was lost in the last few centuries as many of the major temples were either destroyed or fell into disrepair. That's what I feel will restart with the Ram Janmabhoomi ji, with Kashi Vishwanath ji, because people from across India will come out there to the temple at the same time. That's how a national consciousness gets rebuilt. And that आर्या, point सॉरी बीच में इंटरव्यू एक सेकंड की आपकी इजाजत लेते हुए तस्वीरें देख रहा हूँ मैं, रजनीकांत दिखाई दिए मुझे वहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी भी मोहन भागवत जी भी सरसंघ चालक भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पहुँच गए और मोहन भागवत उन 5 लोगों में है जो गर्भगृह में रहने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ। जी वो वहाँ पे रहेंगे। जी। जो Amish, you were talking about that cultural connect and the right sentence perhaps, that India was not built on the power of the kings, on the footsteps of its pilgrims. But footsteps of the अमिताभ pilgrims, बच्चन स्क्रीन पे, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन करता हूँ, Please, go तस्वीरें ahead. इतनी शानदार दिख रही है ना, मुझे लगता है दर्शकों को बताते भी रहना जी। चाहिए क्योंकि बहुत से लोग टीवी को म्यूट पे देख रहे होते हैं या ऑडियो चल रहा होता है, टीवी पे ध्यान नहीं होता है, तो उनके पास दोनों चीजें पहुंचनी चाहिए। अमिताभ बच्चन तस्वीरों में अमिताभ बच्चन वहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके बगल में रामलला के वकील रविशंकर प्रसाद जी भी हैं, वो साथ में दिख रहे हैं। अरुण गोविल भी हैं, अरुण गोविल भी, फिल्मी राम, अरुण गोविल भी हैं। तो Anil Ambani, Abhishek Bachchan, all of them can be seen on your television screens. Just taking that thought forward, Amish, because the power of pilgrims and Ram temple becoming the centerpiece, along that perhaps even a Sitamarhi will develop because of the house of Sita. So, do you think that massive cultural transformation will take place from here on? But that's what, look, even at a prosaic level, the temple economy, what it does is it just revives that entire place, right? The heart of the modern westernized world is the mall. At the heart of our traditional way was actually the temple. And I would argue that culturally a temple builds a better society than a mall. The consumerist culture. And at a temple you'll have various people who work at the temple who will get jobs. The entire economy will get developed. People travel. The travel industry, tourism industry, everyone develops. Right. Everything develops. And like I said, it connects people from across India. At Kashi Vishwanath ji, people from across the Indian subcontinent and in fact from other parts of the world come. And through the common devotion to Lord Shiva, they get attracted together. The same way with Sumit, the Ram if we Janmabhoomi were to ji. look at timeline, Prime Minister जब यहाँ पे 30 तारीख को आए थे, 30 जनवरी को, 30 दिसंबर को, the message was about him being the man of good governance. Right. So he had come to inaugurate the airport, the rebuilt and the newly built station, widening of roads. He wanted to send that message, and now he's coming for a different role. In fact, when he became Prime Minister, he said, "Pehle shauchalay, fir mandir," and people laughed at him, ridiculed him. Infrastructure, he first created an economy that will bring people, on a higher level, give them dignity by toilets and homes. And now we see this rise of this temple and civilization. And like he said, this entire idea that when we travel, we see the whole India as one. That is the beauty. That culture is the beauty. Remember when there was wars, everybody in war. सॉरी, एक जो ऐतिहासिक पल है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, और वो दूरदर्शन के कैमरे हैं, उसके जरिए बन रहे हैं। और कितने आपको पता है, सुमित वो बताइए। 87 कैमरे अक्रॉस अयोध्या लगे हैं
और 46 कैमरे 46 कैमरे सिर्फ मंदिर प्रीमाइसेस में हैं और 6 से 7 कैमरे शायद गर्भगृह में रहेंगे, क्योंकि जो परसों ड्राई रन हुआ था उसमें 5 कैमरे थे, लगा के 1-2 कैमरों की और जरूरत है। तो ये पूरी तैयारी है, एक भी चीज़ एक भी इस पल को मिस ना हो जाए। आपके लिए, अयोध्या के लिए आपकी इजाज़त से, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ये तस्वीरें कितना काम आएंगी अयोध्या के विकास के लिए आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से सुमित जी, अयोध्या जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहा है और उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, अभी तक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी कि आज़ादी के बाद जिस तरह से अयोध्या को विकसित किया जाना था वैसा नहीं हो पाया था, लेकिन बड़ा शुभ अवसर है कि आज आज़ादी के अमृत काल में कि न केवल प्राण प्रतिष्ठा हो रही बल्कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, प्रभु श्री राम भारत के बाहर भी, कोरिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में अयोध्या नाम के नगर हैं। पूरे दुनिया के अधिकांश देशों में रामलीला होती है, तो हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो बात कह रहे हैं ना, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर में जहाँ भी हिंदुस्तानी मौजूद हैं वहाँ से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, हाँ बड़ी बड़ी कार रैली हो रही है, जिसको टाइम स्क्वायर हम न्यूयॉर्क में कहते हैं। उसके ऊपर श्री राम के पोस्टर छलक रहे हैं। जो आपने कहा 80 से भी ज़्यादा कैमरे हैं, मेरे ख्याल से जो 100 करोड़ सनातनी दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं, वो कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हैं। हर कोने से मैं राम जी को देख लूँ, और वो सारे जो 80-86 कैमरे हैं वो यहाँ नहीं, सारे 100 करोड़ लोगों को राम जी के दर्शन करा रहे हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए नहीं सुमित जी, बल्कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो पूरे दुनिया को संदेश है श्री राम का, कि कैसे शांति के साथ समृद्धि को आगे बढ़ाया जाए और कैसे जो राम राज की संकल्पना हो पूरे विश्व के लिए हो। तो भगवान राम का जो जीवन है, जो आदर्श राम तो त्याग, करुणा, प्रेम, पराक्रम सबके पर्यायवाची हैं। सुमित जी, उसी की कमी की वजह से आज इतना अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो रहा है, आतंकवाद है और कितने तरह की समस्याएं हैं। अगर राम के हम आदर्शों को अपना लें तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी और जो मानव समाज के, एक सभ्य समाज के, एक आदर्श समाज की कल्पना है वो साकार हो जाएगी। यहाँ पे एक राम भजन सुनाना चाहते हैं, उन्होंने सुनाया है, फिर से वो कुछ और सुनाना चाहते हैं। वो आपका और आपकी पूरी टीम का, आपका एवं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत अयोध्यावासी की तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत, सम्मान एवं सब कुछ शुक्रिया। क्योंकि आप भव्य अयोध्या का दिव्य दर्शन पूरे समस्त देशवासियों को दिखा रहे हैं। इसी के साथ मेरा एक और राम भजन मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ कि अमृत की बरसे बदरिया, हाँ अमृत की बरसे बदरिया, राम नगरी अयोध्या नगरिया, वेद पुराण सब ग्रंथन गावा, श्री राम जी का नाम सुनावा, छा गई है खुशी की लहरिया, राम नगरी अयोध्या नगरिया, बह रही है सरजू जल गंगा मैया, राम नगरी अयोध्या नगरिया। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड यू नो द पॉइंट दैट वाज बीइंग मेड देयर बाय सुमित अबाउट इंडियंस believers all over the world trying to ensure that each and every detail is captured. They do not want to miss anything. Yeah, because this is truly historic. And now Indians even abroad are actually an economically successful, influential community. So we actually have the power and the means to make sure that everything is recorded, everything is remembered. We have आपका पाँव वहाँ पे लग रहा है. Excuse me. Sorry, हनुमान जी का है. And actually, just building a bit on what Ratan ji said so beautifully, there's something Acharya Chanakya had said. Sukhasya moolam dharmah, dharmasya moolam artah. That at the heart of happiness is dharma, but at the heart of dharma is artha. If you don't have wealth and power, as India didn't have for a few centuries, then nothing else survives. So that is at the heart of everything. We first have to ensure that we remove poverty, that the country becomes wealthier and richer and more powerful. Then our culture, dharma, everything can be built on top of that. That is at the heart of everything, wealth and power. And fortunately, particularly post 1991, India has been moving in that direction. And Maria, if you remember, the contribution to the temple has come from the smallest people. You remember a lady has been called old woman who gave 20 rupees. Right. And there are people who gave crores of rupees. Demand was 600 crores. We collected 3,500 crores. That's the devotion. And that's what people feel about Ram. That's what they feel about their entire pain for what Ram was being out. धीरज
co-presented. जय हिंद। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. One of the key themes at the World Economic Forum in Davos is the entire issue of ensuring that sustainable development is looked at from all perspectives, certainly the perspective of gender, very, very important indeed. Also engendering health research is an area which is of interest to India. It is certainly an interest to my very special guest, Smriti Irani, the Minister. Thanks, ma'am, very much for being with us. You speak about empowerment at so many levels. When it comes to health, ultimately health is about empowerment. And yet, if you look at it statistically, the numbers that we get for women around the world, and certainly in India, are often inaccurate. For example, I was reading 25% of the lives of women is marred by poor health, and yet health research doesn't seem to reflect that enough. Is that not a big problem? I think we've not managed to make a case for enhanced investments in women's health from the perspective of research. Women happen to be at the receiving end of pharmaceutical support or institutionalized medical support only when things got aggravated vis-a-vis their own health. I can speak for the Indian cultural context. There were women who were in our families and our communities self-medicating because they didn't want their health, not only financially but also psychologically, to be of burden to their familial surroundings. I also believe India has made now a case for financial enhanced investments in just gender across the board. So you talk about health. We have now the world's largest healthcare program under Ayushman Bharat, 440 million Indians plus who are a part of this service, which services over 1900 diseases, including cancer, cardiological challenges, across 27,000 hospitals in the country. For the world, it has taken quite a while to accept that 440 million needs can be serviced from the treasury without a single rupee coming from the private sector. So we have made a case for good governance, but also phygital governance. Right. So we have brick and mortar infrastructure on medical issues, be it your Jan Aushadhi Kendras, 10,000 of them across the country, where your pharmaceutical needs can be met at 90% less of the cost as in the open market. What is fascinating is it's not serving only the poorest of the poor, but also the middle class and the lower middle class. So you're making affordable healthcare a reality for the middle class as well. Then you have this whole segment of 1 lakh health and wellness centers which are dedicated to preventive care, which is the world's largest ecosystem on preventive care. If you look at just the Ayushman Bharat encouraged hospital admissions, we have hit a figure of 62 million hospital admissions. Wow.
If you look at it from a gender perspective, one of the greatest challenges from a female health perspective was that issues like cancer of the breast and the cervix were never discussed openly. For us, it was no less of a revolution when the Prime Minister spoke about the ₹1 sanitary pad from the ramparts of the Red Fort, because he made gender and health needs and menstrual hygiene mainstreamed part of conversations. It's never happened, let alone in India, but in any democracy of the world, that the head of government speaks about access to menstrual hygiene products. That being said, the cost of such products are being offset many a times because of the benevolence of the government, because of the support more so of the taxpayer. If you look at now, where are the new investments needed? Data sets now are available without breaching privacy of any individual in our country, which can help inform which are the जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये कवरेज लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये कवरेज चल रही है। आप इस वक्त NDTV पर हैं, सरयू तट पर हम मौजूद हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वैसे वैसे लोगों का उत्साह स्क्रीन की तरफ ज़्यादा चला गया है, क्योंकि हर कोई टीवी पर ही देख पाएगा, क्योंकि अंदर तो केवल 5 लोग ही मौजूद हैं। एक बार फिर बताऊँ, अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो दोपहर में करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त है। 84 सेकंड है, केवल 84 सेकंड का यह मुहूर्त है और ये मुहूर्त लगभग वैसा ही मुहूर्त है जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। वो वैसे ही बिल्कुल उससे मिलता जुलता मुहूर्त बताया गया है तमाम पंडितों के द्वारा, संतों के द्वारा। उसी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 5 लोग गर्भगृह में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सरसंघ चालक मोहन भागवत होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और महंत नृत्य गोपाल दास होंगे, जो कि राम तीर्थ जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना है, जिसकी देखरेख में मंदिर निर्माण चल रहा है, उस ट्रस्ट में 11 मेंबर हैं, लेकिन अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनको भी बुलाया गया। तो 5 लोग अंदर मौजूद रहेंगे, उनके सामने ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और जैसा कि हम सुबह से लगातार आपको बताते आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में होता क्या है। सबसे पहले प्रभु श्री राम लला की तस्वीर, उनकी अपनी छवि खुद दर्पण में उनको दिखाई जाएगी, बाकी तमाम पूजा पाठ करने के बाद। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं? आप साधु संत आदमी, आप बताएंगे, बताइए ना। सबसे पहले भगवान को शिखर स्नान होगा, उनकी पट्टी खोली जाएगी, पट्टी खोल के दर्पण दिखाया जाएगा। दर्पण दिखाने के बाद जो है उनका चंदन तिलक होगा। चंदन तिलक होने के बाद जो है शिखर उनका जो है स्नान होगा। स्नान होने के बाद पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से उनके जो है जागृत किया जाएगा मूर्ति को। इसके बाद माल्यार्पण और धूप आरती होगी। ये जो है इतने जो मूर्ति है, और मूर्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ पूरे समाज को कि जो ऐसी मूर्ति 22 साल के बाद आई है। जो मुहूर्त है तो अल्प मुहूर्त, समय कम है, लेकिन मुहूर्त ऐसी है। और ये मुहूर्त आगे को एक सूचना दे रही है कि 2025 तक, 2025 के अंत तक विश्व युद्ध हो जाएगा और उसका नेतृत्व सिर्फ मोदी जी ही है और भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और ये अयोध्या धाम जो है, यहाँ से पूरे विश्व का कंट्रोलिंग होगा और शांति का संदेश जाएगा पूरा विश्व। हमारा भारत अखंड है, अखंड रहा है, अखंड रहेगा। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहाँ पे। जानी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ की तस्वीरें बतानी ज़रूरी हैं, क्या क्या चल रहा है। मशहूर गायिका हैं अनुराधा पौडवाल जी, वो भजन गा रही हैं और वो कार्यक्रम, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। वहाँ की तस्वीरें हम साथ साथ आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वहीं पहुंचना है, किसी भी पल वो वहां पहुंच सकते हैं। इस वक्त आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक देश भर से जो तमाम वाद्य यंत्र हैं उसको जोड़ करके इसको एक संगीत का आधे घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। इसको एक नाम भी दिया गया है, संगीत के साथ मैं बताऊंगा उसको आपको देख के। और यतीश मिश्रा जी, जो यहाँ के अयोध्या के जाने माने इतिहासकार हैं, संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करके इसको तैयार किया है। और वही चीज़ें अब सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जैसे जो गायक हैं, जिनकी मधुर आवाज़ें हैं, उनके ज़रिए वहाँ पे ये शंख ध्वनि जिसको आप कहते हैं सुनाई जा रही है। ये दरअसल शुरुआत हो गई है उस शुभ मुहूर्त के आने की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
मैं ठीक कह रहा हूँ? आप जी क्या बता सकते हैं? आप ठीक कर रहे हैं। भारतीय 30 वाद्य यंत्रों के भारतीय उन वाद्य यंत्रों में पारंगत लोग अपना ये धुन प्रस्तुत करेंगे। सिर्फ वो भारतीय वाद्य यंत्र होंगे, भारत के लोग होंगे और रामाधुन प्रस्तुत करेंगे। रामाधुन प्रस्तुत करेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम हमको भी जानकारी है कि होना है। हाँ, तो ये वही कार्यक्रम की हिस्सा भी हम देख पा रहे हैं। 11:30 बज रहे हैं मेरी घड़ी में। अब प्रधानमंत्री के मोदी के वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो स्थिति है, जो माहौल है, यहाँ सब भीड़ छट गई है क्योंकि सब NDTV को जाके देख रहे हैं। NDTV पर वो कवरेज लगातार चल रही है कि प्रधानमंत्री कब पहुँचने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बहराइच से आए हैं, त्यागपुर गांधी को यहाँ से। अरे वाह, दर्शन हुए रामलला के? हम आज से अंत तक रहा हूँ राम जन्मभूमि के कार्यक्रमों में और अब राम जन्मभूमि का कार्यक्रम तो हो लिया है, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही संसार की उपलब्धि का कारण हूँ, हमसे ही सारा संसार चेष्टा करता है, ऐसा समझ करके बुद्धिमान मनुष्य हमको ही भजते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। ये देखिए, अयोध्या नगरी में हरे कृष्णा भी हो रहा है, राम की नगरी में कृष्ण भी याद किए जा रहे हैं, शंकर भी याद किए जा रहे हैं। यही तो महिमा हिंदुस्तान की है। क्या इसको कैसे देखते हैं आप गिरीश? सुमित जी, हमारे भारतीय समाज में जो धर्म है वो हमारे लिए प्राण वायु है, ऑक्सीजन है। हाँ। भारतीय समाज मूलतः बहुत भावनात्मक समाज है और यहाँ पर देखिए लोग इतने भावुक हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर के, अपने संस्कृति को लेकर के, विचारों को लेकर के। तो आज जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वह वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है कि हम कैसे अपने आराध्य के प्रति, कैसे उनकी भावनाओं को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, उनके दर्शन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जैसा प्रभु श्री राम ने करीब पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत को जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं और ये सभी लोग हैं जो बिना बुलाए आए हैं, बिना किसी व्यवस्था के हैं। हाँ। कहीं भी सो जा रहे हैं, कहीं भी रुक जा रहे हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि कितना भावनात्मक रूप से लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो अवधारणा दी गई कि धर्म सबसे ऊपर है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो अवधारणा आई कि हर कार्य धर्म पूर्वक होगा, और आज उसी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही सुमित जी, वास्तव में यह है राम मंदिर न होकर के मैं मानता हूं यह एक राष्ट्र मंदिर है जो पूरे देश को आपस में जोड़ने, सभी संप्रदायों विचारों को जोड़ने के लिए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएगा। और इस चीज को आप कैसे देखते हैं गिरीश जी कि आज 22 जनवरी की बातें हो रही हैं, 6 दिसंबर की बातें नहीं हो रही हैं? हाँ, यह भारतीय समाज के लिए बहुत सकारात्मक है कि समाज की आक्रामकता कम हुई है, क्योंकि देखिए 500 वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन भारतीय समाज ने कभी हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर केवल एक 6 दिसंबर की घटना को हम छोड़ दें। और भारतीय लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए बड़ा सुखद है कि हमने इस समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से निकाला। न्यायालय ने इस पर फैसला दिया। और आज सुमित जी देखिए कि जो कभी बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, आज वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो ये भारतीय समाज की खूबसूरती है कि सदियों से देखिए सुमित जी, हमारे यहाँ शक आए, हूण, कुषाण, यवन आए, मुगल आए, तुर्क आए और उसके बाद यूरोपी आए, हमने सभी जो विरोधी शक्तियां थी उनको भी आत्मसात कर लिया। यही भारतीय समाज की संस्कृति है कि हमने कभी किसी को विरोधी नहीं माना, सभी को अपनी मुख्य धारा में शामिल कर लिया। जैसे गंगा जी में तमाम नदियां मिलकर के पवित्र हो जाती हैं, नाले भी मिलकर पवित्र हो जाते हैं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की चेतना है, ये हमारी शक्ति है कि हमने ऐसे तत्वों को भी, आज हमने बाबर के वंशजों को भी स्वीकार कर लिया, वो भी हमारे साथ मुख्य धारा में हैं। यही भारतीय समाज और संस्कृति की खूबसूरती है। और एक और बात जो आपसे पूछना चाहूँगा मैं, और वह बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि हमने अपनी रामायण में, आप रामचरितमानस की बात करें, रामायण की बात करें, मानस, राम भी है, रावण भी है जी। रावण की भी शक्तियाँ हैं, रावण के भी उपासक थे, रावण के भी पूजक थे, पर रावण ने एक बार एक गलती की और उस गलती की वजह से, अपने उस दंभ की वजह से, अहंकार की वजह से रावण का क्या हर्ष हुआ। और प्रभु श्री राम थे जो करुणा के, प्रेम के, त्याग के थे, बगैर सुने, बगैर माने अपनी माँ की उन्होंने देखा। जब पूरा का पूरा वाक़या है कैकेयी जी वाला और दशरथ जी वाला, जहाँ मंथरा मौजूद थी, और उसमें उन्होंने केवल माँ को पहले ही वादा कर दिया कि आपने जो भी कहा है मैं उसको पूरा करूँगा। एक राम सुपुत्र है, एक रावण का परिवार है। ये जो हिंदुस्तान की सामाजिक परिवेश में ये जो दो परिवार की भूमिका है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सुमित जी, विभीषण जी ने कहा युद्ध के समय कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा।
ये आज हमें क्या सिखा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धर्म है, नैतिकता है, मानवीय मूल्य हैं, सदाचार है, तो वह सदैव विजयी होता है, भले ही उनको संघर्ष करना पड़े, काफी समय लगे, क्योंकि रावण के पास सब कुछ होने के बाद भी। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप कंप्लीट करिएगा। मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, शंकर महादेवन गाना का गीत गा रहे हैं इस वक्त वहाँ पर अनुराधा पौडवाल के साथ। और कुछ देर पहले हमने अमित शाह जी की तस्वीरें देखी थी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हैं, दिल्ली में उन्होंने इसका उस पूरे लाइव प्रसारण को देखने वाले हैं। वो अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, हालांकि निमंत्रण उनको मिला गया था, पर हर मंत्री को एक एक दायित्व दिया गया है सरकार की तरफ से भी। सब जगह अलग अलग देखकर अपने आप लोगों के बीच में मौजूद हैं और वहाँ बैठ के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे हैं। अमित शाह की तस्वीरें भी इस वक्त NDTV पर लाइव चल रही हैं। अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो सुमित जी देखिए, दो अलग अलग शक्तियों के, दो अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक हैं कि भगवान राम रथी नहीं थे, उनके पास ऐसी उस समय संसाधन उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके पास नैतिकता थी, उनके पास त्याग था और जन कल्याण की भावना थी। रावण आक्रमणकारी था, रावण के पास दुष्टों की शक्ति थी, नकारात्मक शक्तियां थी, तो अंत में क्या हुआ कि विजय प्रभु राम की हुई। तो आज इस समाज को भी संदेश है कि अगर आप नैतिकता के मार्ग पे चलते हैं तो सदैव विजय आपकी होगी। और ये भारतीय पूरे समाज की विजय है कि 500 वर्षों का जो त्याग रहा, जो तपस्या रही, समाज ने कभी हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं की और सभी को अपने आप में समाहित कर लिया। और इसी चीज़ को अगर मैं आज के संदर्भ में लेकर आऊँ गिरीश जी, आज इनफैक्ट कल से, आप तो अयोध्या के निवासी हैं, मैं तो 4 दिन ही पहले यहाँ आया हूँ। इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि सब VVIPs आपके शहर में हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग, हर 100 कदम पर एक बैरिकेडिंग, गाड़ियाँ को नहीं आने दिया जा रहा है, लोगों को पैदल कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी सड़कें भरी हुई है, गलियों में हलचल है। हाँ, लोग बाग गाड़ी छोड़ दे रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर कि नहीं हम तो जाएंगे, दर्शन करेंगे, और इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री निकले तो हम अंदर जाएं। ये इसको कैसे देखते हैं? सुमित जी देखिए, पूरा जो राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, ये 500 वर्षों में ढेर सारे युद्ध हुए जो स्वतः स्फूर्त थे। हाँ। कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। यह हमारी लोक चेतना, जन चेतना में भगवान राम थे, तो लोगों ने स्वतः संघर्ष किया। तो आज ऐसे अवसर पर भले ही कुछ व्यवस्था की वजह से संभव नहीं काल उठते हैं, कहते हैं भैया राम राम। गाँव में अनाज तोला जाता है तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। हमारे यहाँ बालक का जन्म हो तो गीत राम के गाए जाते हैं, विवाह हो तो गीत राम के, दुख में भी हे राम, हाय राम, दुनिया छोड़कर जाए तो भी राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे जीवन में अमुस्यूत है, राम हमारे सांसों में है। जय हिंद। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। Ayodhya is set for the Grand Temple opening. A journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हुआ। Pilgrims and visitors head to the holy city for the consecration of the Ram Temple. प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। It's a historic event. The ancient city abuzz with change, where modern infrastructure meets age-old traditions. Every aspect of Ayodhya's transformation and the Grand Temple opening on NDTV 24/7.
This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. सीता जी के परिवार की तरफ से अपने को साली मानते हुए राम को गाली देते हुए उनको जीजा मानते हुए पूजा होती है। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं रसिकों के, जब रात में भोजन कलेवा कराया जाता है तो राम जी को गाली सुनाई जाती है। बाप रे। और ये राम जी उसको प्रेम से सुनते हैं और भोजन करते हैं, ये परंपरा में निर्दिष्ट है। The Pran Pratishtha ceremony is about to start. The Prime Minister has already arrived in Ayodhya. In fact, he has sent a video that he shot from the aircraft. And there is a cultural program that is going on right now. Remember, 7,000 celebrities, 7,000 A-listers, 7,000 delegates have been invited for this Pran Pratishtha ceremony, which includes many singers. What we see right now is Shankar Mahadevan, Sonu Nigam, Anuradha Podwal, some of the members. They basically, they just performed. There's a cultural program going on. After this, of course, the main ceremony starts. What we understand is that 12:20 is the Abhijit Muhurat. It is a very short 8-minute Muhurat that has been preordained when the Pran Pratishtha ceremonies will be performed. Remember, only 5 members will be inside the Garbhagriha, which includes Prime Minister Narendra Modi, Anandibin Patel, who is the Governor of Uttar Pradesh, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, who has had a history of involvement with the Ram Janmabhoomi, as had Mr. Modi, and of course and Nritya Gopal Das, who's the chairman of the trust, will also be there. Remember, ministers of the central cabinet are not participating in this ritual because they wanted the number of VIPs to be short. And what we understand is that Home Minister Amit Shah is in Delhi, and he is taking part in. He is also watching the Pran Pratishtha ceremony, and also he's in a mandir. We go to Ishadrita, my colleague, who is tracking his movement. Ishadrita, tell us, what is the Home Minister up to? Well, he couldn't make it to Ayodhya. Well, he rather chose to not go to Ayodhya, but he's making sure that he pays his respects to Ram Lala here in Delhi. So right now we are at the Birla Mandir in Delhi, and Home Minister Amit Shah has already made his way here. The plan is that he's first going to pay his respects to the idols of Lakshmi Narayan here, and after that, if I can just show you, the arrangements have been made here for him to sit and participate in a cultural program of sorts. We are hearing that he will also participate in the bhajan singing over here. So you can see there are some BJP leaders like Shaina, NC, etc., who have also turned up here. So elaborate arrangements here for Home Minister Amit Shah to come and pay his respects on this historic day. Vasudha. So elaborate arrangements have been made at Delhi's Birla Mandir for the Home Minister to come and participate. Remember, in the latest cabinet meeting, Ashadita, the Prime Minister had also talked about ministers going to Ayodhya after the inauguration, after the Pran Pratishtha ceremony, and he had in fact asked all of them to take as many people as they can to also send out a message of involvement, of Jan Bhagidari to the people of the country. So how do you see this? Because ministers are not part of the Pran Pratishtha, but they're all involved in different ceremonies across the country. We saw Nirmala Sitharaman also in Tamil Nadu. We saw several ministers going to different parts of the country. So how do you see this? Ishadrita, how do you see different ministers going to different parts of the country, and the Prime Minister's advice to ministers to go to Ayodhya after the Pran Pratishtha so that the ceremony does not see too much of a crowd?
Vasudha, if I can just tell you about where I am right now, when we were coming into the temple, there was a lot of excitement and a lot of enthusiasm for the public that has come here, and I think that's one of the reasons why the Prime Minister took this decision of sending central ministers across the country, because their presence in places like these, their presence in different ceremonies across the country is also enthusing the locals here. If I can just ask Shadish to show you around, there are people who are already waiting here. They're waiting for the Home Minister to come in, and this has been the scene here since the morning. People are coming in with shawls that say Jai Shri Ram. The cry is heard all across the temple over here. So that really, I think, is one of the reasons why the Prime Minister has taken this call, because having ministers across the country is also galvanizing people to come together and celebrate this historic day. Right. Thank you, Shadita, for joining us with those details. Home Minister Amit Shah leading BJP and the government celebrations at Delhi's Birla Mandir. Let's go across to my colleague Maria Shakil, who has been tracking the developments in Ayodhya, the place where all the action is taking place today. Over to you, Maria. We are coming to you live from Ayodhya, और कुछ ही देर में वो पूरी सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी, जिसे कॉन्सेक्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो शुरू हो जाएगी। और कैसे यही इसी तरह से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, एक दिया बन रहा है और ये रंगोली बन रही है, और उस पार स्कूल की बच्चियां सजा रही हैं दिए से, जो पूरा रोशनी होगा और दीपोत्सव मनेगा। ये लोग आए हैं, कहाँ से आए आप? सांगली महाराष्ट्र से, कांदे। और ये पूरे रंग लेकर के आए हैं? हाँ, वहाँ से दो क्विंटल रंग लेके आए हैं। पूरे अयोध्या सजा रहे हैं हम। आप अयोध्या सजाने आए हैं? हाँ, अयोध्या और कितने दिए बनाएंगे? ये पूरे में बनाएंगे? हाँ, पूरे ऐसे बस 10 दिए बनाए देंगे हम। जी जी जी। और क्या, और कौन कौन से रंग से? बस लाल बनेगा या और भी? और भी है, बहुत हरा है, नीला है, गुलाबी है, अभी बहुत रंग है हमारे पास। बहुत सारे रंग से ये बनेगी, ये दिया बनेगा और ये रंगोली। ये अयोध्या नगरी है, और प्रोफेसर साहब यही बोला जाता है कि इसी तरह से तैयारी हो रही है राम के आने की। जी मारिया, ये अयोध्या नगरी है, प्राचीन नगरी है, और ये नगरी पूरे विश्व को अपना जो संस्कृति है उससे जो है जोड़ती है। कैसी संस्कृत? भोगवादी नहीं, त्यागवादी संस्कृत जोड़ती है। कभी राजा मारीच आए, जो विश्व के उत्थान के लिए अपने शरीर से ही दधीची आए, विश्व के उत्थान के लिए अपने शरीर से ही धनुष बनवा के और कैसे विश्व का उत्थान किए। तो कभी राजा हरिश्चंद्र की नगरी है, हाँ। भगवान राम की नगरी है। और मारिया, एक रोचक बात बताएं, देखिए कितना खूबसूरत बन गया। जी जी मारिया, ये देखिए रंगोली, सारे रंग लग गए, और इसमें ये महाराष्ट्र से बच्चे आए हुए हैं और इन्होंने ये रंगोली बनाई है। जी जी। और मारिया, एक बात और बताएं, बहुत सारी संस्कृतियां अभी भी अयोध्या में हैं, हाँ। जो जनमानस को नहीं पता है। हाँ। हम आपको एक बात बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएं, अभी भी अजगरी और हमारे सामने ये पूरी रंगोली बनती जा रही है। अत्यंत सुंदर। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये रंगोली, और इसी तरह से तैयारी हो रही है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की। जी बोलिए। जी, अभी भी अजगरी और मधुसूदनी संत यहाँ पाए जाते हैं। जी। अजगरी संत का मतलब ये होता है जो बिना किसी से कहे, जो मिल जाए समाज से एक बार भोजन कर ले, अगर नहीं मिला तो वो ऐसे रहेगा। जी। और मधुसूदनी मतलब सिर्फ 5 लोगों से मांग के ही भोजन करेगा। ऐसे संत अयोध्या को छोड़ के और कहीं नहीं मिलते हैं। तो अयोध्या के बारे में बताऊं, ये शायद इतनी त्यागवादी धरती थी, इसी नाते आप चाहे जिस काल में देखेंगी, स्वतंत्र भारत छोड़ दीजिए, या सल्तनत काल देखिए, मुगल काल देखिए, यहाँ तक कि अंग्रेजों का भी काल देखिए, तो हमारे मुद्राओं पे भगवान राम का चित्रण था। भगवान राम का चित्रण शायद इसी नाते था कि उस समाज को ये त्यागवादी व्यवस्था देते थे कि दूसरे के लिए जीना सिखाते थे। चलिए वही हम इनसे पूछेंगे। आप इतनी खूबसूरत रंगोली बना रहे हैं, पहले कहाँ बनाए हैं? ये रंगोली बनाना मेरा 30 साल का तजुर्बा है, और 30 साल की रंगोली का कलाकारी मैं भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए इधर आया हूँ। आते वक्त 2000 किलो रंगोली लेकर आया, और 40 या 50 जगह तो बड़ी बड़ी रंगोली बना चुका हूँ। अयोध्या में 5-6 दिन से लगातार रंगोलियाँ बना रहा हूँ।
और आते वक्त बाइक से 1800 किलोमीटर बाइक से आते हुए से आए हैं। बाइक से 1800 किलोमीटर आते हुए 25 शहरों में प्रबोधन करते हुए लाखों लोगों को प्रबोधन किया और इधर तक आए। ये आपकी रंगोली तो बहुत खास हुई। हाँ, मैं स्पीड रंगोली में स्पेशलिस्ट हूँ और मीडिया वालों ने तो अब पूरी दुनिया में दिखा दिया है कि कितनी फास्ट बनाता हूँ। 10 की स्पीड से मैं रंगोली बनाता हूँ। उधर बहुत स्पीड से रंगोली बना रहे हैं। आपका नाम बताइए। नाम सुनील कुंभार है, कांदे शिराळा तालुक्या से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, जिधर शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है और छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूँ मैं। पूरे अयोध्या में बहुत जगह जगह पर घूम करके रंगोली बना रहे हैं आप। हाँ, तो हाँ, दिया क्यों? रंगोली में आज उधर दिए जलने वाले हैं, तो मैं भी इधर रंगोली में दिया बनाने वाला हूँ। मेरी जो वो मैं इधर अर्पित करना चाहता हूँ। यही है खूबसूरती यहाँ की। जी, आप यहाँ के लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं? एमपी से आया हूँ। अच्छा, एमपी से आए हैं। आप क्या करते हैं? हम राजनीति करते हैं। जी, और यहाँ के रहने वाले हैं आप? आप बहराइच के रहने वाले हैं। कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हम आज से अंत तक शुरू से रहा हूँ मैं राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में। 90 में मैं जेल में था 1 महीना। उनको जगह चाहिए रंगोली बनाने के लिए। जी, 1 महीना जेल में था। आप यहाँ पर थे। सो यही the beautification, as we keep talking about, it's about this culture that we see in the colors. Professor Saab, the point that is being made by these young artists who have come from Maharashtra, उनका कहना है कि रंग से एक खास लगाव रहा है अयोध्या का। जैसे रामलीला और वृंदावन में जैसे होली मनाई जाती है, उसमें खासियत होती है क्योंकि एक तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि कैसे राम जब आने वाले हैं तो पहले दिए जलेंगे और रंगोली भी रहेगी। जी जी, ये पूरे देश में अगर आप आज अयोध्या में अगर आप बिहार करें तो देखेंगे कि पूरे देश के भिन्न भिन्न कोनों से, मतलब जैसे आप राम की पैड़ी पे खड़े हैं तो ये नहीं कह सकते यहाँ अयोध्या वासी हैं। हाँ। यहाँ पूरे देश के लोग हैं। जी बिल्कुल। और आपको बताएं, देश के हर कोने से कुछ ना कुछ जिसको जो समझ में आया वो लाके प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहा है। हाँ, उन्होंने बोला कि वो अपनी कला को अर्पण कर रहे हैं। जी जी, मैं आपको बताऊं, मैं कल मिला हूँ, एक व्यक्ति हैं, वो आसाम से आए हैं। हाँ। वो भी रंगोली बना रहे हैं और वो हनुमानगढ़ी को जो रास्ता जाता है उस हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पे रंगोली बना रहे हैं और उन्होंने कहा मैं 1 किलोमीटर लंबा रंगोली बनाऊंगा। तो ऐसा एक लोग नहीं है, ऐसे अनेक लोग हैं। आप समझ सकती हैं कि अटूट आस्था इस देश में भगवान राम के प्रति है। और ये रंग और जिस तरह से आप चौपाई गा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, भगवान हम आप सबके आराध्य। हाँ। हम आप सबके आराध्य। आप यहीं के रहने वाले हैं? अयोध्या के रहने वाले। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। तो हम आप सबके आराध्य भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के पालनहार जी का एक वर्णन करना चाहता हूँ। क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात है, भगवान भोलेनाथ जी और उनके अपने साथ में लेकर के नंदी जी एक बार पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा, तो यहाँ देखा तो मानव जीवन का। हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो डायरेक्ट अब आ रही हैं मंदिर परिसर से। वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पर जो महिला, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से आई हैं? बिहार बेगूसराय। कब से आई हुई? आइए थोड़ा आगे आइए। 4 दिन से। 4 दिन से। और पहले भी अयोध्या आई हैं या पहली बार आई हैं? पहले बार आए थे, 2 बार आए हैं पहले। तो कैसी लग रही है अयोध्या नगरी आज? हम लोग को तो बहुत आशा लगा हुआ था कि भगवान कब आएंगे मंदिर में। जब से मस्जिद टूटा मंदिर तब से आशा लगाए थे। हम लोग ईंट का पूजा किए थे, ईंट गया था हम लोग के यहाँ, पूजा किए थे और वही से आशा लगाए हुए थे जो भगवान कब हमको दर्शन देंगे मंदिर में। टेंट में एक बार आके देखे थे भगवान को, अब देखेंगे मंदिर में। तो मंदिर में जाएंगी दर्शन करने? दर्शन करके जाएंगे। हाँ, 24 को दर्शन होंगे हम लोग को। वो तो राम लल्ला हैं, आपको क्या दिखेगा? आप क्या दर्शन करेंगी? क्या बोलेंगी? मेरे लल्ले ही हैं, लल्ले हैं मेरे।
हाँ, हम लोग उन्हीं को सब दिन से मानते आए हैं। मेरे जन्मदाता हैं, हमारे पोषणहार हैं, पालनहार हैं। उन्हीं के शरण से हम लोग जीते हैं, उन्हीं के आसरा से हैं। I can see some youth as well. आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? से आए हमीरपुर। और आप? जी, आलाउद्दीन की नगरी बुंदेलखंड से। आलाउद्दीन की नगरी बुंदेलखंड से मैं भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। अभी 7-8 दिन पहले मैं दर्शन करके गया रामलला के, हनुमानगढ़ी दरबार के। अचानक परसों रात में एहसास हुआ कि बस रामलला बुला रहे हैं, और बस वहाँ से तैयारी करके हम लोग आ गए, बस आप सबके आशीर्वाद से। रंगोली अब पूरी होने जा रही है। ये जो चित्र है, ये स्केचेस हैं लॉर्ड हनुमान की, और बहुत सारे 600 पीसेस में जोड़ करके ये बनाया गया है। और अयोध्या नगरी जो रामचरितमानस में है, उसमें और आज के अयोध्या नगरी में क्या फर्क है? देखिए, रामचरितमानस में भगवान वाल्मीकि का जो अयोध्या है वो बहुत बड़ा है। अगर आज के पैमाने के हिसाब से देखें तो शायद 144 किलोमीटर लंबी और 42 किलोमीटर चौड़ी वेद में भी और रामचरितमानस में इतनी बड़ी, योजन में आता है वो पैमाना, इतनी बड़ी अयोध्या की बात की गई है। स्कंद पुराण के हिसाब से भी अयोध्या करीब 90 वर्ग मील में फैली हुई है। और आपको बताएं, जो चीनी यात्री आए हैं उनके समय भी अयोध्या भव्य और दिव्य है, और कितनी है 80 स्क्वायर मील के आसपास अयोध्या है। तो आज उतनी बड़ी अयोध्या तो नहीं है। आज पूरी अयोध्या 5 लाख लोगों की आबादी, और मुझे लग रहा है कि अगर शहादतगंज से नई घाट मान लिया जाए तो 12 किलोमीटर और मैक्सिमम 1 किलोमीटर का चौड़ाई, तो इतनी बड़ी ही अयोध्या है। लेकिन आज तो अयोध्या नगरी के बारे में चर्चे हो रहे हैं पूरे दुनिया में। आज की जो दिन समय होगी 1 महीना का होगी, जब भगवान प्रकट हुए थे जिस दिन त्रेता में, दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए थे, तो उस दिन का दिन हो गया था 1 माह का। अच्छा। हाँ, रात होवे नहीं किया। रथ सहित रवि था के निशा कवन विधि हुए। माने भगवान जो थे सूर्य, वो थक गए थे, खड़ा हो गए थे। 12 बजे के जो दिन था, भगवान प्रकट हुए थे 12 बजे दिन में, वही 12 बजे दिन रह गया 1 माह का। हाँ, वही दिन आज होगा। जी, आज भगवान हमारे राम जी आएंगे मंदिर में। मारिया, इसका एक प्रमाण बताएं। प्रकट होंगे यहाँ से तो मात्र वही थोड़ी दिन दूर आज पे होगा, 1 माह का दिन होगा। आज का दिन 1 माह की बराबर होगी, और किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। मारिया, एक बात बताएं कि यहाँ से थोड़ी दूर मास दिवस की दिवस भयो, मर्म न जाने कोई। अच्छा। रथ सहित रवि था के वो निशा कवन विधि हो। थैंक यू। हाँ मारिया, यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं। एक प्रमाण, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, दर्शन नगर है। दर्शन नगर में सूरज कुंड है। कहा जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था, प्रकटोत्सव हुआ था, तब सूरज भगवान साक्षात वहीं रथ रोक के रुक गए थे, और वो ये पूरा देख रहे थे। आज उसका एक प्रमाण, जीता जागता प्रमाण सूरज कुंड के रूप में वहाँ विद्यमान है। और वहाँ जो है कुछ विशेष पर्व है, उस पे लोग जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, मेला भी लगता है। तो उसका जो बहन जी बता रही हैं, ये तो हमारे मिथिला से आई हैं, तो जो बता रही हैं उसका एक प्रमाण भी मिलता है। जी। आप? दतिया पीतमरा माई की नगरी से। अच्छा, कुछ सुनाएंगे? जी, बस यही कहेंगे कि ये हम लोग आज से 10 और 12 साल पहले यहाँ आए हैं, कई आंदोलनों में आए हैं, और हमारा नारा एक ही था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसके हम ये साक्षी हैं, और ये हमारे कोई पूर्व जन्म के सौभाग्य होंगे जो आज हमें ये क्षण, ये पल, आज हम इसके गवाह बने हैं। और ये हमारा जो सपना हमने देखा था वो आज हमारे सामने साकार होता दिख रहा है। और हम लोग मतलब इतने खुशी के मारे कई बार आंसू निकले हैं हम लोगों के। अद्भुत। तो यहाँ पे रो भी रही थी। हम लोग को रुआ जाता है। भगवान को हम एक बार आके देखे थे, टेंट में थे हमारे रामलला, टेंट में। अभी बड़े से मंदिर में हैं। हाँ, आप देखेंगे, हम जब देखेंगे तब हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। अभी भाग्य नहीं उदय हुआ है, अभी खुशी है, आनंद है। हम लोग को रुआ जाता है भगवान के कष्ट देने से। एक बार तो जंगल गए 14 वर्ष के लिए, वो तो कथा पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है सो नज़र से जो देख लिए ना, बहुत हम लोग को
मतलब ऐसा होता है कहीं बैठ कर के खूब रो ले। रामायण भी देखते हैं, जंगल जाने वाला सीन तो हम लोग रो जाते हैं। आई तो प्रत्यक्ष से आँख से देखना पड़ा, सहन करना पड़ा, इसलिए। चलिए माता जी, we'll continue this conversation. Yes, so now just 30 minutes to go. 30 मिनट बस बच गए हैं, 12 बज गया है और 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की पूरी सेरेमनी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं। आधा घंटा जब बच गया है तो वक्त आ गया है। हाँ, 2 बातें और बताएंगे। जिस समय ये सेरेमनी होगी जी, मंदिर परिसर में जितने आगंतुक हैं सबके हाथों में घंटियां दी गई हैं जी, वो घंटी बजाएंगे। और एक बात बताएं कि उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, ऐसा भी पता लगा है। अच्छा, ये त्रिपुरा से आए? हाँ, त्रिपुरा से। अच्छा, मेरे को अच्छा ही लग रहा है। मैं तो और एक बार आया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भगवान जी है, राम है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसा माहौल देख के लगता है और भी बहुत कुछ होगा। क्या होगा? नया नया बहुत कुछ होगा। वो आध्यात्मिक स्तर पे जो जानकारी होगा ना, वो ज्ञान के माध्यम से होगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सत्संग में जुड़ा हूँ। देवघर का एक सत्संग है, उसमें जुड़ा। और कब तक रहेंगे अयोध्या में? 2 रात रहेंगे। हाँ, दर्शन करके जाएंगे? हाँ, दर्शन करके जाएंगे। हाँ, आप कुछ भजन सुना रहे थे, अब चलिए बताइए। हम मंगल भवने अमंगल हारी, निर्वहो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं, वहाँ पे क्या क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या होता है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में पहले देखिए वहाँ पे अगर शुरू से देखें तो पहले पत्थरों का जो चयन होता है। मारिया, मैं आपको बताऊं कि पत्थर भी नर होते हैं, नारी होते हैं और किन्नर होते हैं। और वो जो पत्थरों के एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं, वो छू के जान लेते हैं कि ये पत्थर नर है कि नारी है या किन्नर है। तो जैसे भगवान की मूर्ति बननी है, तो भगवान की मूर्ति बननी है तो पहले कोई नर पत्थर खोजा जाएगा और वो पत्थर कहाँ से आएगा उसका एक विधि का विधान है। फिर उसको, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, उसको हथौड़ी, छीनी हथौड़ी से बनाया जाएगा। हाँ। तो बनाया जाएगा तो फिर पत्थर निकलेंगे जी, भगवान जी आएंगे। तो फिर उसके बाद उनको वेद पाठ सुनाया जाता है कुछ दिन, मूर्ति को। उसके बाद जब प्रतिष्ठा शुरू होती है तो बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्यों कहते हैं? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा उसमें प्राण आता है, मूर्ति में प्राण आता है। अभी एक प्रोसेस है, बता पाएंगे उस पूरा डिटेल? हाँ, उसको पूरा सुनने के बाद जो है जी, फिर उसके बाद उसको भिन्न भिन्न द्रव्यों से स्नान कराया जाता है जी। फिर उसको 7 अनाजों से, जो गेहूं नहीं है और सारे अनाजों से स्नान कराया जाता है, लिटाया जाता है उसमें। फिर उठा के उसको जलाभिषेक करते हैं, मधु से नहलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, घी से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद एक पट्टी बांधते हैं। उसके बाद जब भगवान को सुंदर बना लेते हैं और तब मंत्रों से शुरू होता है प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, मुझे ये बताइए, ये प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है और सब लोग अपने घर में जब मूर्ति लाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? नहीं, सारी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं जी। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है और ये किया जाना आवश्यक है। श्री विग्रह में परम कल्याणमयी चेतना का संचार हो जाए। जैसे हमारे आंख, कान, नाक, जबान, हाथ, पैर, पेट, मस्तिष्क, दिमाग में हमारे अंदर चेतना का संचार है। वो चेतना संचार में करके वो पूरे संसार का कल्याण करती है। हम धर्म कर्म में कल्याण में लगते हैं। इसी तरह से जिस श्री विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसका मतलब यह है कि इस श्री विग्रह में, इस मूर्ति में भी वो चेतना में ही संचार हो जाए। भगवान के आंख, भगवान के कान, भगवान की जबान, भगवान के हाथ पैर जो हमारे लिए कल्याणमय है वो सब एकदम चेतना में हो जाए। ये बताइए, 22 जनवरी है आज, आधा घंटे में 12:30 बज जाएगा। इस समय का क्या महत्व? इस समय का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, 3-4 प्रकार से ये समय समझना पड़ेगा कितना बड़ा महत्व है। इसका महत्व एक ये भी है कि जिस समय 14 जनवरी होती है उस समय स्वर्ग लोक में सूर्य की पहली किरण जाती है। तो अब स्वर्ग लोक में दिन है, स्वर्ग लोक में जो देवता है वहाँ दिन निकला हुआ है। जैसे कि देव उठान एकादशी आती है तो स्वर्ग लोक में ब्रह्म मुहूर्त होता है।
इसी तरह से पृथ्वी लोक का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर का होता है। इस तरह से देवलोक में, स्वर्गलोक में सूर्य की किरण गई हुई है। और दूसरी बात है अभिजित मुहूर्त है। और तीसरी बात इसके साथ साथ यह है कि भगवान श्री राम जी का जिस नक्षत्र में प्रादुर्भाव हुआ था ये उस नक्षत्र से संबंधित है। तीसरी बात है कि अभिजित जो मुहूर्त है वही अभिजित मुहूर्त भगवान के जो अवतार होते हैं। अभिजित मुहूर्त क्या है? अभिजित मुहूर्त होता है जो सर्व दिग्विजयी है, जो सर्वकालिक है, जो सब प्रकार के फलों को देने वाला है, जिसका अच्छे पुण्य होता है, जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इसी अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम जी और भगवान श्री वामन जी, भगवान श्री नरसिंह जी, भगवान जी अनेक परमात्मा का जो श्री विग्रह आता है इसी अभिजित मुहूर्त की बेला में आता है। या अभिजित मुहूर्त का कोई दूसरा योग होता है तब आते हैं। तो अभिजित मुहूर्त का मतलब है जिसको कोई जीत न जा सके। जो मुहूर्त जो 12:30 बजे होगी। हाँ, ये मुहूर्त जो 12:30 बजे है ये अपर अजय मुहूर्त है। इसी में भगवान की प्रतिष्ठा है। जैसे श्री राम जी का जो प्राकट हुआ था इसी अभिजित के समय हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पुच्छ अभिजित हर प्रीता। भगवान को अभिजित मुहूर्त प्रीति है, भगवान को अभिजित मुहूर्त अत्यंत प्रिय है। इसलिए अभिजित मुहूर्त के आने से हजारों प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। जो हमारे और ये अब तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, he is walking inside the temple premises, he is entering the Ram temple. These are very, very special and historic visuals that are coming in. Viewers, watch that. You know, Prime Minister Modi and his role, जो उन्होंने रोल प्ले किया है पूरा इस पूरे कार्यक्रम में वो अहम रहेगा। क्योंकि जो पहली तस्वीरें आई थी वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद शूट किया था जब वो हेलीकॉप्टर में थे और उसमें और वहाँ पर नारे लग रहे हैं, सब लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद फ्लावर्स के साथ उनका स्वागत होगा। और करीब लगभग 1:15 बजे वहाँ पे जितने लोग गैदर्ड हैं उनसे प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी 12:30 बजे उस समय का क्या महत्व है इससे भी हम जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो जीवन है वो जीवन परोपकारी जीवन है। ऐसे ही ये जो माननीय योगी राज जी हैं, आदित्य योगी हैं, इनका भी जीवन परोपकार में है। इनका बालकपन से देखा जाए तो अयोध्या की जन्मभूमि से और श्री राम जी से लगाव रहा है। अब मैं 2-4 बात खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी there taking the steps of the Ram temple and then entering the temple. He as the VVIPs and all the dignitaries are seated inside the temple premises. It's a very, very special moment. There is a symbolic offering that he is carrying as well. प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ दिख रहा है, चुनरी है। हाँ, प्रधानमंत्री के हाथ में जो चुनरी है ये उनकी त्याग तपस्या की है, भगवान के प्रति समर्पण होने की है। ऐसा व्यक्ति तो किसी भी काल में आता है। मैं 1-2 बात बताना चाहूंगा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भाई प्रधानमंत्री अब टेम्पल जो मंदिर है उसके अंदर जा चुके हैं और वो एक चुनरी है उनके हाथ में, कुछ सिंबलिज्म का है, कुछ वो हाथ में क्या है जो अंदर लेकर जा रहे हैं। हाँ, हाथ में भगवान को समर्पण करने का है, भगवान की प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाए वो है। ये चुनरी का जो महत्व है ना वो त्याग तपस्या का और समर्पण भाव का होता है। यही भक्ति है, यही प्रतिष्ठा के लिए मुख्य योग होता है। इसलिए जो मुहूर्त है जो साधा जा रहा है ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखत पुरी सकल अग भागा। अयोध्या की नगरी में, अयोध्या की भूमि में इतनी बड़ी ताकत है कि जो श्रद्धा भाव से देखता है तो इस अयोध्या की जन्मभूमि में पूरे विश्व के पाप नाश करने की क्षमता है। अंदर से अभी तस्वीरें आ रही हैं वो देख सकते हैं आप लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉकिंग अराउंड दोज बिग पिलर्स विच आर देयर इनसाइड द राम टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैरीगोल्ड जो गेंदा कहा जाता है और बहुत तरह तरह के फूल जो आए हैं, विश्व भर से रंग बिरंगे फूल जो आए हैं उससे पूरी राम मंदिर को सजाया गया है। और उसी के बीच प्रधानमंत्री अब चलते हुए और फिर कार्यक्रम बस 25 मिनट में शुरू होने वाला है। बस ये बताएंगे प्रोफेसर साहब, ये जो मंदिर है उसकी जो कला का इस्तेमाल हुआ है, जो आइकन्स हैं और जो आइकोनोग्राफी है उसका सिग्निफिकेंस बताइए, जो जिस तरह के काम हुआ है मूर्तियों पर। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जानता हूँ कि नागर शैली की मूर्तियाँ ये मंदिर बनी हुई है। और ये मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो ये बताऊँ कि ये
करीब मैं 24-25 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, तो 24-25 साल से देख रहा हूँ ये कार्य हमेशा मतलब हमेशा चलता ही रहा यहाँ एक अयोध्या कार्यशाला में। अब मंदिर परिसर में हैं, वहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और जब वो और जो उनके हाथ में जो ऑफरिंग थी, उन्होंने वो जो प्रीस्ट है जो परफॉर्म करेंगे अभी थोड़ी देर में पूजा, उनको उन्होंने सौंप दिया है। ये जो चुंदरी है इसकी अहमियत बताइए। और अब बैठ गए हैं वो वहाँ पर, ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चुनरी की जो अहमियत है वो इतना बड़ा विशाल है कि बिना चुनरी का पूरा ही नहीं है, क्योंकि चुनरी में उनकी दिव्यता भाव है, वो ऑफरिंग है, वो जो है एक प्रकार का समर्पण भाव है, उसमें समर्पण भाव छिपा हुआ है। चुनरी उन्होंने पास रखी और इतने दिन से जमीन पर शयन किया और अपना अन्न पानी त्यागा, अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान किए। और एक और बात है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा की खानी। जिस समय अयोध्या नगरी ये जानती है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, पूरे विश्व की संपदा यहाँ प्रकट होती है। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, 1 से 8 फुट लंबी बत्ती और नेपाल, पूरे दुनिया का जो विश्व का विशेष भाव है और उसके साथ पूरा सेरेमनी जो है, जो रिचुअल्स हैं, जो वहाँ पे कार्यक्रम होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री को एक पंडित ने तिलक लगाया है। तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म कामार सिद्ध है, जो धर्म की सिद्धि कराए, जो काम की सिद्धि कराए, जिससे हम जिस लक्ष्य पर जा रहे हैं वो पूरा हो जाए, पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। ये योगी जी ने, मोदी जी ने व्रत लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी जी मोदी हैं, धर्म कर्म के कारण जनता के हृदय में उतर चुके हैं। तो ये जो तिलक है वो धर्म कामार सिद्ध है, ये धर्म और काम की सिद्धि के लिए किया जाता है। जो पंडित जी ने आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए ये जो तिलक लगाया है, उनके लिए वर्ण करना एक प्रकार का होता है कि आओ बैठो, हम तुम्हें तिलक लगाते हैं और तुम्हारी जो भावना है वो धर्म और काम की सिद्धि के लिए संपूर्ण तरह से पूरी हो जाए और तुम जो प्रतिष्ठा कर रहे हो वो निर्विघ्न हो जाए और जगत का कल्याण करे, इसलिए तिलक। इसके बाद क्या मंत्र शुरू होंगे तिलक के बाद? हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जिसके नाम में मंगल है, जिसके चारों तरफ मंगल है, जो सर्वदा मंगल स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का मंगल स्वरूप गान करने के लिए स्तोत्र पढ़े जाते हैं। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। नस्तार्चो इसका मतलब है सारे जो हमारे विघ्न बाधाएं वो दूर हो जाएं और इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, कृपा देव, सरयू मैया, गंगा मैया, जमुना मैया, प्रयागराज, तीर्थराज, चित्रकूट, मंदाकिनी और जितने भी हमारे देव हैं, सूर्यदेव, वरुण देव और जितने भी नवग्रह इत्यादि हैं, वो सभी हमारे अनुकूल हो जाए। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्य, हमसे अनिष्ट दूर हो जाए और हमें इष्ट की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मंगल है। अब इसके बाद से जो मंत्र शुरू होगा उसके बारे में बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेद से, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेद से और रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का आवाहन होगा, उनके दिव्य स्वरूप का श्री विग्रह में अर्पण होगा, वो उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए श्री राम जी के बहुत से मंत्रों का यहाँ उद्धारण होगा। लेकिन एक और बात है, क्या है कि बंधु अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल कल सुन सावन। ये अयोध्या की नगरी को धन्यवाद है। क्यों कि सृष्टि के शुरू से जो मानव के आत्म कल्याण की राजनीति थी वो अयोध्या से ही शुरू होती है। प्रधानमंत्री के अब बगल में मोहन भागवत जो आरएसएस सर संचालक है वो भी बैठ गए हैं वहाँ पर। आरएसएस सर संघालक जो बैठ गए हैं मोहन भागवत, वो तो मोहन भी और भागवत भी हैं। वो तो एक दूसरे के प्रति, देश के प्रति भाव जगाने के लिए उनका पूरा जीवन अर्पण है और ऐसा जीवन जिनके अर्पण है वो मोदी जी के आसपास रहते हैं। क्यों कि मोदी जी का जो बालकपन है वो भगवान के प्रति, जनता के प्रति और देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव है। मोदी माने क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी संपूर्ण राष्ट्र है, मोदी संपूर्ण भारत है। अब हम डीडी जिसने 87 कैमरास लगाए हैं, अब वी आर कटिंग अक्रॉस टू दैट। लेट्स लिसन इन एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द टेंपल प्रेमिसेस। अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है
जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
मालूम है क्यों दे देते हैं, अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाई के रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थ यात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण है। भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो राम लला के सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं। और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और भारत को, भारतीयता को, सनातन
ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की यात्रा की गुजरात में भूमिका में तत्कालीन महात्मा के रूप में क्षेत्र भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ देखें तो एक भीड़ प्रति के नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक भीड़ प्रति के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण, उनका पुनरागमन और भाषण
अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति
ni sa 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 re ni sa 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 re ni sa re ni sa ni sa re re sa ni sa da ni ni re re ga ma ga re ga re ni sa ni sa 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 ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Ram Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Sita Ram 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 Shri 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 Ram
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी
सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक करेंगे। वहाँ शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्त वत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसे प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जो
वो How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. One of the most important announcements which have been made over the last couple of days at the World Economic Forum and on the sidelines here in Davos, Switzerland, is the India growth story. There's nobody better placed to talk about growth in India than the RBI Governor. Mr. Shaktikanta Das joins us now. Thanks so very much for being with us. Sir, 7%. Extremely optimistic. It is in line, of course, with what some of the global projections are. What are some of the sectors driving this growth? You're talking of current year or next 24, year? 25. Okay. Now let me also, start by saying that India has recovered from the recent volatilities and the uncertainties and the challenges, this multiple turmoil, one after the other, health crisis followed by, all these geopolitical crises. So India has emerged out of it a lot better. Our macroeconomic stability is far better than most other countries. Financial stability is also, our financial sector is also doing well. And the 7% growth in the current year, when we said it for current year, it looked optimistic. But as you know, the National Statistical Office has given a number of 7.3%. Now talking of 24-25, I made a statement in some other forum yesterday that we expect, I have a sense that the economy will touch a real GDP growth of 7% next year. And I said this on the basis of the overall macroeconomic conditions prevailing in the country. You see, all economic activities, the momentum of economic activities are remaining very positive. And we have reasons to believe that this positivity, this momentum will be maintained well into next year and beyond. I have made a statement also that India has now entered into a period of growth long haul. Yes. And economic activities are holding their ground. Momentum of economic activity is maintained. Aggregate demand conditions are remaining positive. Investment activity has started picking up, backed by continued high capital expenditure by the government. Private sector capex is also picking up, and agriculture sector in the current year and also expected to do better in the next year. So with all these confluence of factors and with a lot of activity also happening in with regard to investment in the new age technologies like fintech, in startups and technology based activities, that gives us the confidence to say that next year the growth would be touching about 7%. So inflation at what, 4.5%? That is what you're projecting? Next year average, yes, 4.5%. You see, immediately after the Ukraine war, our headline inflation had touched 7.8%. Now thereafter, because of the monetary policy actions which we have taken, which was also aided by the supply side measures taken by the government, inflation has been steadily coming down, and we are on our way to reach 4% target. But next year's average is expected to be 4.5%. The positive aspect of it is that our inflation is now well within the target band of inflation, but we are not satisfied with that. We would like our inflation to reach 4% and remain around 4%. Just let me complete that bit. So therefore that is our endeavor, and the core inflation, the core inflation has now come below, marginally below the 4% headline target. So we expect next year's average inflation to be 4.5.
inflation to steadily moderate towards 4%. Sir, one of the areas of concern now presently, the Red Sea scenario, there are attacks which are taking place. India's maritime supply lines are through those waters to a large extent. Is this an area of potential concern? You see, there are lots of, global uncertainties. You just mentioned some of them. These are new flashpoints in global, geopolitics. And as we stand today, India is quite well placed to deal with these challenges. How these, Red Sea area conflicts and how the movement of ships, etc., are going to pan out are things which have to be watched and monitored. And I think there various national governments, including India, are doing their best to see that the movement of our ships or ships coming towards India and all are not disrupted. तो राम के आगमन से, राम की पुनर्प्रतिष्ठा से जो समावेशिता की पृष्ठभूमि फिर से निर्मित होगी, पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर को पश्चिम से जोड़ता है, उस सहृदयता का प्रतीक है अयोध्या, वो बने और वैसी दिवाली सबके दिलों में मने, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ। Ayodhya is set for the Grand Temple opening. A journey of faith as Ram returns. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे Well, the Pran Pratishtha or Consecration ceremony led by the Prime Minister Narendra Modi has now taken place in Ayodhya. It is a 50-year project of the BJP and it is clearly a historic moment, not just for the party but for millions of those who looked forward to this day. Live visuals of the consecration ceremony which we broadcast showed the RSS chief Mohan Bhagwat sitting next to the Prime Minister. The RSS, that's the Rashtra Swayamsevak Sangh, the ideological mentor of the ruling Bharatiya Janata Party. He is, Mohan Bhagwat, of course, the head of that. Images of the two next to each other have been seen as an acknowledgement that the Ram Temple project is a joint BJP-RSS project. Shortly before the ceremony, Mr. Modi said it is a great pleasure to be a part of a divine program at the Ram Temple. The supernatural moment of the consecration of Shri Ram Lala's life in Ayodhya Dham is going to leave everyone emotional, is what he wrote. Earlier today, the Prime Minister shared an aerial video of Ayodhya, which we were told was shot from the helicopter that ferried him from the town to the temple, which has been festooned with flowers and decorations, a distance of around 18 kilometers. The consecration of the Ram Temple in Ayodhya is a 50-year project of the BJP, very, very long awaited. It is celebrated not just across India, but also by Indians abroad with special prayers and various programs at local temples. The occasion has been hailed as a Diwali, the festivities that mark Lord Ram's homecoming after the battle with Ravan, and temples and houses have been strung with festive lighting. The Prime Minister has been observing a series of strict 11-day religious rituals to prepare for the consecration ceremony, which began at noon. He is also scheduled to address the gathering on the occasion, is what a statement from his office indicated. In fact, we should be having the Prime Minister speak in a little while from now. These are live images coming in from Ayodhya. The historic Pran Pratishtha ceremony is being attended by representatives of all major spiritual and religious sects of the country. People from all walks of life, including representatives of various tribal communities, are also attending the ceremony.
The 380 by 250 foot temple has been built in the traditional North India Nagara style. It is not entirely complete so far. It will be. It has 392 pillars, 44 doors and walls, which have elaborate carvings of gods and goddesses. The idol of the 5-year-old Lord Ram has been placed in the Sanctum Sanctorum. The Kubertila stands at the southwestern part of the complex. Near the temple is the well or the Sita Koop. Let's just go straight across to my colleague Maria Shakil for the very latest. Maria, go ahead. कितने मिनट का करना है? Hello everyone. The Pran Pratishtha or Consecration ceremony in Ayodhya is over. Those visuals are continuing to come from inside the temple premises. And any moment now, the Prime Minister will be addressing the gathering there. But what does this Pran Pratishtha mean for the people who are outside the temple here at Ram Ki Paddy? In fact, the entire Rangoli here of this beautiful painting of Lord Hanuman is also complete. That got over when the consecration ceremony was happening inside in the presence of the Prime Minister and RSS Chief Mohan Bhagwat, who were present among others. Pran Pratishtha हो गई, आप बताइए। अब तो राम राज ही है, अब क्या कमी है? अब तो सब कुछ बिल्कुल खुशहाल है। खुशहाल हो गया सब चीज? सब कुछ बाकी नहीं है। अब तो सब कुछ मिल गया। और आप लोग जब यहाँ पर इतने दूर दूर से आए हैं, क्या अब आप लोग जाएंगे दर्शन करने? दर्शन नहीं करेंगे, अभी जा रहे हैं, 2 दिन हो गए, जा रहे हैं अभी। अब वापस जा रहे हैं? हाँ जी। आप यहाँ पर? हम यहाँ पर सेवा देने आए हैं। हम से आए हैं? महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। या हम इधर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं रामलला के। नहीं, आपने क्या सेवा दी? हम लोगों ने इधर संतों की सेवा की है, जो 4000 प्लस संत आए हैं, उनको हम परोसने का काम कर रहे हैं, खाना परोसने का काम, और उनकी सेवा में है। मुझे अब बताइए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हो गया, अब उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा हो गया है, कितने वर्षों का इंतजार था, कितने पीढ़ियों का इंतजार था। हमको ये अभिमान है कि हमारे पीढ़ी में हो रहा है, हम उपस्थित है ये समारोह के। इसके बाद राम राज्य आएगा। ये राम राज्य आएगा। मोदी है तो सब कुछ है, अभी पता चला है हमको। चलिए। हमें पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम अब बताना चाहते हैं कि हमने वादा किया था। चलिए, निभाया है, मंदिर वही बनाया है, अयोध्या तो झांकी है। जी। कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हुई है आज हम लोग सद्भावना की बात करनी चाहिए। तो आप गुजरात से आए हैं? आप बंगाल से आए? आइए इधर आइए। जी, आप लोग बंगाल से आए हैं, बताइए कितने देर से आए हैं? कितने देर से आए? बृहस्पतिवार में आया। और रहेंगे? 26 तारीख को रिटर्न टिकट है मेरे को। हाँ, बसीरहाट पहले कोलकाता तरफ से हमारा अयोध्या वासी को पहले प्रणाम। राम माता को भगवान रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा हो गया और हमारा भगवान बाबा मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करा। हमारा बहुत खुशी है, जोगी बाबा करा, वो हमारा बाबा है, हम उसका लड़का है। ठीक है, पूरा आपको भी शुक्रिया, जो आप शरीर भालो रहिए, ताकि सब भालो, सब कुछ भगवान रामचंद्र में, सीता माँ को पैर में सब कुछ रह जाओ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं लेट मी स्पीक टू दीज आर्टिस्ट हु मेड दिस। आप लोगों की जो तस्वीर थी उसमें अब आसपास में रंगोली बन गई है। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। So these are the artists who made this piece together, almost like 600 pieces of 630 pieces of Lord Hanuman, which took almost 6 months, 6 महीना लगा आपको बनाने में। और अब देखिए आसपास में रंगोली बन गई है। And on the other side, if I can just ask my camera person to show that, on the other side the preparation is on for
the Deepotsav, which will be perhaps beginning in some time from now, soon after the sun sets. So the diyas are being all organized. There are school students, girls and boys, who are all playing that role of organizing the diyas there. Let me speak to some more people. मैं महिलाओं से बात करना चाहती हूँ. आप इधर आइए जरा. दीदी जरा इधर आइए. प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आ जाइए. अब आप जाइएगा अंदर. हाँ, वही लल्ला का उपहार है इसमें. क्या उपहार है? उपहार है इसमें 2 मुट्ठी चावल है, शक्कर है, तुलसी है, फूल है, कुछ तिला संक्रांति हम लोग को चल रहा है, तो तिलवा है. आप आई हैं कहाँ से? बेगूसराय, बिहार से. इतनी दूर से आई हैं और ये रामलला को चढ़ाने जा रही हैं. तो अभी तो कल से आप लोग अंदर जा सकती हैं. ये किसी तरह से किन्हीं को माध्यम से भेजवाएंगे अंदर. भेजवा देंगे. लेकिन भेजवाइएगा. भेजवा देंगे किन्हीं को. और मैं उन लोगों से भी बात करती हूँ. आप लोग भी इधर आइए. आइए आइए. आप लोग कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला. समस्तीपुर से आई हैं. हाँ. और सीतामढ़ी तो सीतामढ़ी के बारे में तो ये कहा जाता है, और बिहार के बारे में तो वो तो रामलला का ससुराल हुआ. सीतामढ़ी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है. जी चलिए, आप मुझे ये बताइए कि कब तक रहेंगी यहाँ? कब तक रहेंगी यहाँ? यहाँ हम 27 तारीख को. 27 तारीख को रहेंगे. आइए आइए आइए. ये क्या लाई हैं आप? हमारे लड्डू गोपाल जी हैं. अच्छा, ये लड्डू गोपाल जी हैं. क्या है ये? ये मैं यहाँ से लेके गई थी पिछले साल. अच्छा. हाँ, इस मेरा भांजा यहाँ ड्यूटी कर रहा है. अच्छा. अयोध्या जी में. अच्छा, तो उसी के थ्रू आई हुई हूँ. अच्छा, तो ये क्या क्या है इसमें? ये कान्हा जी का भोग है, और कान्हा जी अपने घर घूमने आए हैं, इन्हें घुमाने लाई. एक दिन मुझे सपने में दिखे थे कि तुम अयोध्या जी चलो. नहीं, मुझे तो पता भी नहीं रहा कि मैं यहाँ आ पाऊंगी. मुझे तो मतलब यही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आ कैसे गई. मैं तो रास्ते में मुझे लग रहा था भेज देंगे हम लोग. हो गया था कि बस यकीन नहीं हो रहा था. यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि हमें ना आ गए. हम लड्डू गोपाल जी लिए है, राम जी हमें बुला लिया. साधन बहुत ही अच्छा करा हमारा आने का. आप लोग दोनों बस अकेले आई हैं? हम मेरठ से आए हैं. मेरठ से आए हैं? हाँ जी, मेरठ से आए हैं. रहेंगी अभी हम रहेंगे 2 दिन. कल को जाएंगे हम. और राम जी के उसमें उद्घाटन में बहुत ही अच्छा लगा. एक दिन मुझे सपने में आया है कि वहाँ काम हो रहा, मैं भी जाऊंगा. मैं यहाँ से गया था, अब मैं दोबारा यहाँ घूमने आया हूँ. ये हमारे दर्शकों को दिखाएंगे ये क्या है? लड्डू गोपाल जी का रूप है. राम भगवान का बच्चा रूप है ये. कन्हैया जी. Acha. So here you can see the sentiment certainly, and people here are extremely emotional as the ceremony is over. Let me speak to another person here. आप यहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ से आई हैं? हम आए फैजाबाद से. फैजाबाद से आई हैं. तो फैजाबाद तो बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है. लखनऊ है. आप लखनऊ के? जी हाँ जी, लखनऊ से. तो आप लोग घूमने आए? जी. एमपी रीवा जिला. अच्छा अच्छा अच्छा. So कब तक रहेंगी यहाँ? बस आज बस चले जाएंगे कल. Yeah. So people have certainly continued to be around Ram Ki Paidi or various places. In fact, I was next to Saryu Ghat just few minutes back. There have been big screens which have been put up where the entire ceremony is being live broadcast, and devotees have gathered all on the staircases watching that ceremony. And similar screens, as we know, have been put up all across the world. News and updates will continue on the other side. This is our special broadcast coming to you from Ayodhya. स्टोन स्ट्रक्चर, कोई भी पत्थर 100-200 साल में खत्म नहीं होता है, शाश्वत है वो. इसलिए ये भी सैंड स्टोन है. राजस्थान भरतपुर जिला, इस साइड गांव है बंसी पालपुर, वहाँ की पहाड़ियों का पत्थर है. ये पिंक है कलर, देखने में अच्छा लगता है. पानी पड़ने से सुंदरता बढ़ती है. और जो कुछ नक्काशी है जो मंदिरों में परंपरागत होती है, इंजीनियरिंग का जो योगदान है वो योगदान है जमीन के नीचे. All the soil was to be taken out and a new engineered soil that was to be replaced there. So that is the kind of thing which was done. Welcome to Serious Business on NDTV. $1
has only secured 0.6 cents of private capital. That needs to fundamentally change. By mid-century, India's economy will grow eightfold. One topic. When a family comes out of the poverty line, what would be the first asset class they would buy? It's gold. One speaker. It's the biggest attack on Jews since the Holocaust. If you want to control inflation, you need to play the trade policy. UPI, Aadhaar, all of that, where India is well ahead of the West. 5 trillion is a short-term goal. I would like to see India becoming a $30 trillion economy. One of the key themes at the World Economic Forum meet here in Davos, Switzerland is artificial intelligence, the future of AI, generative AI. We've got a wonderful guest with us, Roshni Nadar with us, the chairperson of HCL Tech. Thanks very much, Roshni, for being with us. What is HCL doing presently as far as AI is concerned? What are some of the technologies and ideas that you're exploring? So I think with AI, there are two parts. So one is what we're doing in terms of working with a lot of our customers. We have more than 150 generative AI labs all over the world, in India as well, working on specific use case for each industry. So I think that's one part. The other is, we are an organization of 250,000 people, and a lot of them will have to learn a lot of these new technologies. So we already have about 17,000 of our workforce, which is upskilling at the moment in these new skills. And you have to realize that I think a lot of people talk about AI as the technology and what it's going to do in the industry and in the world. But in our industry, where the average age is 25, most of our young people are already users of generative AI in life. So I think that having to retrain them and upskill them into how to use it in the workplace and how to use it for the solutions is the two aspects that one has to focus on. What about the entire argument that there's going to be a lot of retrenchment, a lot of people losing jobs because of AI? So I can just say that we've had a net addition this year, including in the last quarter as well. And again, I think the dynamics of the work pyramid in an organization and an industry such as ours changes. But, we've had cycles of automation before. We've had cycles of new technology before. If at all, it has only created an ecosystem of applications around AI. AI and generative AI in itself, even to a customer, is not of any use unless they're able to work around their data strategy, data infrastructure, their cloud strategy. So I think there are lots of new skills which are replacing old skills where you can upskill people, but it's not necessarily replacing jobs. Can you just crystal gaze a little bit for us? We know what some of the generative AI apps are right now. We know some of the AI apps or AI programs and solutions which are available. 5 years later, what are some of the ideas we may be seeing coming online? So I think, we tend to overestimate AI's impact in the short term, but tend to underestimate it in the medium to long term. So I think even in 5 years, I think most of the innovation that you're going to see around AI is going to be around productivity and efficiency analytics. And I think that's what we're seeing now as well. इस गणतंत्र दिवस देखिए जय जवान मेरे और अनिल कपूर के साथ. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? Welcome back. So the ceremony is over, and now the addresses have begun, which will also include an address by RSS Chief Mohan Bhagwat and also by the Prime Minister, which will happen in some time from now. With me is Shantanu. Shantanu, you looked emotional while you were witnessing the consecration ceremony. What was on your mind?
I think this moment I'll remember for my life, that sitting in NDTV's green room next to Saryu, along with you and Amish Tripathi, Ratanji and others, we watched it live. In between, when the sound was not coming, me and Amish was moving to the mobile phone. And we were sharing our headphones also, right? And we were discussing, okay, who's that, how it's moving. I think it was emotional, the way it happened. And remember, when we left it around 10 o'clock, this place was blank. Now there are rangolis. If we see there are diyas set. So जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती गई, सरयू में भी रंग आता गया. And remember how gloomy it was from last 2-3 days. अब सूर्यवंशी हैं तो सूर्य भी निकल आया आज. तो that was amazing. It was quite gloomy from last 2-3 days. Yes. आज There's bright sun which is up. आज का जो weather forecast था, that was still cloudy. Yes. लेकिन weather forecast भी चला गया आज तो बाढ़ में. सूर्य निकल आए. Okay. So there are people here from Assam. आप लोग असम से आए, कब से आए हुए हैं यहाँ पर? 19 तारीख से आए हुए हैं. और अभी रहेंगे यहाँ? जी रहेंगे. 26 तारीख को हम लोग ट्रेन है. और कुछ भेंट लेकर आए हैं या? दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके जाएंगे. और आज 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, इसलिए हम कल में 23 तारीख को दर्शन करेंगे और 23 तारीख को दर्शन करके फिर आगे का प्रस्थान करेंगे. And you can see these diyas, rangolis which depict diyas. That's beautiful, certainly, on the banks of Saryu where we are. And if the camera could zoom in and show, there are a lot of people who have just gathered here watching the broadcast, which is being put up on multiple screens in and outside Ayodhya. आप लोग भी आए हुए हैं यहाँ से. हम कर्णावती अहमदाबाद से आए हैं, तीर्थधाम प्रेरणापीठ से. राइट. जो हम कल की अवतार को मानते हैं, 10वां अवतार जो होने वाले हैं उसको मानते हैं. आज हमारा सौभाग्य है कि हमको आरती होने के बाद का पहला प्रसाद जो है सुखड़ी का, चिक्की बोलते हैं उसको, 11 टन चिक्की हम लेके आए हैं और उधर अर्पण किया है हमारी संस्था की तरफ से. वो अर्पण हो गया वहाँ? ऑलरेडी अर्पण हो गया है. 3 दिन पहले प्रसाद आ गया, उनका पूजन हुआ और वो अर्पण हो गया. और 6 लाख छोटे पैकेट्स बनाए हुए हैं और पहले जो दर्शन करेंगे उनको सबको वो पैकेट्स दिए जाएंगे. अंदर में अयोध्या, जो राम टेम्पल के अंदर से मंदिर में वो हमको सौभाग्य मिला है और वो अपॉर्चुनिटी मिली और वी एनकैस्ट इट लाइक एन वेरी बिग ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और सर जैसे बोला कि सूर्य नारायण देवता मर्यादा पुरुषोत्तम का आज पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और सूर्य नारायण जी ना आए वैसा हो ही नहीं सकता. Yes. I think when he's talking about chikkis, when you read Valmiki Ramayana, there are descriptions कि यहाँ पे कोई भूखे पेट नहीं सोता था. और पिछले 4 दिन से मैं घूम रहा हूँ, आपको हर 100 मीटर में कोई कुछ आपके यहाँ खिचड़ी ले आता है, कोई चावल ले आता है, आपको मुफ्त खाना बट रहा है. तो जो त्रेता की अयोध्या थी, in which they used to say nobody used to sleep hungry. अब जैसे कह रहे 6 लाख लोगों को तो चिक्की यही खिलाएंगे. Nobody used to sleep hungry in त्रेता की अयोध्या. तो ऐसा लगता है त्रेता की अयोध्या वापस आ गई है. Yes. So that's a lot of emotions that are attached here. आप इधर आइए. जी बताइए, आप कहाँ के हैं? मैं तो अयोध्या का ही हूँ. जी, अयोध्या के निवासी हैं. जी. क्या करते हैं आप? हम लोग, हमारी एक मंडली थी जो सिर्फ इस समय निःशुल्क सिर्फ राम भजन ही सुनाती रहती थी, लेकिन मंडली अभी थोड़ा इधर उधर सब भटके हुए हैं. भजन सुनाएंगे? जी. लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद का भजन? जी मैं अवधि में सुनाऊंगा. ठीक है. अरे 5 वर्ष बाद आवा शुभ दिनवा हो, 5 वर्ष बाद आवा शुभ दिनवा, और राम लला बैठ गए अपने भवनवा हो, राम लला बैठ गए अपने भवनवा, अपने भवनवा भैया अपने भवनवा हो, अपने भवनवा भैया अपने भवनवा, और राम लला बैठ गए अपने भवनवा हो, राम लला बैठ गए. आपने खुद लिखा है? जी, ये हमारी टीम है, अपने खुद लिखती है भजन और खुद गाती है. भजन आप अंदर में भी गाएंगे, मंदिर में जाकर के? बिल्कुल, मौका मिलेगा वहाँ भी गाया जाएगा. जी और निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क गाते हैं हम लोग. जी. तो ये युवा हैं आप, तो यहीं पर कुछ पढ़ाई की है? जी मैं यहाँ पर लगभग गुरुकुल में 2-3 साल मैंने पढ़ाई की है. इस समय हम लोगों की संगीत की पढ़ाई चल रही है. संगीत की पढ़ाई चल रही है. और अयोध्या के बहुत सारे युवा हैं जो बाहर जा करके काम करते हैं. आपको लगता है सब अब वापस आ जाएंगे क्योंकि अयोध्या में इतनी अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी? जी बिल्कुल, वापस नहीं, सब आ ही रहे हैं भाई. वो नहीं, वो तो विदेशों से लोग अब यहाँ, आप देखिए अमिताभ बच्चन जी खुद अपनी जमीन ले रहे हैं, अयोध्या में खरीद लिए हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं वो खुद सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं. हम लोग पहले यहाँ कोई आता नहीं था भाई, हम लोग तो बहुत दिन से यहाँ देख रहे हैं, कोई नहीं आता था यहाँ पर, एकदम बिल्कुल सुनसान रहता था. लोग आते थे गाड़ी से ऐसे चले जाते थे. अब लोग क्या करते हैं, गाड़ी
पार्किंग भी उनको निःशुल्क व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। आप आओ, निःशुल्क खड़ी करो और आकर के दर्शन करो। जैसे लोग ताजमहल घूमने जाते थे, हर जगह जाते थे, लेकिन अब आप श्री राम की पेढ़ी नजर आती है सबको, राम लला नजर आते हैं, अयोध्या नजर आती है सबको। अब मुझे अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र। रविंद्र, आपने जो पूरा सेरेमनी हो रहा था, जो रिचुअल्स हो रहे थे मंदिर परिसर में, वो आपने कहाँ पे देखा? अपने फोन पे देखा या? नहीं, मैं तो बैठा था न्यूज के पास, तो मैं वही देख रहा था। न्यूज के पास ही था, हम लोगों की टीम बैठी हुई थी, तो हम लोग वही देख रहे थे। कोई और भजन सुनाएंगे या मैं और लोगों से बात करूं? और भजन जाप। जी जी जी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। एक मिनट रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप